والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق الله العلي العظيم وصدق الله النبي الكريم محمد وآل محمد صلوات সকলে মিলে জুলে একবার সালাওয়াত বার মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মদ ওয়া আজ্জিল ফরাজাহুম। আসুন আমি সকলকে আমন্ত্রণ জানাই ও আহ্বান জানাই অল ইন্ডিয়া জশ্ন ইমামে জামানা আজ্জালাল্লাহু তাআলা ফরজাহুশ শরীফ পাক পবিত্র কালাম কালামে ইলাহি কালামে মজিদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পাক পবিত্র কালাম আয়াতে ইলাহি দ্বারা শুরু হয়ে গিয়েছে। এখনো পর্যন্ত যারা বাড়িতে আছেন এবং রাস্তার উপরে ঘোরাফেরি করছেন, আপনাদের কাছে বিনীতভাবে আবেদন এবং অনুরোধ, আপনারা এই ফারশে মেহফিলে ফারশে মুসাররাতে চলে আসুন এবং বিশেষ করে হাত জোড় করে আবেদন করব তাদের উদ্দেশ্যে এবং উপলক্ষে যারা বাজি ফাটাচ্ছেন, দয়া করে রাস্তার উপরে কোনো প্রকারের বাজি ফাটাবেন না, রাস্তার উপরে কোনো প্রকারের বাজি ফাটাবেন না এবং দয়া করে রাস্তার উপরে ভিড় করবেন না, রাস্তা ক্লিয়ার রাখবেন। যারা গাড়ি এবং বাইক রাখছেন তাদের উদ্দেশ্য আমি বলবো যে রাস্তার উপরে যেন বাইক রাখবেন না, এতে পরে যে অসুবিধা হবে। এক সাইডে আপনি রাখবেন, বাড়ির উঠানে রাখবেন, কিন্তু রাস্তার উপরে কোনো ধরনের জ্যাম করবেন না। দয়া করে এখনো পর্যন্ত যে সমস্ত মুমিনিন মেহমান আমার লিস্টে অনেক কবিগণ আছে, মেহমান এসে গিয়েছেন, আপনাদের সম্মুখীন হবেন ইনশাআল্লাহ। এক এক করে আমি নাম ডেকে নেব, তবে ছোট ছোট বাচ্চারা পড়ার জন্য নাম লিখিয়েছেন, আমি তাদেরকে এক এক করে ডেকে নেব। তবে যদি আমি বলি তাহলে আজ বলার অপেক্ষা রাখে না। ইমামে জামানা আজ্জালাল্লাহু তাআলা ফরজাহুশ শরীফ তিনি 255 হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছেন, আজ 1447 হিজরি চলছে। কিন্তু সেই যুগ ধরে আর আমাদের জীবনে আমরা ছোট থেকে দেখেছি এবং আরও আগেও দেখব, আমাদের সমাজ সেই ইমামে জামানাকে মনে রেখেছেন, ভুলে যায়নি, আর আগামী তো আমরা ভুলবো না, মনে রাখবো ইনশাল্লাহ। এই মেহফিল আগে যেভাবে মেহফিল হতো, কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছেন সবকিছুই আপনাদের সম্মুখে, আপনাদের সামনে নিজের চোখে আপনি দেখতে পারেন। দুনিয়ার কোনা কোনা থেকে সকলকেই দেখছেন আর দেখানো হচ্ছে যে আমরা ইমামকে ভুলে যাইনি, অন্তর দিয়ে মহব্বত করি, ভালোবাসি। কিন্তু সত্যিকারের ইমামে জামানাকে ভালোবাসতে গেলে কি কি লাগে? আজ সকাল থেকে প্রোগ্রাম চলছে, কুইজ কম্পিটিশন ছিল, প্রতিযোগিতা ছিল, সেখানেও অনেক বাচ্চারা অংশগ্রহণ করেছে। ইনশাল্লাহ আগামী তো সেখানে একটা জিনিস ছিল, আমি প্রশ্ন করছিলাম যে দুদিন আগে একটা প্রশ্ন উত্তর দেওয়া হলো, আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে এটা কি সব জানা ছিল? 100 প্রশ্ন উত্তর ছিল, তো প্রায় সকলেই 1
যোগ হয়ে বলল যে না, আমাদের সব জানা ছিল না, হয়তো অল্প কিছু জানা ছিল, অধিকাংশ জিনিস আমাদের জানা ছিল না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা যদি 2 দিনে এতটা আমরা জানতে পারি, তাহলে সারা বছর 365 দিন একটা একটা জিনিস যদি আমরা জানার চেষ্টা করি, তাহলে এটা কি ভালো নয়? সকলেই বলল জি হ্যাঁ, এটা ভালো জিনিস। কেন? প্রশ্ন হচ্ছে এই যে কেন প্রতিদিন 365 দিন এই কাজ করব, মাসে একদিন নয়, বছরে একদিন নয়, কেন প্রতিদিন আমাকে করতে হবে? পয়গম্বর আকরাম হযরতে মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জিল ফরাজাহুম, তিনি ইরশাদ কি করেছেন? মাম মাতা ওয়া লাম ইয়ারিফ ইমামা জামানিহি মাতা মিতাতান জাহিলিয়া। এদিকে নামাজের পরে আপনি দোয়া পড়েন, দোয়ায়ে ফরাজ আপনি পড়েন, ইলাহি আযমাল বালা পড়েন না? এর মধ্যে, এই দুয়ার মধ্যেও সেখানে উল্লেখ আছে যে ইতাআত আমাদের উপরে ফরজ করা হয়েছে। এদিকে নবী বলছেন নিজের যুগের ইমামের মারেফাত অর্জন করো। তাহলে এই মারেফাত মাসে একদিন, সপ্তাহে একদিন না বছরে একদিন, বরং যতদিন আমি আপনি জীবিত আছি 365 দিন, এটা আমাদের উপরে নৈতিক একটা দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় সেই মারেফাত অর্জন করা। মারেফাত যদি অর্জন না করি, তাহলে আমি যদি মৃত্যুবরণ করি, তাহলে আমার মৃত্যু নবীর হাদিস অনুযায়ী আমার আপনার মৃত্যু মারেফাতে ইমাম বিনা, জাহিলিয়াত, মূর্খতা, ইহুদি ও খ্রিস্টানের মৃত্যুর নাই। এই জন্যই প্রতিদিন প্রতিনিয়ত ইমামের মারেফত অর্জন করার জন্য আমাকে চেষ্টা করে যেতে হবে। ছোট্ট একটা জিনিস হোক, কিন্তু সেটা প্রতিদিন। যদি 365 দিন আমরা একটু একটু করে চেষ্টা করি, তাহলে প্রতিদিন যদি একটা জিনিস আমরা জানতে পারি, একটা বছরে 365টা জিনিস আমরা জানতে পারবো। অতএব যে দাবি লাব্বাইক ইয়া মেহদি বলে, আজ্জিল ওয়ালিয়াকাল ফরাজ বলে, সেই দাবি তখনই পূরণ হবে যখন ইমাম আওয়াজ দেবে যে হ্যাঁ তুমি আমার। নতুবা মহব্বত, ভালোবাসা, আন্তরিকতা একতরফা হয়ে দাঁড়াবে, আর সেটা হয়তো কাজ না আসতেই পারে। কাজে আসার জন্যে সেদিক থেকে আওয়াজ আসা দরকার যে না, এ আমার, এ আমাকে ডেকেছে, আমার আওয়াজ এসে লাব্বাইক বলবে। আসুন আমরা সেই চেষ্টাই করব যে আমরা ইমামকে ডাকবো, আর ইমাম আমাদের ডাকে তিনি আওয়াজ দেবেন যে আমরা লাব্বাইক ইয়া মেহদি বলবো, আর ইমাম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সেদিক থেকে আওয়াজ দেবেন যে হ্যাঁ আমি উপস্থিত আছি, তুমি আমাকে ডেকেছো, আমি সাড়া দিয়েছি। একবার সকলেই মিলে জুলে সালাওয়াত বার মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ, সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ ওয়া আজ্জিল ফরাজাহুম। এটা একটা অংশ সালাওয়াতের পরে। এর অনেক সওয়াব ও ফজিলত এর আগেও আপনারা শুনেছেন, আমি শুনিয়েছি। যাই হোক, সেটা একটা আলাদা বিষয়। তো ইমামকে স্মরণ রাখা, 255 হিজরি তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন 15ই শাবান। সেই উপলক্ষে এই মাহফিলের আয়োজন, এই নুরানি মাহফিলের আয়োজন, এই মিলাদের আয়োজন। এবারে এটা আপনার ব্যাপার, আমি এক এক করে নাম ধরে তো ডাকতে পারবো না, এটা তো সম্ভব নয়। এটা আপনার ব্যাপার যে আপনি আসবেন কি না, আমি আসবো কি না, এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে এটা অবশ্যই বলা যে এখানে আসলে আপনি ঠকবেন না, এখানে আসলে আপনি ঠকবেন না, এতটুকু গ্যারান্টি নেওয়া যেতে পারে। আসুন যে ইমাম মেহদি আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের শানে সালাম পড়েই আমি এক এক করে নাম ডেকে নেব খুবই অল্প সময়ের মধ্যে। যে একবার সকলে মিলে জুলে সালাওয়াত বার মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ, সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ ওয়া আজ্জিল ফরজাহুম। সালাম হে আল মাহদি, সালাম হে আল মাহদি, সালাম হে আল মাহদি। সালাম বর্ষিত হোক পবিত্রতার উৎসমূল মুহাম্মাদের সন্তান আল মাহদির উপর। সালাম বর্ষিত হোক জগৎ সমূহের জন্যে রহমতের সন্তান আল মাহদির উপর। সালাম বর্ষিত হোক প্রশংসাকারী ও প্রশংসিতের সন্তান আল মাহদির উপর। সালাম বর্ষিত হোক সাহেবে মেরাজের সন্তান আল মাহদির উপর। সালাম বর্ষিত হোক মোহাম্মদী রাজ্যের 12তম রাজপুত্র আল মাহদির উপর। সালাম বর্ষিত হোক
কুল্লে ঈমান আলীর সন্তান আল মাহদির উপর সালাম বর্ষিত হোক। নাতিকে কোরআন আলীর সন্তান আল মাহদির উপর সালাম বর্ষিত হোক। সিদ্দিকে আকবর ও ফারুকে আজম আলীর সন্তান আল মাহদির উপর সালাম বর্ষিত হোক। ফাতেমায়ে কাউসারের সন্তান আর মাহদির উপর সালাম বর্ষিত হোক। তাহেরা ও সিদ্দিকার সন্তান আল মাহদির উপর সালাম বর্ষিত হোক। জাকিয়া ও জাহরার সন্তান আর আল মাহদির উপর সালাম বর্ষিত হোক। জান্নাতের যুবকদের সন্তান আল মাহদির উপর সালাম বর্ষিত হোক। মুহাম্মাদের জামালি রূপ হাসান আল মুজতাবার সন্তান আল মাহদির উপর সালাম বর্ষিত হোক। মুহাম্মাদের জালালি রূপ সৈয়দুশ শুহাদা আল হুসাইনের সন্তান আল মাহদির উপর সালাম বর্ষিত হোক। আলে ইমরান আল মাহদির উপর সালাম বর্ষিত হোক। বনি ইসমাইল হাসান আল আসকারীর সন্তান আল মাহদির উপর সালাম বর্ষিত হোক। নার্গিসের সন্তান আল মাহদির উপর সালাম বর্ষিত হোক। আলে ইব্রাহিম আল মাহদির উপর সালাম বর্ষিত হোক। কিতাবুল্লাহের ওয়ারিস আল মাহদির উপর সালাম বর্ষিত হোক। হিজাবে এলাহিতে থেকেও মুমিনদের পথ প্রদর্শনকারী আল মাহদির উপর সালাম বর্ষিত হোক। গাজী আব্বাস আলমদারের বাজু চুম্বনকারী আল মাহদির উপর সালাম বর্ষিত হোক। আলী আসগর ও সাকিনার তৃষ্ণার যন্ত্রণা অনুভবকারী আল মাহদির উপর সালাম বর্ষিত হোক। কাসিম ও আলী আকবরের বীরত্বের সাক্ষী আল মাহদির উপর সালাম বর্ষিত হোক। মজলুম হুসাইনের জিবহে আজিমের জন্য গৌরবান্বিত আল মাহদির উপর সালাম বর্ষিত হোক। বিবি জাইনাবের চাদর ছিনিয়ে নেওয়া ও হুসাইনি কাফেলার উপর জুলুমের কারণে ব্যথিত আল মাহদির উপর সালাম বর্ষিত হোক। ফাতেমা জাহরার সত্যবাদিতা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠাকারী আল মাহদির উপর তিনি অবশ্যই আসবেন, সেই ইমামের উপরে সালাম, আমাদের সকলের সালাম, যিনি প্রত্যেক মজলুমদের পাশে দাঁড়াবেন এবং জালিমদের থেকে তার বিচার নেবেন, নিস্তনাবুদ করবেন। পয়গম্বর আকরাম তিনি হাদিসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে আমার বংশ থেকে আমার সন্তানদের মধ্যে সে আসবে এবং এই পৃথিবীতে, এই দুনিয়াতে যত ধরনের জুলম অত্যাচার ন্যায় বিচারে পরিপূর্ণ এই পৃথিবীকে, এই জগৎকে এই বিচারে অত্যাচার থেকে মুক্ত, আমন, শান্তি, আস্তি, আদালতে পুরো পরিপূর্ণ করে দেবেন। আমরা সেই আশায় আছি, সেই অপেক্ষায় আছি যে সেই আখেরি হুজ্জত, এই দুনিয়া বাকি আছে ইমামে কায়েমের জন্য, আল্লাহর নাম বাকি আছে ইমামে মাহদির জন্য। আরে দুনিয়া অপেক্ষায় আছে ন্যায় বিচারের জন্য, দুনিয়া অপেক্ষায় আছে ন্যায় বিচারের জন্য, ন্যায় বিচার অপেক্ষায় আছে মাহদির জন্য। সালাওয়াত বার মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। আসুন লব্বাইক ইয়া মাহদি, লব্বাইক ইয়া মাহদি। আসনের সাথে সাথেই আপনাদের সম্মুখে আমি ডেকে নেব জনাব বনি হাশিম বকচরা, তারা ইস্তেকবারের জন্য বাওয়াজে বুলন্দ নারে সালাওয়াত। ঠিক আছে, ঠিক আছে, অন করা আছে। হাজিরানে মেহফিল, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সামনে কয়েকটি কাসিদা ও কয়েকটি শের পেশ করছি, শুনবেন। अंधेरों
अंधेरों से निकल कर रोशनी के साथ हो जाओ, अंधेरों से निकल कर रोशनी के साथ हो जाओ, अंधेरों से निकल कर रोशनी के साथ हो जाओ, अंधेरों से निकल कर रोशनी के साथ हो जाओ। अभी भी वक्त है मौला अली के साथ हो जाओ, अभी भी वक्त है मौला अली के साथ हो जाओ। तबर्रा तबर्रा हम पे जो वाजिबी है वाजिब हो ही जाएगा, तबर्रा हम पे जो वाजिबी है वाजिब हो ही जाएगा। अली का लाल जिस दम पर दे गए बद से आएगा, अली का लाल जिस दम पर दे गए बद से आएगा। ज़माने वालों सुन लो हम तो बस पुतला जलाते हैं, ज़माने वालों सुन लो हम तो बस पुतला जलाते हैं। मेरे मौला फदक के चोरों को जिंदा जलाएगा, मेरे मौला फदक के चोरों को जिंदा जलाएगा। हयात भी हुसैन बिन अली तकसीम करते हैं। कफन लो करबला से जिंदगी के साथ हो, कफन लो करबला से जिंदगी। একটি কাসিদা আপনাদের সামনে পেশ করছি। नबी को खुद सा बताने से कुछ नहीं होगा, नबी को खुद सा बताने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे झूठे फसाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे झूठे फसाने से कुछ नहीं होगा। अली को चौथा बताने से कुछ नहीं होगा, अली को चौथा बताने से कुछ नहीं होगा। अरे लगा के आगे बुझाने से कुछ नहीं होगा, लगा के आगे बुझाने से कुछ नहीं होगा। अली नबी के वसी फातिमा के हैं शौहर, अली नबी के वसी फातिमा के हैं शौहर। अब इनकी शान घटाने से कुछ नहीं होगा, अब इनकी शान घटाने से कुछ नहीं होगा। अली की बुग़्ज़ में सुन लो नशे की हालत में, अली की बुग़्ज़ में सुन लो नशे की हालत में। अरे नमाज ज़्यादा पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, नमाज ज़्यादा पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अली के साथ नबी और नबी के साथ अली, अली के साथ नबी और नबी के साथ अली। अरे जनाजा छोड़ के जाने से कुछ नहीं होगा, जनाजा छोड़ के जाने से कुछ नहीं होगा। इसमें কয়েকটি শের আপনাদের সামনে পেশ করছি। कि तो खुदाए जाने ज़हूर इमाम मेहदी पर, कि तो खुदाए जाने ज़हूर इमाम मेहदी पर, फिदक के लूटने वालों का हाल क्या होगा।
फिदक के लूटने वालों का हाल क्या होगा, दरार सदियों से जो है उसे मिटा के दिखा, अली के बुक से काबा नया बना के दिखा, खिलाफे फर्शे अज़ा आधिया जला के दिखा, बहुत चिराग बुझाए कोई जला के दिखा, तू कह रहा है कि मेरा लहू हलाली है, अली के नाम का नारा जरा लगा के दिखा, अली के नाम का ना अली के नाम का नारा जरा लगा के दिखा। तबस्सुम अली असगर ने हुरमुला से कहा, तबस्सुम अली असगर ने हुरमुला से कहा, अगर है मर्द की औलाद तो हरा के दिखा, अगर है मर्द की औलाद तो हरा के दिखा, मैं तेरी जीत का ऐलान करके जाऊंगा, मैं तेरी जीत का ऐलान करके जाऊंगा, अरे तू मुस्कुरा के दिखा मुझे रुला के दिखा, तू मुस्कुरा के दिखा मुझे रुला के दिखा, झूठे खुदा की कैद से काबा निकल गया, झूठे खुदा की कैद से काबा निकल गया, आए अली बूढ़ों का जनाजा निकल गया, आए अली बूढ़ों का जनाजा निकल गया, सजदा तेरी नमाज कहे मुनकिरे अली, परखा का छोटियों पे तो खोटा निकल गया, हैरत की बात यह है कि कातिल बतूल का कि बस में नबी में बैठने वाला निकल गया, अरे शराब खार नजिस बेहया यजीद कि जैसा था बाप वैसा ही बेटा निकल गया, जैसा था बाप वैसा ही बेटा निकल गया। सुनमें कि मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, कि मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते, ए मुनकिरे इकरारे अली उन नलीउल्लाह, दहलीज़ नजब चूमने कुत्ते नहीं जाते, दहलीज़ नजब चूमने कुत्ते नहीं जाते, जो आले मोहम्मद को सताए वो सहाबी, जो बागे फिदक लूट के खाए वो सहाबी, जो खाना इस्मत को जलाए वो सहाबी, जो फातिमा ज़हरा को रुलाए वो सहाबी, अरे खूबी को खराबमंद खराबी नहीं कहते, हम दुश्मन ज़हरा को सहाबी नहीं कहते, हम दुश्मन ज़हरा को सहाबी नहीं कहते। खुदा মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ। তবে এবার সাবধান হয়ে যান, এখনো পর্যন্ত যারা বাইরে আছেন বাড়িতে আছেন, আমি কিন্তু পড়তে শুরু করলাম, যে এর পরপরই আমি ডেকে নেব, তবে আমি শুরু করলাম কিন্তু যারা বাইরে আছেন যারা বাড়িতে আছেন শুরু করলাম কিন্তু, যে আহলে ঈমান, ঈমানদার আছেন তো, ईमानदार आছেন তো শুনবেন, अहले ईमान नगीने की तरफ जाते हैं, अहले ईमान नगीने नगीने की तरफ जाते हैं, भाई अहले ईमान नगीने की तरफ जाते हैं, जो कमीने हैं कमीने की तरफ जाते हैं। যারা বাড়িতে আছেন বাইরে আছেন শুরু করলাম কিন্তু, যে আহলে ঈমান নগিনে কি তরফ जाते हैं, এত সুন্দর महफिल সাজিয়েছেন তো ঈমানদার হলে চলে আসবেন। আহলে ঈমান, আমি আপনাকে বলছি না, যে আহলে ঈমান ভাই, আমি আমাকে বলছি আপনাকে নয়, আহলে ঈমান নগিনে কি তরফ जाते हैं, जो कमीने हैं जो कमीने हैं कमीने की तरफ जाते हैं। अरे पंजतने पाक से करते हैं मोहब्बत जो लोग, वही तो अर्श के जीने की तरफ जाते हैं। पंजतने पाक से करते हैं जो मोहब्बत जो लोग, वही तो अर्श के जीने की तरफ जाते हैं। अरे जिनको मालूम है जाने का तरीका वो लोग, जिनको मालूम है जाने का तरीका वो लोग, करबला हो के मदीने की तरफ जाते हैं, करबला हो के मदीने की तरफ जाते हैं। तो लाख फतवे वो लगाते हैं मगर हाथ मेरे, ভালো করে শুনবেন, लाख फतवे वो लगाते हैं मगर हाथ मेरे, लाख फतवे
लाख फतवे वो लगाते हैं मगर हाथ मेरे जिक्र शब्बीर पे सीने की तरफ जाते हैं, जिक्र शब्बीर पे सीने की तरफ जाते हैं। তাসুন এর সাথে সাথেই আপনাদের সম্মুখে আসেন জনাব রেহান মন্ডল মির্জাপুর। বাবা যে বলেন নারে সালাওয়াত। আসসালামু আলাইকুম। তো আমার নাম রেহান মন্ডল। তো কয়েকটি শের এবং কয়েকটি কাসিদা পেশ করছি, তো শুনবেন। अपनी आँखों से ही देख लेना, मुफ्ती हो तुम जरा चलते चलते। अरे अपनी आँखों से ही देख लेना, मुफ्ती हो तुम जरा चलते चलते। रोंद डालेंगे फतवे तुम्हारी, ये जुलूस से आज़ाद चलते चलते। अपनी आँखों से ही देख लेना, मुफ्ती हो तुम जरा चलते चलते। ताको जंजीर ये कह रहे थे, ऐ यज़ीद अबू तेरी तबाही। अरे ताको जंजीर ये कह रहे थे, ऐ यज़ीद अबू तेरी तबाही। अरे जिसको बीमार समझा तो तुमने, शाम तक आ गया चलते चलते। अपनी आँखों से ही देख लेना, मुफ्ती हो तुम जरा चलते चलते। अरे बोले असगर उमक कर रन में बाबले आए थे साथ वरना। बोले असगर उमक कर रन में बाबले आए थे साथ वरना। मैं मदीने भी होता तो आता, घुटनियों करबला चलते चलते। তো আপনাদের সামনে আমি একটি দুটো শের পাঠ করছি, তো শুনবেন। अरे जो रास्ता मुश्किल था वो आसान हो गया, जो रास्ता मुश्किल था वो आसान हो गया। अरे नबी ने जब दुनिया पर रखा कदम, अरे नबी ने जब दुनिया पर रखा कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अरे काबा घर में जब जन्म लिया आली, काबा घर में जब जन्म लिया आली, सब गली सब शहर चिल्ला कर जोर से बोलकर उठा नारा हैदरी हैदरी। तो ইতিমধ্যে আমার শেষ হলো। खुदा हाफिज। माशाल्लाह, मेरे माबूद किसी हक के तरफदार को भेज। तरफदार पढ़ाते कैसे যাবেন? আপনাদের নাম এসেছে। मेरे माबूद किसी हक के तरफदार को भेज, कसरे दी के लिए अपने किसी मेमार को भेज, तो गैरे फर्रार को जर्रार को कर्रार को भेज।
गैरे फर्रार को कर्रार को जर्रार को भेज, गैरे फर्रार को जर्रार को कर्रार को भेज। अरे परचमे हक व सदाकत के अलमदार को भेज, परचमे हक व सदाकत के अलमदार को भेज। तो असरे हाजिर के जो है मरहबो अंतब या रब, असरे हाजिर के जो है मरहबो अंतर या रब, भेज दे उनके लिए अब कोई हैदर या रब। আসুন এর সাথে সাথেই আপনাদের সম্মুখে আসেন জনাব সাকিবুল গাইন, সাকিবুল গাইন। তার ইস্তেকবারের জন্য বাবাজে বলেন নারায়ে সালাওয়াত। হাজিরানে মেহফিল, সালামু আলাইকুম। প্রথম শেরটি পাঠ করছি তাদের জন্য যারা মাওলার বিলাদাতে খুশি নয়। अच्छाई ना बुराई किसी बात की हिस्स है, वो इब्ने नजीस है मुरसले आदम का महिब और न खुदा का, न फातिमा ज़हरा का, न शहदाई अज़ा का। गद्दार है वो सबसे बड़ा कर्ब वला का, गद्दार है वो सबसे बड़ा कर्ब वला का। बनता तो आज़ादार है पर दुश्मन है विला का, बनता तो आज़ादार है पर दुश्मन है विला का। जिसको मौला की विलादत से प्यार नहीं है, गद्दार है वो शेख आज़ादार नहीं। आला है कौन कौन और आली है कौन कौन, आला है कौन कौन और आली है कौन कौन। हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन, आला है कौन कौन और आली है कौन कौन। हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन, हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन। अरे नारा लगा के देख तू अली के नाम का, नारा लगा के देख तू अली के नाम का। ये चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन कौन। अली तस्बीर कायनात का आकाश है, दिल को जगा दे वो एहसास है। तस्बीर कायनात का आकाश है अली, दिल को जगा दे वो एहसास है अली, दिल को जगा दे वो एहसास है अली। ए बंदाए मोमिन तेरा दिल क्यों उदास है, ए बंदाए मोमिन तेरा दिल क्यों उदास है। अरे नारा लगा के देख तेरे पास है अली, नारे हैदरी हैदरी। बच्चे किसी फकीर से पाले न जाएंगे, मुंह तक अली बगैर निवाले न जाएंगे। बच्चे किसी फकीर से पाले न जाएंगे, मुंह तक अली बगैर निवाले न जाएंगे। कफ्न पर रखो खाके करबला, रोशन रहेगी कब्र उजाले न जाएंगे। बच्चे किसी फकीर से पाले न जाएंगे, मुंह तक अली बगैर निवाले न जाएंगे। कफ्न पर रखो खाके करबला, रोशन रहेगी कब्र उजाले न जाएंगे, रोशन रहेगी कब्र उजाले न जाएंगे। लब खोल तो रहे हो खिलाफे अज़ा बहुत, लब खोल तो रहे हो खिलाफे अज़ा बहुत। कल पड़ गए ज़बान पे तो छाले न जाएंगे, कल पड़ गए ज़बान पे तो छाले न जाएंगे, कल पड़ गए ज़बान पे तो छाले न जाएंगे। अरे हमें मीसम ही रहने दो छेड़ो ना इस कदर, हमें मीसम ही रहने दो छेड़ो ना इस कदर, हमें मीसम ही रहने दो छेड़ो ना इस कदर। अगर मुख्तार बन गए तो संभाले न जाएंगे। फजील जरेलवी साहब रट्टी कलाम पुछी साहबा
একটা পড়ছি, কেউ কারোর জন্য তো কেউ কারোর জন্য, আমার দিলে ভালোবাসা শুধুই আলীর জন্য। আর হবে না, এই উর্দুতেই আছে, বাংলায়। महबूब इलाही के दुलारे हैं सहाबा, दरियाए रिसालत के किनारे हैं सहाबा, सूरज मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा, कुछ इनमें मगर बुक्स के मारे हैं सहाबा। हर फूल हकीकत में गुलाबी नहीं होता, जो शख्स मुनाफिक हो सहाबी नहीं होता। हर फूल हकीकत में गुलाबी नहीं होता, जो शख्स मुनाफिक हो सहाबी नहीं होता। असहाबे नबी से है हमें इतनी मोहब्बत, औलाद भी हमवार दे क्या चीज़ है दौलत। शर्त सहाबी हो वफादार नबूवत, और दिल में हो शहजादी कौनैन की इज्जत का। उम्र जो मुखलिस रहा वो हसनैन के दर का, गर ऐसा सहाबी है तो ताज है सर का। आली आली, गर ऐसा सहाबी है तो ताज है सर का, गर ऐसा सहाबी है तो ताज है सर का। हम ऐसे सहाबा पे फ़कत रखते हैं ईमान, जो बुग़्ज़ अली में जागा भी नहीं हो और जंग के मैदान से भागा भी नहीं हो। जो बुग़्ज़ अली में जागा भी नहीं हो और जंग के मैदान से भागा भी नहीं हो। जिंदाबाद। लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या मेहदी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जब हमने सहाबा पे नजर गौर से डाली, कुछ ज़र्फ तो कम ज़र्फ थे तो कुछ ज़र्फ थे आली, कुछ दीन से खाली थे तो कुछ नाम ख्याली, कुछ बुज़दिलो नामर्द थे तो कुछ खैर व जलाली, कुछ बुज़दिलो नामर्द थे तो कुछ खैर व जलाली। हम बूज़र व कंबर के तरफदार हुए हैं, तुम उनके फिदाई हो जो फर्रार हुए। हम बूज़र व कंबर के तरफदार हुए हैं, तुम उनके फिदाई हो जो फर्रार हुए हैं, तुम उनके फिदाई हो जो फर्रार हुए हैं। जो जंग में हाथों को सदा जोड़ के भागे, मतलब के लिए अहले वफा तोड़ के भागे, महबूब से जो मुंह मोड़ के भागे, जो माले गनीमत के लिए सदा छोड़ के भागे, पोशी तो जहां से ये हकाइक नहीं होते, बुज़दिल कभी ताज़ीम के लायक नहीं होते। जो जंग में हाथों को सदा छोड़ के भागे, मतलब के लिए अहले वफा तोड़ के भागे, महबूब से जो मुंह मोड़ के भागे, जो माले गनीमत के लिए सदा छोड़ के भागे, पोशीदा जहां से ये हकाइक नहीं होते, बुज़दिल कभी ताज़ीम के लायक नहीं होते, बुज़दिल कभी ताज़ीम के लायक नहीं होते। जो आले मोहम्मद को सताए वो सहाबी, जो बागे फदक लूट के खाए वो सहाबी, जो खाना इस्मत को जलाए वो सहाबी, जो फातिमा ज़हरा को रुलाए वो सहाबी। अरे खूबी को खैरतमंद खराबी नहीं कहते, हम दुश्मन ज़हरा को सहाबी नहीं, हम दुश्मन ज़हरा को सहाबी नहीं कहते। नारे हैदरी हैदरी। फजीलत अली अलैहिस्सलाम सुनिए। जो बाबे मदीनतुल इल्म है वो अली, जो मरकते मुनकिर ताहिर इज़ाम है वो अली, जो इमाम अव्वल है वो अली, जो कालिम सनाए खिदमत है वो अली, जो हैदर करार है वो अली, जो गैर फर्रार है वो अली, जो अहिमत मुख्तार है वो अली, जो मालिक जुल्फ़िकार है वो अली, जो उस्ताद जिब्राइल है वो अली, जो कुल्ल ईमान है वो अली, जो कुव्वत पैगंबर है वो अली, जो फातह खैबर है वो अली, जो सिरातुल मुस्तकीम है वो अली, जो इल्म का मालिक है वो अली। अली उसे कहते हैं जो कोहे तून पे पहुंचा तो नूर बना, जो कोहे अबू कुबैस पे पहुंचा तो मसीहा बना, जो कोहे जैतून पे पहुंचा तो मोज़ेज़ा बना। अरे वो वही अली है
जो अर्श मुनीर पे पहुंचा तो आला बना, मिंबर गदीर पे पहुंचा तो मौला बना। हाफिज। মাশাআল্লাহ, যদি আপনারা আমার সাথে থাকেন, আছেন তো সবাই সঠিকভাবে, আসুন আমরা সকলেই বলি ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, সকলে মিলে জুড়ে ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, আমার সাথে বলবেন সকলে ইয়া মাহদি। মাহদি ত্রাণকর্তা পৃথিবীর, মাহদি ত্রাণকর্তা পৃথিবীর, মাহদি হায়দারি এক মহাবীর, মাহদি ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, সকলে বলুন জোর গলায় ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, মাহদি ত্রাণকর্তা পৃথিবীর, মাহদি হায়দারি এক মহাবীর, মাহদি সূর্যের মতো আকাশে, মাহদি জীবনের ঘেরান বাতাসে, ইয়া মাহদি। ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, শিকল ভাঙার মহানায়ক, মুক্তি কামের অভিভাবক, শিকল ভাঙার মহানায়ক, মুক্তি কামের অভিভাবক, অত্যাচারীর প্রাণের কাপন, নির্যাতিতের অতি আপন, ইয়া মাহদি। ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, অন্যায় অবিচার মুছে দেবে, ন্যায় ও ইনসাফ ছড়িয়ে যাবে, ন্যায় অন্যায় অবিচার মুছে দেবে, ন্যায় ও ইনসাফ ছড়িয়ে যাবে, জ্ঞানের দরজা খুলে যাবে, পৃথিবীর সম্পদ সবাই পাবে, ইয়া মাহদি। ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, মাহদি, ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, মাহদি ত্রাণকর্তা পৃথিবীর, মাহদি হায়দারি এক মহাবীর, মাহদি সূর্যের মতো আকাশে, মাহদি জীবনের ঘেরান বাতাসে, ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, ইয়া মাহদি, কারবালার প্রতিশোধ নিতে, কারবালার প্রতিশোধ নিতে, ইয়াজিদিয়াতকে মিটিয়ে দিতে, কারবালার প্রতিশোধ নিতে, ইয়াজিদিয়াতকে মিটিয়ে দিতে, জুলফিকার হাতে নিয়ে কারবালার প্রতিশোধ নিতে, ইয়াজিদিয়াত মিটিয়ে দিতে, জুলফিকার হাতে নিয়ে কাবা ঘরে ظهور হবে, ইয়া মাহদি, 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 জীবন এখন মৃত্যু সমান। পাকিস্তানে দেখেন লাহোরে কি হলো, জুম্মার নামাজে, মসজিদের নাম মসজিদুল কুবরা ছিল, মসজিদ ইমামবাড়া ছিল, জুম্মার নামাজে সেখানে বোম ব্লাস্ট করলো। অবস্থা দেখেন, এই যে গত জুম্মা আমার শিয়া ভাই বলে শিয়া কাফির, তাহলে মসজিদে কাফেররা কি করছিল, তারা সেজদারত অবস্থায় ছিল, তখনই ব্লাস্ট হলো, কয়েকজন নিহত হলো, আর 150-র উপরে সেখানে আহত হলো। কারা মেরেছে? দেখা গেল একজন মুসলমান নাকি, সে মুসলমান কাফিরদের মাঝে, কাফির নাকি নামাজ পড়ছিল। তো কবি বলছে জীবন এখন মৃত্যু সমান, জীবন এখন মৃত্যু সমান, মুক্তির জন্য কাছে প্রাণ, জীবন এখন মৃত্যু সমান, মুক্তির জন্য কাছে প্রাণ, শেষ আশা হয়ে বেঁচে আছো, শেষ আশা হয়ে বেঁচে আছো, কাবা ঘরে তো এসো, ইয়া
ইয়া মাহদি কারবালার প্রতিশোধ নিতে কারবালার প্রতিশোধ নিতে এজিদিয়াতকে মিটিয়ে দিতে জুলফিকার হাতে নিয়ে কাবা ঘরে জহুর হবে ইয়া মাহদি লব্বাইক ইয়া মাহদি লব্বাইক ইয়া মাহদি। আসুন আপনাদের সম্মুখে আসছেন জনাব সাহিল রাইন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আওয়াজুল্লাহ তাদের সালাওয়াত। যেহেতু সে উপস্থিত নাই আমি সঙ্গে সঙ্গে ডেকে নেব জনাব মহেশ মন্ডল তারা ইস্তেকবার জন্য আওয়াজে পড়ে তাদের সালাওয়াত। हाज़िरीन महफिल अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আমি একটি কাসিদা পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদের সম্মুখে, ইনশাআল্লাহ মন দিয়ে শুনবেন। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुनबेन इंशाल्लाह। नादे अली का विरद करो ए गम बम दरवर क्या, नादे अली का विरद करो ए गम बम दरवर क्या, नादे अली के सामने कोई अंतर मंतर क्या, शेर खुदा ने खुद अपनी तलवार को रोका था, शेर खुदा ने खुद अपनी तलवार को रोका था, वरना ये जिब्रील तुम्हारे शह पर वह पर क्या, नादे अली के सामने कोई बम बम दरवर क्या। যে নিজের बचपने अजगर সাপকে চিড়ে দিয়েছিল তার কথা বলা হচ্ছে। जिसने अपने बचपन में अजगर को छीड़ा हो, जिसने अपने बचपन में अजगर को छीड़ा हो, उसको भरी जवानी में ये खैबर वैबर क्या, नादे अली का विरद करो ये गम बम दरवर क्या। सुनबेन इंशाल्लाह। इश्क अली की राह में तू जिब्रील भी कासिर है, इश्क अली की राह में तो जिब्रील भी कासिर है, इश्क अली की राह में फिर ये नैयर वैयर क्या, नादे अली के सामने कोई गम बम दरवर क्या। दोनों जहां भी सुनिएगा, दोनों जहां भी इसके मुकाबिल आए तो हारेंगे, दोनों जहां भी इसके मुकाबिल आए तो हारेंगे, हारिस वारिस मरहब मरहब अंतर वंतर क्या, नादे अली का विरद करो ए कम बम दरवर क्या। जा दिले यार जा दिले अली अलैहिस्सलाम ভালোবাসা থাকে সেটা শুনবে। जिसके दिल में हुब्बे अली की मुहर लगी होगी, जिसके दिल पे हुब्बे अली की मुहर लगी होगी, उसके लिए ये बरज़क वरज़क महशर वहशर क्या, नादे अली का विरद करो ये गम बम दरवर क्या। नारे रसालत लब्बैक या महदी,
लब्बैक या मेहदी, नारे सलवात। शुन में नेटी शूर लकसीदा। हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ, हुसैन बाँट रही है निजात ले जाओ, बतूल बाँट रही है निजात ले जाओ, हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ। कुछ आंसुओं के आवाज कायनात ले जाओ, हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ, हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ, बतूल बतेगी सदका हुसैन का इस रात, समेट सकते हो जितना वो साथ ले जाओ, हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ। ये करबला है, ये मोजिज़ नुमा के बस्ती है, ये करबला है, ये मोजिज़ नुमा के बस्ती है, कफन में इसके लापे तो हयात ले जाओ, हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ, हुसैन बाँट रही है निजात ले जाओ, जो आज तक ना मिला, जो आज तक ना मिला, खुदा की कसम वो आखिरी तीसरी शाबान की रात ले जाओ, हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ। कहेंगे मातमी हलकों से लोग महशर में, हमें हुसैन की जन्नत, हमें हुसैन की जन्नत में साथ ले जाओ, हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ, हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ। खुदा हाफिज। মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। পরবর্তী কাউকে ডাকার আগে এই ছোট্ট ঘোষণা, আমি যাদের নাম দিচ্ছি আপনারা প্রস্তুত থাকবেন, আপনাদের কিন্তু একটু পরে তো চারিদিকে শত্রুদের উৎপাত দেখে হচ্ছে মনে, চারিদিকে শত্রুদের উৎপাত দেখে হচ্ছে মনে, যুগের ইমামের আসার সময় আসছে ঘনিয়ে, যুগের ইমাম
আসার সময় আসছে ঘনিয়ে। তো আমি সর্বদা এই আরাধনা করি আপনার কাছে, আমি সর্বদা, আমরা সকলেই, আমি সর্বদা এই আরাধনা করি আপনার কাছে 313 তালিকায় যেন আদনানের নাম থাকে। সকলেরই মনোকামনা আছে, বাসনা আছে, একটা নিয়ত আছে না, আশা আছে 313 মধ্যে যেন গণ্য হয়, 313 তালিকায় যেন আদনানের নাম থাকে। তো আমার নামও থাকে। আপনি বলবেন আমার নাম থাকে, আমরা সবাই বলি আমাদের নাম থাকে। আমি সর্বদাই আরাধনা করি আপনার কাছে 313 তালিকায় যেন আদনানের নাম থাকে। তো সালাম করার সময় পাই না দেখিতে মাওলাকে। গায়বাতে আছেন না? তো কবি বলছেন সালাম করার সময় পাই না দেখিতে মাওলাকে, উত্তর দেওয়ার সময় মাওলা দেখে আমার দিকে। লব্বাইক ইয়া মেহদি, লব্বাইক ইয়া মেহদি। আসুন আমি আবারও ডেকে নিচ্ছি এর সাথে সাথেই জনাব আবরার হোসেন সাহেবকে। একবার সালাওয়াত বার মোহাম্মদ ও আলে মোহাম্মদ। আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হচ্ছেন জনাব সাহিল গাইন, তার ইস্তেকবালের জন্য বাবা বললেন নারে সালাওয়াত। হাজিরানে महफिल সালামুন আলাইকুম। আজকের এই মোবারক জশ্নের বাদ আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি একটি কাসিদা ইমাম হুসেন আলাইহিস সালামের শানে। শুনবেন উর্দু কাসিদা। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा के इब्तिदा, करम की इंतहा हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है। জিজ্ঞাসাই করবেন না কি ইমাম হুসেন আলাইহিস সালাম কি আছেন। करे जो कोई हमसरी, किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बे मिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है जिसकी फिक्र करबला, हुसैन वो दिमाग है, ये पंजतन के अंजुमन का पांचवा चिराग है। हसन का पहला हम सफर, हसन 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 का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है, इमाम तीसरा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है। গাদির সম্পর্কে একটা কাসিদা শুনবেন উর্দুতে। गदीर क्या है पता नहीं है, नबी ने पूछा तो क्या कहोगे। गदीर क्या है पता नहीं है,
नबी ने पूछा तो क्या कहोगे, अली के दिल में अली के दिल में वला नहीं है। नबी ने पूछा तो क्या कहोगे, गदीर क्या है पता नहीं है नबूवतों को, गदीर क्या है पता नहीं है। नबी ने पूछा तो क्या कहोगे। নবুয়তোं को এই যে লাইনটা পড়বো, এই লাইনটা হযরত আবু তালিব আলাইহিস সালাম থেকে নিসবত দিচ্ছে যে তিনি নবুয়তকে মানুষ করেছে, তাকেই কাফির বলছে। नबूवतों को है जिसने पाला, उसी को काफिर बता रहे हो। नबूवतों को है जिसने पाला, उसी को काफिर बता रहे हो। जरा भी शर्मो हया नहीं है। नबी ने पूछा तो क्या कहोगे, गदीर क्या है पता नहीं है। लास्ट में सिर्फ सुन में, मेरे मदीने में आने वालों, मेरे नबी मदीने में आने वालों, मेरे मदीने में आने वालों, जबी अदब से झुकाने वालों। अरे याद क्या करबो बला नहीं है। नबी ने पूछा तो क्या कहोगे, गदीर क्या है पता नहीं है। नबी ने पूछा तो क्या कहोगे। बने हुए हो बड़े सहाबी, बने हुए हो बड़े सहाबी, मगर है ईमान में खराबी। बने हुए हो बड़े सहाबी, मगर है ईमान में खराबी। अली से तुमको वफा नहीं है। नबी ने पूछा तो क्या कहोगे, गदीर क्या है पता नहीं है। नबी ने पूछा तो क्या कहोगे। पर्दा उलट दे हश्र के आसार की कसम, पर्दा उलट दे हश्र के आसार की कसम, तलवार खींच हैदरे कर्रार की कसम, तलवार खींच हैदरे कर्रार की कसम। अरे लहरा जंग अलमदार की कसम, लहरा लिवाए जंग अलमदार की कसम। फिर इंतकाम शाह दे मुख्तार की कसम, फिर इंतकाम शाह दे मुख्तार की कसम। अब फिर यजीदियत का चलन आश्कार है, अब फिर यजीदियत का चलन आश्कार है। ऐ आने वाले आके तेरा इंतजार है, आने वाले आके तेरा इंतजार है। আসুন এর সাথে আপনাদের জনাব আসকার তরফদার সাহেব, জনাব বাবু তরফদার সাহেব, জনাব শাহিদ আলী বিশ্বাস সাহেব, জনাব নকি আলী গাইন সাহেব, জনাব নেমত তরফদার সাহেব এখনো মনে হয় সকলে উপস্থিত হয়নি। যাই হোক, আসুন একটি প্রশ্ন আছে যে আমরা কারা, এবং এই প্রশ্ন হয় অনেক হয়, এবং আমাদেরকে অনেকেই মনে করে যে এদের কেউ নেই, এদের মাথার উপরে কেউ নেই। তো যেটা খুশি আমরা সেটা করে যাব। আসুন, একটা কবি নিজের কবিতার মাধ্যমে বলেছেন যে हमको लावारिस नहीं समझो हमारा है कोई, हमको लावारिस नहीं समझो हमारा है कोई,
तुम हमें अपनी बताओ क्या तुम्हारा है कोई। कवि की बोलते, शायर कहता है कि हमको लावारिस नहीं समझो, हमारा है कोई, तुम हमें अपनी बताओ क्या तुम्हारा है कोई। तो खाने काबा की छत पे परचमे अब्बास है, ऐ नजर ये तो बता ऐसा नजारा है कोई। ऐसा नजर, ऐ नजर, ऐ नजर, ऐ ये तो बता ऐसा नजारा है कोई। ये जो बातिल कुव्वते यकजा है आज अपने खिलाफ, ये जो बातिल कुव्वते यकजा है आज अपने खिलाफ। मोमिनो मायूस मत हो ये इशारा है कोई। मोमिनो मायूस मत हो ये इशारा है कोई। अरे जिसके एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ असरात हों, যদি আমি পৌঁছাতে পারি, আগার मैं पहुंचा दूं। দেখেন আমরা যখন নারায়ে হায়দারি লাগাই তো হাদিসের মধ্যে আছে যে আলী ইবনে আবি তালিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের একটা নামই পরিচয়, মুমিনের মুখ কেমন হবে আর মুনাফিকের মুখমণ্ডল কেমন হবে, তো তার প্রভাব কেমন হবে। তো কবি নিজের ভাষায় বলছে যে जिसके एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ असरात हों, जिसके एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ असरात हो। नारे हैदर से हटकर ऐसा नारा है कोई। नारे हैदर से हटकर ऐसा नारा है कोई। अरे तुम तरफदार यजीदी, हम तरफदार हुसैन। এই নামটা বারবার আসছে কেন আপনার বলছেন। तुम तरफदारे यजीदी हम तरफदारे हुसैन, तुम तरफदारे यजीदी हम तरफदारे हुसैन। तुमको प्यारा है कोई और हमको प्यारा है कोई, तुमको प्यारा है कोई और हमको प्यारा है कोई। अरे मानती है अब तो दुनिया भी कोई पर्दे में है, मानती है दुनिया अब तो मानती है अब तो दुनिया भी कोई पर्दे में है। ये नहीं मिट पाएंगे इनका सहारा है कोई, ये नहीं मिट पाएंगे इनका सहारा है कोई। तो हुर की आंखों से जो टपका है वो आंसू क्या है। प्रश्न जे हुर की आंखों से जो टपका है वो आंसू क्या है। ज़ैन मंजिलों की राह दिखलाता है तारा है कोई। আসুন এর সাথে সাথেই আমি আওয়াজ দেব জনাব কাসিদ মন্ডল সাহেবকে, তারা ইস্তেকবালের জন্য আওয়াজে বলেন নারে সালাওয়াত। আমাদের এমন এক ইমামের জন্ম তারিখ, কেউ বলে আমাদের ইমামের জন্ম হয়নি, আর কেউ বলে আমাদের জীবনের ইমামের জন্ম হয়েছে। এই ইমামের জন্ম কোথায়? আরবাস শহরে উনি আজ জন্মগ্রহণ করেছে। এই ইমামের জন্ম তারিখ আজ আমরা পালন করছি। তাই আমি যুগের ইমাম নিয়ে একটি কাসিদা শোনাচ্ছি, ভালো করে শুনবেন। আমি এই কাসিদাটা নতুন, আমার এই নাতি বলে নিমন্ত্রণ দেওয়ার সাথে সাথে এই কাসিদাটা আমি বেঁধেছি। ওইতে কাজাই আমার ইমামে আশার আগমন হয়েছে। আর আসলো ইমাম ভোরের রাতে সাহারা বুকে, ও ভাই সাহারা বুকে। ওই দেখা যায় আমার ইমামের আশার আগমন হয়েছে।
আর আসলো ইমাম ভোরের রাতে সাহারার বুকে, ও ভাই সাহারার বুকে। আজ খুশি খুশি হাসি নিয়ে, আজ খুশি খুশি হাসি নিয়ে আসতে মমিন মমেনা। নারে হায়দার! আজ খুশি খুশি হাসি নিয়ে আসতে মমিন মমেনা। আরে মেহেদি দিবাস করবে পালন সারা রাতেতে, আজ ওই সারা রাতে। এই আজ এই খুশি ওই দেখা যায়, ওই দেখা যায় আমার ইমামের আসার আগামন হয়েছে। আর আসলো ইমাম ভোরের রাতে সাহারার বুকে, ও ভাই সাহারার বুকে। রঙের এই ইমামের এই খুশবু দেখো বিশ্ব ছড়িয়েছে। ইমামের এই খুশবু দেখো বিশ্ব ছড়িয়েছে। আর ইমামের এই খুশবু দেখো বিশ্ব ছড়িয়েছে। আর ওই খুশবুতে ভেসে চলেছে জান্নাতের হুর পরি সকলে। আমি তোমাদের হাত দ্বারাই দেওয়াবো। আমি এই যে সমস্ত নাম নিয়েছি, কয়েক বছর আগে আমি শুরু করেছিলাম যে যারা বিশেষ করে এই গ্রামে কবর খোঁড়ে, যারা কবর খোঁড়ে তাদের জন্য এই ব্যবস্থা করেছিলাম। মাঝখানে একটা বছর গ্যাপ গিয়েছে, কিন্তু এই কমিটির ছেলেরা আবার উদ্যোগ নিয়েছে নতুন করে। ইনশাল্লাহ আগামীতেও যেন এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। ये वो हजरात हैं जो साल भर जो मैयतें होती है यहाँ पे कब्र खोदते हैं, तो उनके लिए कुछ बहुत ही मुख्तसर है लेकिन गिफ्ट का इंतजाम किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, परवरदिगार आलम से दुआ है, ये मुस्तकिल जारी और सारी रहे। बावाज़े बुलंद नारे सलावत। যাদের আমি নাম নিয়েছি কিছু মনে করবেন না, এটা খুবই অল্প এবং সীমিত জিনিস হতে পারে, কিন্তু একটা আমাদের প্রচেষ্টা। আপনাদের কাছে আমাদের একটাই আশা এবং অনুরোধ যে আমাদের জন্য, এই কমিটির জন্য, গ্রামবাসীদের জন্য দোয়া করবেন, যেন আগামীতে আমরা এর থেকে বড় আরো কিছু করতে পারি। একবার সকলে মিলে জুলে সালাওয়াত বার মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। আচ্ছা, আমাদের স্টেজে মেহমান কবিগণ এসে গিয়েছেন, ওলামায়ে কেরাম এসে গিয়েছেন। মাওলানা গফুর সাহেবের কাছে আবেদন, আপনি স্টেজে চলে আসবেন, এবং আরো ওলামায়ে কেরাম এসেছেন, ইনশাআল্লাহ একের পরে এক সকলেই আসবেন। তবে আমার যে কথা ছিল এখানেই আমি শেষ করব। আজকের যে নেজামত করার দায়িত্ব জানার আছে, হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন আলী জনাব মাওলানা কিরতাস কারবালাই সাহেব, তিনি উপস্থিত হয়েছেন। আসুন আমি তানার এই দায়িত্ব তানার হাতে তুলে দেব। তবে তানারই কিছু কথা, সেটা নিয়েই আমি শুরু করব এবং তানাকে আমি দিয়ে দেব। मौलाना साहब, मैं चंद मिसरे हाजिर करता हूँ। चंद मिसरे के गैबत से उसको भेज जो दुलदुल सवार है। मौलाना का ये मिसरा है। যার দায়িত্ব আজকে নিজামতের, তানারই কবিতা আমি তুলে ধরলাম যে गैबत से उसको भेज जो दुलदुल सवार है, जिस पर नबी की पूरी शरीयत निसार है, वो जिसके पास मोहरे इमामत के साथ साथ हैदर का जुलजना एक जुल्फिकार है। अरे किरतास आ रही है सदा, मुतमईन रहो, ईसा को इस घड़ी का बड़ा इंतजार है। ईसा को इस घड़ी का बड़ा इंतजार है। अरे काबे की सिमत देख के सल्ले अला पढ़ो, काबे के सिमत देख कर सल्ले अला पढ़ो। इस राज का तो काबा फकत राजदार है। अरे पहला राज की
पहला वहीं से आया था, आखिर भी आएगा। पहला वहीं से आया था, आखिर भी आएगा। इस वास्ते जिदार में अब भी दरार है। इस वास्ते मौलाना मौसूफ का ही कलाम है, इस वास्ते जिदार में है। आइए हजरात, आपके सामने मैं इल्तिमास करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना किरतास करबलाई साहब तना इस्तिकबाल अर्जन ने बावाज़े बुलंद नारे सलावत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब। अच्छा, आप यहाँ आ सकते हैं, देखिए जगह है यहाँ पे, आगे जगह है, इधर आ गया है। मैंने तो मीर अनीस की जबान में बुला लिया, बताइए। ये मीर अनीस की मादरी जबान है। क्या दिल खुश किया है आपने। यकीन मानिए, रजब से शाबान का आधा महीना गुजर गया, मुझे इतनी खुशी किसी जगह पे नहीं हुई। आज गिराफ एजेंसी की कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूँ, जितनी खुशी आज यहाँ पर आकर हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कदम कदम पे आपकी गलियाँ 13 रजब हो रही हैं, आपके घर गदीर की खुशबुओं से महक रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है कि आज इसी जश्न के बाद कहीं ऐसा ना हो कि इमाम का ज़हूर हो जाए। हम तो दुआ करते हैं कि इसी जश्न के बाद इमाम आ जाएं। अच्छा ठीक है। अरे मुल साहब, आप हमसे कह सकते हो। अच्छा, यहाँ एक सलवात पढ़नी थी, आप भूल गए। थोड़ी थोड़ी तो जानते हैं ना। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे पहले तो यहाँ सब हैं बैठे हुए हैं। अच्छा, एक जुमले के लिए मैं 72 बन का मरसिया भूल गया इतनी देर में, तो कम से कम वो तो उसका हक अदा होना चाहिए। मैं आपसे, मोमिनीन है यहाँ पर, आप नारा वालो अच्छीन। हाँ बस ठीक है, इतने में तो हमारी समझ लिए मेहनत जो है उसूल हो गई कि हम यहाँ आ गए। राहुल, कई साल से आ रहे हो, हमें तुमने बताया भी नहीं कि ऐसे ऐसे खिले हुए चेहरे यहाँ पर रहते हैं कि अली का नाम आता है चेहरे गुलाब हो जाते हैं। गुलाब यहाँ होते हैं और मरहब के कब्रिस्तान में कांटे वहाँ चुभते हैं। तुमने हमें बताया ही नहीं, वरना हम यहाँ जरूर आते। इसलिए कि अजीब कैफियत है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपको देखने के बाद। यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमारे बड़े बैठे हुए हैं। अल्लाह हमारे इन बड़ों को सलामत रखे, हमारे बुजुर्गों को सलामत रखे। आप तो अनवार शाबानिया का ये जश्न मना रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे मत समझिए, ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, इनको ये मत समझिए कि ये इनका बचपना है। अली के खेमे में जो पैदा होता है वो बच्चा होता है, लेकिन उसमें बचपना नहीं होता है। और जो चीज़ें हमारे यहाँ हैं वो शायद किसी के यहाँ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उलमाए किराम का खैर मकदम करता हूँ और आपके पूरे इलाके के जो मोमिनीन हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक्स कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। क्योंकि हिंदी की गोद में जब उर्दू मुस्कुराती है तो इन्हीं शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो अगर बंगाली मुझे नहीं आती है तो कम से कम श्रेष्ठ हिंदी में तो मैं थोड़े 2-3 जुमले बोल सकता हूँ जिससे आप करीब हो जाएं। लेकिन कमाल है साहब, हम चाहे अरब चले जाएं, इराक चले जाएं, करबला चले जाएं, कि जहां वाले हमारी जबान नहीं जानते, उर्दू नहीं जानते, लेकिन जब हम वहां पर अली का कसीदा पढ़ते हैं तो हम उर्दू में पढ़ते हैं, वो अरबी में सुभान अल्लाह कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, आज मैं उर्दू में पढ़ूंगा, आप बंगाली में वाह वाह कहिएगा। आज का तो लुत्फ ही और होगा। आज यकीन मानिए मैं ये समझ रहा हूं कि आज शाबान मुकम्मल हो रहा है और मैं माह रमजानुल मुबारक के खेमे में जा रहा हूं। अब तो रोजा रखने का भी वक्त आ रहा है ना। आइए मैं यहीं से अपनी निजामत का आगाज करता हूं। ये बैच ये लगा दें ताकि ऐसा ना हो कि लगे कि किराए के बुलाए गए हैं। हाँ, ये हमारे अपने हैं। अच्छा देखिए, अगर आप नहीं मुस्कुराएंगे तो कौन मुस्कुराएगा। मैं एक बात कहता हूं हमेशा कि जब हमारे बच्चों का तबस्सुम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इससे ज़्यादा मोहब्बतें क्या मिलेंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये खुलूस है। आपने मोहब्बत के कासे में जो अपना दिल रख दिया है उससे बड़ी खुशी हो रही है। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जो सामने बैठे हुए हैं, ये जब मुस्कुराते हैं तो हुरमुला ज़ादों के कलेजे छलनी हो जाते हैं।
हुरमुला ज़ादों के, हुरमुला की औलादों के कलेजे फट जाते हैं। इन्हें बच्चा न समझिए। आइए मैं अपनी निजामत का आगाज करता हूँ। पर्दे गैब में जो बैठा हुआ है वो हमारा इमाम है। जो पर्दे गैब में बैठा हुआ है वो हमारा वारिस है। उठेगा पर्दा दिखेगा जलवा कि जब ज़हूरे इमाम होगा। मैंने कहा मैं उर्दू में पढ़ूंगा, आप बंगाली में भी दाद दे सकते हैं, बड़ा मजा आएगा, बहुत लुत्फ आएगा। इसलिए कि जिक्र अली में सबको मजा आता भी नहीं है। उसे मजा आएगा कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत है, अली की विलायत है। उठेगा पर्दा दिखेगा जलवा कि जब ज़हूरे इमाम होगा। अली के शियों की ईद होगी, सितम का किस्सा तमाम होगा। सलामत रहे, जीते रहे, आबाद रहे। उठेगा पर्दा दिखेगा जलवा कि जब ज़हूरे इमाम होगा। ऑपरेटर साहब जरा सा आवाज बढ़ाइए इसकी थोड़ी सी आवाज। कि उठेगा पर्दा दिखेगा जलवा कि जब ज़हूरे इमाम होगा। उठेगा पर्दा दिखेगा जलवा कि जब ज़हूरे इमाम होगा। अली के शियों की ईद होगी, सितम का किस्सा तमाम होगा। वो जिसने ज़हरा का दर जलाया उसे जलाने की धूम होगी। इमाम ज़ादे खुशी से झूमे, जलील इब्ने गुलाम होगा। इमाम ज़ादे हैदर। जीते रहिए, सलामत रहिए, आबाद रहिए। इतने बरकती मिसरे हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा। अब आइए जरा से मैं आपसे, अच्छा जो हमारे भाई वहां पे खड़े हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं वहां पे खड़े हुए। मौलाना ने भी उनसे कहा, मौलाना ने क्या आप यहाँ आ जाइए, फर्श वेला पर बैठ जाइए। हमारे नौजवान वहां पे जो खड़े हैं मैं उनको बुला रहा हूँ। और इंतजामिया कमेटी खास तौर पे इधर देखिए मेरी तरफ, ये जो इंतजामिया कमेटी है आपके यहाँ जो जवान, ये इतना बड़ा शामियाना आपने लगाया, ऐसा लग रहा है गदीर की छावनी में आ गया हूं। है इतना बड़ा शामियाना। भाई ज़ुहैर गवाही दो, यूपी में भी महफिलें होती हैं, बहुत बड़ा इंतजाम होता है, बहुत बड़ा। लेकिन साहब वहां पे जब महफिल होती है तो उर्दू ज्यादा समझने वाले लोग हैं, उर्दू ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, उर्दू ज्यादा लिखने वाले लोग हैं। लेकिन आप यहाँ पे उर्दू से ज्यादा वाकिफ नहीं है, अपनी जबान से वाकिफ हैं। लेकिन मजलिस और महफिल का सदका है कि यहाँ से जिस जबान में जिक्र अली किया जाए, कुछ समझ में आए ना आए लेकिन अली समझ में आता है। जब अली समझ में आ जाता है तो फिर दुनिया को हम भुला देते हैं। आइए, जो लोग हमसे कहते हैं कि हम सिर्फ अली अली करते हैं, हमें क्या पता कि नबी क्या है, नबी की शान क्या है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जैसा नबी हम जानते हैं वैसा नबी तो आप भी नहीं जानते। आप रिवायतों से नबी को ले लेते हैं, हम आयतों से पहले नबी को लेते हैं। और सुनिए, जैसे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलावत पढ़े मोहम्मद। अच्छा, थोड़ी देर आप मुझसे बातें करते रहिए, मैं आपसे बातें करता रहूं। सरकार आखिरी नबी, सरकारे खत्मी मर्तबत। लोग कहते हैं आप तो नबी का जिक्र ही नहीं करते, तो उनसे जाके कहिए कि हमसे ज्यादा कोई नबी का जिक्र करता ही नहीं है। इसलिए कि हम नबी को भी मानते हैं, नबी की आल को भी मानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नबी के बाल को माने और आल को छोड़ दें। वो, अरे मैं कुछ कह रहा हूं, वो और होते हैं कि जो नबी के बाल में उलझ के मर जाते हैं, लेकिन हम वो हैं कि जो बाल की भी तारीफ करते हैं, सुरमे की भी तारीफ करते हैं, आंखों की भी तारीफ करते हैं। एक जुमला कह दो, जो बाल तक पहुंचा वो मुसलमान रहा, जो आल तक पहुंचा वो सलमान बन गया। अब आप मुझे बताइए कि मारिफत होनी चाहिए और नबी को पहचानना चाहिए। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को एक बात बता दूं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारा यूथ बैठा हुआ है, हमारी न्यू जनरेशन बैठी हुई है, ये हमारे लिए बैकबोन की हैसियत रखती है, यानी रीढ़ की हड्डी। अगर वो टूट जाए तो कुछ बाकी नहीं रहता। हमारे नौजवानों, तुम्हें किरतास करबलाई की निजामत का सलाम, तुम्हें शायरी का सलाम, तुम्हें अदब का सलाम, तुम्हें जज्बात का सलाम, तुम्हें सलाम मोहब्बत। बड़ी दिली खुशी हो रही है तो मैं ये तबर्रुक देकर जा रहा हूं। अब अगर मुफ्त में बना हुआ मुफ्ती
मुफ्त में बना हुआ, मैं ठहर ठहर के बोलूंगा, मुफ्त में बना हुआ मुफ्ती अगर कोई बात तुमसे कहे कि तुम सिर्फ अली अली करते हो, तुम्हें नबी नबी करना नहीं आता, तो उन्हें ये वाकया सुना देना जो मैं बता रहा हूं। एक जगह मजलिस हो रही थी, मौलाना मिंबर पे थे और दो लोग बाहर बैठे हुए दुनिया की गुफ्तगू कर रहे थे, बातें कर रहे थे। बस इतने में मौलाना ने खुतबा खत्म किया, ऐसे ही माइक लगा हुआ था और मौलाना ने जैसे ही कहा जिक्रो अली इन इबादा, जैसे ही अली का नाम आया तो वो जो दोनों बैठे बातें कर रहे थे, ऐसा लगा किसी ने 1000 वॉट का करंट लगा दिया हो। आपने गौर ही नहीं फरमाया, 1000 वॉट का करंट लगा और वो फौरन चौंके। और एक जुमला कहूंगा, ऐसा लगे कि हम वाकई मैदान गदीर में आईने रोजे गदीर पाए जनाबे अमीर पे बैत करने के लिए जमा हुए हैं। मौला आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए, आपके इस जिक्र को कबूल फरमाए। जैसे ही अली का नाम आया, उलमा यहां बैठे हुए हैं, फौरन करंट लगा। एक ने दूसरे से कहा, देखा हम कहते थे ये शिया हैं, ये मौला, ये अली के मानने वाले हैं, ये नबी का जिक्र ही नहीं करते। तो वहीं पे एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत थी, उसने कहा ये मत कहो कि हम सिर्फ अली अली करते हैं, बल्कि हमारा शुक्रिया अदा करो कि तुम दुनिया भुलाए बैठे थे, हमारे मौलाना ने मिंबर से अली कहा, तुम्हें नबी याद आ गया। अरे आपने गौर ही नहीं फरमाया, हमारे मौलाना ने मिंबर से नबी कहा, अली कहा और तुम्हें नबी याद आ गया। इसका मतलब यह है कि हम अली का जिक्र इसलिए करते हैं ताकि लोग नबी को भी याद रखें। और ये अकीदे की छोटी छोटी खिड़कियां लेके आने वाले, ये अच्छा ये मन्नो सलवा है, ये तबर्रुक है, ये तबर्रुक है, ये क्या है, ये मन्नो सलवा है। आपको रूहानी रिस्क शोरा देंगे और मैं जो दे रहा हूं ये रूहानी रिस्क है। वो जो बांट रहे हैं वो क्या है, वो जिस्मानी रिस्क है, जिस्म को कुव्वत देगा। अब आइए मैं इन बच्चों को देखते हुए एक मतलब पढ़ दूं अतज बनारसी का। अतज बनारसी ने कहा था आज से करीब 15 साल पहले कि वो 6 महीने का बच्चा जो चल नहीं सकता, अब लगे कि जश्न शुरू हो गया, वो 6 महीने का बच्चा जो चल नहीं सकता, यजीद उससे भी बचकर निकल नहीं सकता है। अब आइए एक बात और करना है, भैया कैमरे पे ना जाए बस, हाँ ये देखे रहिएगा यार। वो 6 महीने का बच्चा जो चल नहीं सकता, सलामत रहें, सलामत रहें। देखिए चॉकलेट खाइएगा, किसी का शेर ना खाइएगा, हाँ पानी पीजिएगा, किसी की मनकबत ना पी जाइएगा। सुन बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा लगा, दिली खुशी हुई। मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के उलमा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको सलाम करता हूँ कि इन्होंने तबलीग का वो खेमा लगा रखा है यहाँ पे कि आपको बल्लिग की मंजिलों में रखे हुए हैं। और ऐसा लग रहा है कि रोजाना ऐलान विलायत अली हो रहा है और आप अली की विलायत का इकरार कर रहे हैं। अच्छा ये क्या बात है कि मैमना बोल रहा है, मैसरा खामोश है। अरे कुछ उर्दू के जुमले ना समझ में आए, हमारे बच्चों से कह रहा हूं, बुजुर्ग कम से कम हाथ उठा दे कि इसको कहते हैं जो दाहिने हाथ पे हो मैमना, राइट, जो बाएं हाथ पे हो वो क्या है, मैसरा। मैमना को मैसरा पर, मैसरा को मैमना पर, और दोनों को कल्बे लश्कर पे, ये कल्बे लश्कर है, दोनों को रखिए और चलिए मेरे साथ। राहुल यहां से तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ा रहा हूं और इस क्लिप को कम से कम पूरी दुनिया में आपको वायरल करना है। वैसे चलाएंगे आप, मौला का करम हुआ तो पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगी। जहां पे मैं निजामत कर रहा हूं ये कलकत्ता से, कोलकाता से ये 40 या 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इस इलाके को का नाम है 70 अच्छा चलिए 70, दो मैं अपनी तरफ से इजाफा करता हूं, 72 के सदक़े में 72 है और आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। आज वाकई ऐसा लगा आप तो छुपा हुआ खजाना थे। आज 13 साल के बाद मुझे पता चला 14 के सदक़े में कि यहाँ 13 रजब ऐसे भी मनाई जाती है, 15 शाबान ऐसे भी मनाई जाती है, मौला के जश्न ऐसे भी मनाया जाता है। मैं मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गिराफ एजेंसी का कैमरा मेरे सामने है जो यहाँ से लेके बैनुल हरमैन तक की गवाही दे सकता है, करबलाए मुअल्ला तक की गवाही दे सकता है। और ये हमारा भाई राहुल सिंह चौहान के जो मौला की विलायत के समंदर का होता वो शनावर
कि जिसने विलायत के मोती को चुना तो आज भी कोई कीमत लगाने वाला नहीं है। आज मौला ने वो इज्जत दी है कि हर साल अपने दरबार में मौला करबलाए मोहल्ला बुलाते हैं। अच्छे अच्छे अपनी दौलत लेके बैठे रह जाते हैं, कभी करबला नहीं जा पाते हैं, लेकिन जब मौला नवाजते हैं तो हर साल मौला अपने दरबार में बुलाते हैं। इसीलिए मैंने बहुत पहले कहा था कि करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे, करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे, रास्ता रोक न पाओगे बिछाकर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। जीते रहो, जीते रहो, सलामत रहो। करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे, रास्ता रोक न पाओगे बिछाकर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। अरे नाराए हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाए। नारे हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे। हाँ, एक माइक इनको भी दे दीजिए ताकि लगे कि गदीर का मैदान है। और आपको बता दूं, आपका नाम हलीम भाई, हमारे साथ हलीम भाई थे, सूरज भाई है? मैं तो सूरज लेके चल रहा था, सूरज वहां से यहां तक ले आया, हमारे सूरज साहब थे। और क्या कसम खुदा की, जो हम रास्ते में आ रहे थे, इन्होंने जो बातें आपके यहाँ की बताई हैं, यकीन मानिए। फिर जिस्म के खेमे में रूह करवट लेके नजफ करबला के बोसे ले रही थी। मैं आ रहा था यहाँ, लेकिन रूह कभी काजमैन जा रही थी, कभी गदीर के रुख कर रही थी, कभी करबला जा रही थी। क्यों? इसलिए कि जो विलायत का रिश्ता है वो दुनियावी रिश्ता नहीं है। जो विलायत का रिश्ता है वो हमारे यहाँ आलम अरवाह से है। यानी जब रूहों से इकरारे विलायत अली लिया जा रहा था, तब से हम आपसे रिश्ता, आपके और हमारा जो रिश्ता है वहां से है। इसीलिए तो बहुत से ऐसे हैं कि जो यहाँ पे आने के बाद उस खेमे से इस खेमे में, इस खेमे से बहुत से उस खेमे में चले जाते हैं। लेकिन ये सुनिए, जब तक के गैबत की बात कर रहा हूँ, ये उलमा की मौजूदगी में जितनी भी किताबें हैं आप उठा कर देखिए, कमालुद्दीन हो, उसके अलावा गैबत नौमानिया, जितनी किताबें हैं इमाम के हवाले से लिखी गई हैं, या शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने, या शेख याकूब कुलैनी रहमहुल्लाह ने, या अल्लामा मजलिसी ने, जिसने भी हमारे जितने भी उलमा गुजरे हैं उन्होंने किताबें लिखी हैं, तो उन्होंने ये जरूर लिखा दज्जाल पहले आएगा। अब आप मुझे बताइए, कुछ लोग कहते हैं इमाम कब आएंगे, तो उनसे कहिए अपने दज्जाल को तो पहले बुलाओ। जैसे ही दज्जाल नजर आएगा वैसे ही हमारा। और आज देखिए 56, मैं एक बात कह दूं, 56 बहनों का एक लौता भाई है। आज उसने भी बता दिया कि अली वाले कल भी जिंदा थे, अली वाले आज भी जिंदा हैं, और अली वाले हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं मौलाना का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने इतनी इज्जत अफजाई की है। और आइए, जश्न का बाकायदा तौर से आगाज हो चुका है, तो बस अपने छोटे छोटे बच्चे, मैं करबला मोहल्ला में था, बैनुल हरमैन, तो वहां मैंने ये बात कही थी कि एक साहब ने पूछ लिया कि आप तो अली का भी जिक्र 1400 साल से कर रहे हैं और 6 महीने का बच्चे का भी कर रहे हैं, तो 6 महीने के बच्चे की उम्र क्या होती है? हमने कहा मुफ्ती साहब आपको पता ही नहीं, फजाइल का उम्र से कोई लेना देना नहीं। बताइए मुझे, कोई लेना देना है? भाई बच्चा छोटा हो चाहे जो उम्र है, अरे अर्जु भाई कुछ कह गया मैं है। अब आप मुझे बताइए, अगर तलफ्फुज सही हो जाए तो और सही बात हो जाए, लेकिन कभी कभी तलफ्फुज गलत करके सही बात पहुंचा दी जाती है। जैसे सही किताबों में कभी कभी गलत बातें हम देख लेते हैं, और कभी कभी गलत किताबों में सही बातें देख लेते हैं। तो जरूरी नहीं है किसी को सही लिखा जाए तो वो गलत ना हो। सही जरूरी नहीं कि वो सही हो, लेकिन किसी को गलत लिख दिया जाए तो जरूरी नहीं है कि वो गलत हो। आरजू जलालपुरी बेहतरीन तरन्नुम का लहजा मेरे सामने, लेकिन उससे पहले मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ कासिद साहब, हमारे कासिद साहब, अच्छा डायरेक्ट आरजू साहब, अरे मेरी भी आरजू यही थी, आपने आरजू बराई खुदा की कसम। आइए मैं जरा सा आपका इम्तिहान यहाँ से लेना चाहता हूँ, बच्चों का, बुजुर्गों का नहीं, बुजुर्ग मुझसे बेहतर। मैं बंगाली, इस वक्त बंगाली जबान में बंगाली खेमे में बैठा हूँ,
बंगाल की जबान है, लेकिन खुदा की कसम ये गिराफ एजेंसी बताएगा कि अनीस की जबान को भी बंगाल में सुना जाता है। और आइए बताइए, आप बताइए कि कैसे सुना जाता है। जब मैं आ रहा था तो लोग कह रहे थे किरताज भाई आप वहां निजामत कैसे करेंगे? मैंने कहा क्यों? कहने लगे आप तो अनीस को पढ़ते हैं, आप तो दबीर को पढ़ते हैं। मैंने कहा देखिएगा गिराफ एजेंसी पे मैं यहाँ एक बंद पढ़ूंगा और ये मजमा कैसे इस्तकबाल करता है। सुनिए, जब वहां से रसूल आए, जब वहां से 18,000 आलमीन की सैर करके वापस आए तो वजू का पानी गिर रहा था, कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, और वो 18,000 आलमीन की सैर करके जब वापस आए हैं तो एक मोहतरमा ने पूछ लिया जिनका एहतराम हराम है। उलमा तो कम से कम दाद दें इन जुमलों की हैं? उन्होंने पूछ लिया क्या अली मेरे भैया चाय थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर मैं खुद इनके साथ पीऊंगा, अभी मैं जो जामे विलायत दे रहा हूँ मेरे साथ रहिए, इसलिए कि कल्ब अगर धड़कना छोड़ दे तो जिस्म बेजान हो जाता है। आप दिल की हैसियत रखते हैं, हार्ट है इस वक्त, इसलिए मैं आपसे दुआ चाहता हूँ। सुनिए, आप बताइए गिराफ एजेंसी को कि यहाँ पे ढालीपाड़ा में कैसे अनीस को सुना जाता है? अनीस को नहीं सुना जा रहा है, मौला की ज़बान, मौला की मिदत सुनी जा रही है। इसीलिए इलाका कोई हो लेकिन जबान सिर्फ एक होती है, या अज़ा की या विला की। आइए मैं विलायत की जबान में बात कर रहा हूँ। मीर अनीस ने कहा, किसी ने पूछ लिया कि क्या अली मिले थे मेराज पे? उन्होंने कहा ये मत पूछो कि मिले थे, बल्कि ये पूछो कि कहां कहां मिले थे। अगर आप मेरा साथ दें, का ये पूछो कि कहां मिले थे, कहां मिले थे, का पस्तो बलंदो बहरो बरो, मैं समझाऊंगा, मेरा इशारा देखेगा। पस्तो बलंदो बहरो बरो अंजुमो सहाब, अतला को नूरो जुल्मतो महताब आफ्ताब, कुर्सी यो अर्शो लोहो कलम मुकिफो हिजाब, तूबा कौसरो इरमो हूरो कसरो बाब। अरे किसके जगह ज़हूर खुदा के वली का था, और देखा तो हर मकाम पे जलवा अली का। किस किस जगह ज़हूर खुदा के वली का था, हैदरी देखा तो हर मकाम पे जलवा। अरे कौन कहता है? अनीस भी सुने जाएंगे, दबीर भी सुने जाएंगे। आइए, अरे वो हमारे लखनऊ का चौराहा मुफ्तीगंज, हमारे लखनऊ का चौराहा मुफ्तीगंज, सुनिए सबसे ज्यादा लखनऊ पढ़ा जाता है रसाई अदब में, सबसे ज्यादा। बेटा अब ये हमारी तरफ से, अरे बच्चों को अगर हम तोहफा नहीं देंगे तो किसे देंगे? हैं? बच्चों को तोहफा देना चाहिए। और सुनिए, बात आ गई है तो तबलीग की सुनते जाइए। 13 रजब आए, गदीर आए, अपने बच्चों को ईदी दिया कीजिए, अपने बच्चों के लिए नए कपड़े बनवाया कीजिए। अच्छा, जैसे ही माह रमजानुल मुबारक खत्म होता है, सारे मुसलमान मिलते हैं बाजारों में। अरे मुसलमान कसरत से मिले, लेकिन मोमिन की कसरत गदीर की ईद पे ज्यादा होनी चाहिए, 13 रजब की ईद पे ज्यादा होनी चाहिए। अपने बच्चों को गदीर और 13 रजब में इतनी ईदी दे दिया करो कि हर साल ये उस कैलेंडर में तारीख के ऊपर साइन कर दें कि ये गदीर कब आएगी, 18 जिलहिज कब आएगी, 13 रजब कब आएगी। ऐसे भी तबलीग होती है, अपने बच्चों तक बात पहुंचाओ। मैं लखनऊ में रह रहा हूं और लखनऊ की बुबास होनी चाहिए। अब आपकी जबान में बात करता हूं, हो सकता है कि और आपको मजा आए कि ये छोटे छोटे बच्चे कैसे कैसे जवाब देते हैं। सुनिए, अली पे भौंकने वालों से न डरा कीजिए। हाँ, इसलिए कि शम्स तबरेज ने कहा था, ये मेरी तरफ से ईदी रखो, मेरी तरफ से ईदी रखो। हाँ, बच्चों को मैं देता जाऊंगा ईदी, बच्चों के लिए ईदी है। सुनिए, वहां गदीर के चौराहे पे मुफ्तीगंज में एक साहब ने कहा, क्या है अली, क्या है अली, क्या? वहीं से एक बच्चा जा रहा था, उसने कहा अली के खिलाफ बोल रहा है। कहा खैबर से एक छलांग में खैबर तक आ गया, यसरब से एक छलांग में आए थे ना मौलाए कायनात, पलक झपकते ही। बस सानी मिसरा सुनिए, आरजू जलालपुरी आपके हाल हवाले क्या सुन रहे हैं आप, कि यसरब से एक छलांग में खैबर तक आ गया। अरे हैदर की बात छोड़, तू घोड़े की बात कर।
या सरफ से एक छलांग में खैबर तक आ गया। हैदर की बात छोड़, तू घोड़े की बात कर। तो हमारे यहाँ ऐसी ऐसी तज़मीनें की गई हैं, ऐसे ऐसे शेर। क्यों इतनी देर में बुलाया? दिल इस वक्त जो है बड़ा ऐसा लग रहा है कि किसी ने खंजर मार दिया हो। 13 बरस के बाद ऐसी जगह पर आया हूँ। आइए, मैं बड़ी अदब व एहतराम के साथ गुजारिशगुजार हूँ, आपका चहीता, आपका पसंदीदा, आपका जाना पहचाना नाम, मेरी भी आरजू वही है क्योंकि वो खुद आरजू हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मोहतरम आरजू जलालपुर, आप जानते हैं ये किस जमीन से ताल्लुक रखते हैं? जहाँ हर घर में डॉक्टर पाया जाता है, हर घर में आलिम पाया जाता है। और सुनिए, किसी से थोड़ी देर बात कर लीजिए, बात करके चले जाइए तो बाद में पता चलेगा जिससे बात कर रहे थे वो भी डॉक्टर ही था। पढ़े लिखे लोग इल्म की दुनिया के वो चांद सितारे जलालपुर में रहते हैं कि जिनकी तारीफ नहीं हो सकती। उसी इलाके और उसी जरखेज जमीन से ताल्लुक है मेरे भाई का। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इनके इस्तकबाल में आवाज़ बुलंद ना रहे, सलावात पढ़ें आप हज़रात। हाज़रीन महफिल, सलामुन अलैकुम। सबसे पहले आप तमाम मोमिन हज़रात की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ अंजुमन मुंतज़रान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का कि उन्होंने एक आलीशान जश्न का इनेकाद किया। परवरदिगार इन बच्चों को सलामत रखे जिन्होंने जश्न की बुनियाद रखी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जो दुआएं चाहता हूं जवानों से, देखिए कहना तो नहीं चाह रहा हूं, हम लोग बहुत दूर से मुसलसल सफर तय करते हुए हैं। जो हजरात वहां पीछे खड़े हैं, जगह काफी है, अगर मुनासिब हो तो आ जाइए, नहीं तो फिर मैं शुरू करूं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जो हो गया, जो हो गया है फातिमा ज़हरा के घर से दूर, ऐसे नहीं भाई, जो हो गया है फातिमा, वहां से भी दुआएं चाहिए। जो पीछे जो हो गया फातिमा ज़हरा के घर से दूर, होगा होगा बरोज़े हश्र नबी की नजर से दूर, होगा बरोज़े हश्र। दुआएं चाहता हूं नबी की नजर से दूर, कि जिन खासी लोगों हमें दरी ज़हरा ज़हरा जलाया था, अरे होंगे भला वो कैसे जहन्नम के शर से दूर होंगे। जियो जियो मिल के बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखे। गुरूर तीर, दुआएं चाहता हूं कि गुरूर तीर कपल भर, करताज भाई, ज़ुहैर भाई, कि गुरूर गुरूर तीर कपल भर में तोड़ सकती है
जनाबे सकीना बिन्त हुसैन के हवाले से शेर पेश कर रहा हूँ, जनाबे खलील जलालपुरी का कलाम भी पेश कर रहा हूँ कि गुरूर तीर कपल भर में तोड़ सकती है, अरे अली की पोती कटेगा फिर जोड़ सकती है, अली की पोती कटेगा फिर जोड़ सकती है, अगरचे अपने पे आ जाए तो शाम कूफा क्या। दुआएं चाहता हूँ दास भाई, अगरचे अपने पे आ जाए तो शाम कूफा का, शाम कूफा क्या, ये कायनात का दामन निचोड़ सकती है, ये कायनात का दामन निचोड़ सकती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक मतला चंद शेर ज़ुहैर भाई, एक मतला चंद शेर पेश कर रहा हूँ, दुआएं चाहता हूँ आखिरी मजमे से। हुसैन भाई, शाहरुख भाई, जो बुजुर्ग पीछे बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, होठों को चूम चूम के दुआएं चाहता हूँ, होठों 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 को चूम चूम के कहती अजान है, होठों 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 को चूम चूम के, आखिरी मजमे से दुआ चाहता हूँ इस मिसरे पे, होठों को चूम चूम के कहती अजान है, होठों होठों को चूम, करताज भाई, ज़ुहैर भाई, अजीज भाई, होठों को चूम चूम के कहती अजान है, होठों को चूम चूम के कहती अजान है, अकबर तुम्हारे मुंह में नबी की जुबान है। जियो भैया, पीछे वाले भी थोड़ा जाग के सुनिए। होठों, मौला सलामत रखे, शुक्रिया भैया, मुझे वाज भी दुआएं चाहिए। होठों 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 को चूम चूम के, होठों होठों को चूम चूम के, होठों होठों को चूम चूम के कहती अजान है, अकबर तुम्हारे मुंह में नबी की जुबान है। और इस शेर पे आखिरी मजमे से दुआ चाहता हूं, अगर अच्छा होगा तो मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा और दुआ दे दीजिएगा। होठों को चूम चूम के अजान है, ज़ुहैर भाई, होठों को चूम चूम, खुसूसी तवज्जो चाहता हूं मैं, होठों को चूम चूम के कहती अजान है, अरे रखा है मेरे घर में, रखा है मेरे घर में अलम और ताबिया, ऐसे नहीं भाई, रखा है मेरे घर में अलम और ताबिया, जिब्रील जिब्रील पूछते हैं ये किसका मकान है। मिलके बोलिए, मिलके बोलिए।
बहुत बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखे। होठों 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 को चुम चुम के, जनाबे ज़ैगम जलालपुरी का कलाम है, जनाबे ज़ैगम जलालपुरी का कलाम पेश कर रहा हूँ। होठों होठों को चुम चुम के कहती अज़ान है, होठों को चुम, होठों होठों को चूम चूम के कहती अज़ान है, अकबर तुम्हारे मुंह में नबी की जुबान है। और ये भी शेर दुआएं चाहता हूं आखिरी बनने से। अकबर सरकार आप आगे आ जाइए, मेरे लिए खुशी है, थोड़ा आप आगे आ जाइए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। होठों को चूम चूम, बहुत बहुत शुक्रिया कि एक मेरी नहीफ सी आवाज पे आप यहां तक तशरीफ लाए। सलवार पर इनके इस्तकबाल में एक बावाज़ बुलंद नारे सलवार। बहुत बहुत शुक्रिया। होठों को चूम चूम के, होठों होठों को चूम चूम के कहती अज़ान है, अकबर भैया चोट लग जाएगी, अकबर तुम बांटिए, तबर्रुक बांटिए, ऐसे मत मारिए। अकबर तुम्हारे मुंह में, अकबर तुम्हारे मुंह में नबी की जुबान है। अरे रखो है मेरे घर में अलम और ताबिया, ऐसे नहीं, रखो है मेरे घर में अलम और ताबिया। जिब्रील पूछते हैं ये किसका मकान है, जिब्रील 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 पूछते हैं ये किसका मकान है। और ये शेर जवानों की नजर कर रहा हूं जनाबे मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम के हवाले से, उन जवानों के लिए दुआ करता हूं मौला इनको सलामत रखे। शेर पेश कर रहा हूं, अच्छा होगा तो जनाबे ज़ैगम जलालपुरी के हक में दुआ कर दीजिएगा कि होठों को चूम चूम के कहती अज़ान है। अरे अकबर ने रोक रखी है, अरे अकबर ने रोक रखी है रफ्तार उम्र की। शेर सुनिए, अकबर ने रोक रखी है रफ्तार उम्र की। सदियां गुजर गई हैं मगर, सदियां गुजर गई हैं मगर नौजवान है। सदियां, बहुत बहुत शुक्रिया। सदियां 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 गुजर, सदियां गुजर गई हैं मगर नौजवान है। और ये भी शेर बुजुर्गों से दुआएं चाहते हुए पेश कर रहा हूं कि चेहरे पे झुर्रियां हैं, चेहरे पे झुर्रियां ना कमर है झुकी हुई। दुआएं चाहता हूं, चेहरे 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 पे झुर्रियां ना कमर है झुकी हुई। चेहरे पे झुर्रियां ना कमर है, हुसैन भाई, चेहरे पे झुर्रियां ना कमर है झुकी हुई। 14 सदी के बाद भी अकबर जवान है। जवानों के लिए शेर पेश कर रहा हूं भाई।
बहुत शुक्रिया भैया। पीछे वाले भी हाथ उठा के सुभान अल्लाह जरूर कह दिया करिए शेर पे। होठो 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 को चूम चूम के। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, माशाअल्लाह, मौला तुम्हारे जज्बे को सलामत रखे। होठो 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 को चूम चूम के कहती ज़ुहैर भाई, कहती अजान है होठों को चूम चूम के, कहती अजान है अकबर तुम्हारे मुंह में नबी की जुबान है। और शेर सुनिए, अकबर तुम, दुआएं चाहता हूं आप बुजुर्गों से, अकबर तुम्हारे मुंह में नबी की, फिर कहिए मिलके कहिए, अकबर तुम्हारे मुंह में नबी की, जज़ाकल्लाह, अकबर तुम्हारे मुंह में नबी की, कहती है सारी दुनिया ज़मींदार करबला, अल्लाह का करम है ये अकबर की शान है। बहुत को सुभान अल्लाह। नारे हैदरी हैदरी। होठों को चूम चूम के, होठों को चूम चूम के, मौला इन जवानों को सलामत रखे, इन बुजुर्गों को सलामत रखे। क्या जोश है माशाअल्लाह। होठों को चूम चूम के कहती कहती अजान है अकबर 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 तुम्हारे मुंह में नबी की, आपात का आलम है मेरे दोष पर मगर, सुनिए, आपात का आलम है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुभान अल्लाह, बहुत को। होठों को चूम चूम के, भैया मेरे बड़े भाई, होठों हो, आपकी नजर कर रहा हूं, मेरी तरफ देखिए, होठों को चूम चूम के कहती अजान है अकबर तुम्हारे नबी की, अब्बास का आलम है मेरे दोष पर मगर, सुनिए, अब्बास का आलम है मेरे दोष पर मगर, लगता है मेरे पाँव तले आसमान है। सुभान अल्लाह। होठों को चूम चूम के, होठों को चूम, आ जाओ होठों को चूम चूम, मिलके कहिएगा, होठों को चूम चूम के। इस बच्चे के लिए, इसकी सलामती के लिए एक बाबा बुलंद नारे सलवात। होठों को चूम चूम के अजान है अकबर तुम्हारे मुंह में नबी की जुबान, करबो बला से थकी गई जंजीर शाम तक। चौथे इमाम के हवाले से, करबो बला से थकी गई जंजीर शाम तक।
बहुत खूब। नारे हैदरी हैदरी। होठों को चूम चूम के। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, माशाल्लाह। देखिए मैं नहीं कहूंगा, करताज भाई ने सारी चीजें यहाँ के लिए कह दिया है। मैं तो यहाँ आ चुका हूँ। क्या खुलूस है और माशाल्लाह क्या जोश है। मौला सलामत रखे, कहने की जरूरत नहीं है, सब दिख रहा है। होठों 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 होठों, मौला सलामत रखे या अली मदद। होठों होठों को चूम चूम के कहती अजान है। होठों को चूम चूम के कहती अजान है। होठों को चूम चूम के कहती अजान है। अकबर तुम्हारे मुख में नबी की। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जीती जागती बाबा से बुलंद नारे सलवात। एक मतलब सन भाई चंद शेर पेश कर रहा हूं। आप लोग थके तो नहीं ना अभी? नहीं, पीछे वाले से आप वहां से हाथ नहीं उठ रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ज्यादा हाथ उठाने के लिए नहीं যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের অনুরোধ করব বসে যান। জায়গা বহু আছে, বসে যান। যত লোক দাঁড়িয়ে আছে তাদের অনুরোধ করছি আপনারা বসে যান, দাঁড়িয়ে না থেকে বসে যান। দাঁড়িয়ে আছে ভালো লাগছে না। আর যদি দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে আপনাদেরই মাঝখানে আমি এসে দাঁড়িয়ে যাই, তাহলে ওটাই ভালো হবে। नारे सलवात। हजरात एक मतलब चंद शेर पेश कर रहा हूँ। करताज भाई, जुहैर भाई, अजीज भाई, सरकार देखिएगा। अजान सुबह अजान सुबह अभी कोई देने वाला है। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। अजाने सुबह अजाने सुबह जाके सुनिए। अजाने सुबह अभी कोई देने वाला है। अजाने सुबह अभी कोई देने वाला है। अरे अभी किसी का मुक़द्दर संवरने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना माशाल्लाह। अज़ान सुबह अभी कोई देने वाला है। अरे सकीना भाई, शेर सुनिए। सकीना भाई तेरा ऐसे हंसने वाला है। दुआ चाहता हूँ कि सकीना भाई, हुसैन भाई, सकीना भाई तेरा ऐसे हंसने वाला है। कि हुरमुला, अरे कि हुरमुला का जनाजा निकलने वाला। वाह सुभान अल्लाह। अज़ान अज़ान सुबह, मौला सलामत रखे। अज़ान सुबह अभी कोई देने वाला है। और ये भी शेर अच्छा होगा तो जनाब खलील जलालपुरी के में दुआ कर दीजिएगा कि यजीदी से शेर सुनिए। कि
कि यजीदी से बड़ी हार तेरी क्या होगी। आखिरी मन में से दुआ चाहता हूं किरताज भाई, शेर सुनिए कि यजीदी से बड़ी हार, उधर से भी यजीदी से बड़ी हार तेरी क्या होगी। अरे अज़ा का फर्श तेरे घर में बिछने वाला है। अज़ाने, बहुत बहुत शुक्रिया। अज़ाने, थक गए आप लोग। अज़ाने सुबह अभी कोई देने वाला है। और ये भी शेर अभी जगाएंगे भाई आके कि अली की बेटी के लहजे मिठार है इतनी, कि अली की बेटी के लहजे मिठार है इतनी। अरे कला अरे गला यज़ीद का लफ्ज़ों से कटने वाला है। अज़ान सुबह अभी कोई देने वाला है। कि अरे यज़ीद बहुत अच्छा पढ़ रहा सरकार के दर दर सुनिए, यजीद हार के दर दर भटकने वाला है। शेर सुनिए, यजीद आखिरी मन से यजीद हार के दर दर भटकने वाला है। अरे हुसैन जी के कांधों पे चलने वाला है। अज़ान मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। अज़ान सुबह अभी कोई देने वाला है। अज़ान सुबह अभी कोई देने वाला है। अरे कहा ये शेर सुनिए, कहा ये शहने, कहा ये शहने कयामत को रोक ले ज़ैनब। शेर सुनिए, कहा ये शहने किरताज भाई, ज़ुहैर भाई, कहा ये शहने कयामत को रोक ले ज़ैनब। अरे इरादा शेरी का करवट बदलने वाला। सुभान अल्लाह, बहुत तो हैदरी 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 खैबरी बूजरी कंबरी। सलामत रहिए, आबाद रहिए। अच्छा, आरजू साहब को अल्लाह सलामत रखे कि जनाब अली अकबर का कलाम पढ़ा इन्होंने, और जनाब अली अकबर के कलाम पर नौजवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से दाद से नवाजा। अरे वो पटाखों की आवाज़ें ना सुनिए, वो फूट फूट के दाद दे रहे हैं, आप टूट टूट के दाद दीजिए। वो अपनी जबान में सुभान अल्लाह कह रहे हैं, आप अपनी जबान में सुभान अल्लाह कहिए। ये देख रहे हैं आप खुदा। ये एक हार मुझे दे दो, एक हार मुझे।
दिखा दूं इस वक्त भाई राहुल हमारा सामने है, और बार बार मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इस आदमी ने मुझे बताया नहीं, इस इंसान ने मुझे बताया नहीं, इस शख्सियत ने मुझे बताया नहीं कि ऐसे भी लोग यहाँ पे बार बार क्या करूं समझ ही में नहीं आ रहा है, कौन से मिसरे पढ़ूं, बार बार है याद ही नहीं कर पा रहा हूँ है नहीं, मैं इसलिए क्योंकि आपकी फरमाइशें इतनी हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। कल शब को ख्वाब में ए मेरे दौर पुरफितन, ये हार सिर्फ इसलिए कि इसको हार न समझिए, बल्कि ये जीत का हार है। ये हार नहीं है बल्कि जीत का हार है, ये गले का हार है। देखिए गले में हार पड़ जाए कोई गले ना पड़े। और ये हमारे जो भाई बैठे हुए हैं, आरजू ने क्या अच्छा पढ़ा है, मैं सलाम करता हूँ कि आरजू पढ़ रहे थे, इनकी कुव्वत को, इनके जोश और बलबले को सलाम। अच्छा जो लोग वहां से आंखें चार करके मुझको देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस बॉर्डर के पार नहीं जाने देंगे, लेकिन मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ अगर मैं आपकी नजरों से गुजर के पलकों पे ठहर के दिल में ना उतर गया तो फिर मेरे आने का फायदा क्या है। कल शब को ख्वाब में ए मेरे दौर पुरफितन, सारी फरमाइशें मैं पूरी करूंगा। कल शब को ख्वाब में ए मेरे दौर पुरफितन, देखी यजीदियत के कबीले की एक दुल्हन। फरमाइश है आपकी तो मैं पढ़ रहा हूं। कल शब को ख्वाब में ए मेरे दौर पुरफितन, देखी यजीदियत के कबीले की एक दुल्हन, आंखों में जुल्म जौर के काजल की डोरियां। सलामत रहे, क्या सुनते हैं आप। आंखों में जुल्म जौर के काजल की डोरियां, माथा मुनाफिकत की तपिश से शिकन शिकन, माथा मुनाफिकत की तपिश से शिकन शिकन, गर्दन में तौके लानत परवरदिगार था, गर्दन में तौके लानत परवरदिगार था, तन पर जहान भर की हिकारत का पैरहन, तन पर जहान भर की हिकारत। भैया जरूरी नहीं है कि हाँ, जहां समझ लो तन कहा, मन कहा, छन कहा, बन कहा है तो वहीं तो समझ लो तुम्हें दाद देनी है कि कल शब को ख्वाब में ए मेरे दौर पुरफितन, देखी यजीदियत के कबीले की एक दुल्हन, गर्दन में तौके लानत परवरदिगार था, तन पर जहान भर की हिकारत का पैरहन, आंखों में जुल्म जौर के काजल की डोरियां, माथा मुनाफिकत की तपिश से शिकन शिकन, दिखती थी दूर से ही वो अबू जहल की बहू। अरे सलाम, दिखती थी दूर से ही वो अबू जहल की बहू, सींचा गया था शोले नमरूद से बदन। अब आपका शेर जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं, अब आप ऐसा इस्तकबाल कीजिए कि वाकई पूरी दुनिया देखे कि आज इस शेर का इस्तकबाल खालीपाड़ा में किस तरीके से किया गया कि आंखों में जुल्म जौर के काजल की डोरियां, माथा मुनाफिकत की तपिश से शिकन शिकन, गुजरी जो पास से अबू सुफियान की कनीज, मैंने कहा ये कौन है बदकारो बदचलन, दिखती थी दूर से कि वो अबू जहल की बहू, सींचा गया था शोले नमरूद से बदन, होठों पर मनकबत थी सऊदो यहूद की, होठों पर मनकबत थी सऊदो यहूद की, बाहों में डॉलरों की झना झन झनन झना। सलामत रहो, जीते रहो, या अली सलामत रहो। सुनिए, होठों पर मनकबत थी सऊदो यहूद की, पाँवों में डॉलरों की जना झन जनन जनन। अच्छा ये तो मैंने पढ़ दिया, जना झन जनन जनन है। अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनका एक ख्वाब था जो उन्होंने नज्म किया। बच्चों, एक महफिल यहाँ होती है, दूसरी वहां शुरू कर देते हो
हैं? महफिल एक ही होनी चाहिए, एक जगह हो रही है। बच्चों तुम सलामत रहो, तुम्हें तो कुछ कहने का की ताकत नहीं है मेरे अंदर कि मैं ये कह दूं कि तुम ऐसे बैठो वैसे बैठो। तुम इस वक्त उस खेमे में ऐसे बैठे हुए हो कि मेरा दिल गदीर हो रहा है, मेरी जबान, मेरा लहजा तेरा रजब हो रहा है, मेरी जबान तेरा रजब हो रही है, लहजा तेरा रजब हो रहा है। इसलिए कि बहुत सी जगहों पर देखिए, रास्ता अगर आसान हो और चले जाना ये कमाल नहीं है, रास्तों में कांटे बिछे हों और मंजिल तक पहुंच जाना ये कमाल है। रास्ते में कांटे बिछे हों और मंजिल तक पहुंच जाना ये कमाल की मंजिल है। अच्छा, वो वाले जो वहां पे बैठे हुए हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक का नाम पुकारूं तो वक्त हो जाएगा। आप नहीं जानते क्या? मैं उन लोगों को जानता हूं, किसी का नाम शब्बीर है, किसी का नाम अहमद है, किसी का नाम अली है, किसी का नाम हुसैन है। अच्छा, ये सारे नाम अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसलिए भी याद हैं, इसीलिए कहता भी हूँ, उलमा बैठे हुए हैं ये मेरी तायीद करें कि कम से कम जिस तरीके से हदीस किस्सा पढ़ते हो, दुआए कुमैल पढ़ते हो, वैसे ही रोजाना नमाज के बाद ज़ियारत आशूरा पढ़ा करो, ताकि उसमें कुछ नाम तुम्हें नजर आए। अपने बच्चों को बताओ ताकि पता तो चले कि ये वो नाम हैं जो हमारे यहाँ रखे नहीं जाते हैं। कम से कम कातिलों के नाम तो तुम्हें याद हो जाएंगे। तो इसलिए भी हमें बहुत सी चीज पढ़ाएं। और एक मैसेज, जब मैं आया हूं तो एक पैगाम भी लेते जाइए। सिर्फ जश्न मनाइए नहीं, जश्न को अपनी रूह में उतारिए, जश्न को अपनी रूह में उतार लीजिए। इसलिए कि जो सूरत से सीरत तक चला गया वो कमाल की मंजिल तक पहुंच जाता है। अब आइए, आरजू साहब ने क्या कलाम पेश किया है, कलाम को देख के मैं सलाम करता हूं। अच्छा, आप कहने पे तो सलवात पढ़ते हैं, बगैर कहे पढ़ देते हैं तो हुस्न में 4 चांद लग जाते हैं। सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद पर किसे? अच्छा, बस बैरूनी है, हमारे बाहर के हैं, अबरार भाई हैं। चलिए ठीक है, अबरार भाई यहाँ पे मौजूद हैं। क्या भाई राहुल, हाथ तो मिलाते जाओ, मुसाफिया तो कर लो, मौला तुम्हें सलामत रखें। ये करबला का साथ है, वहाँ हम लोग हैं। अच्छा हाँ, मैं हार पहना दूं। भाई राहुल आओ, मैं इस्तकबाल कर दूं। भाई राहुल सिंह चौहान का कम से कम नारा ही लगा दीजिए, सलावत पढ़ दीजिए मिलके। हैदरी सलामत रहे, जीते रहे, आबाद रहे। जुहैर तैयार हो गए। अबरार भाई मौजूद हैं। अबरार भाई, अच्छा नहीं बुलाइए, घबराइए नहीं, मैं अबरार भाई की जगह पे भी पढ़ूंगा। जब मैं आया हूँ तो इस वक्त मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, बैठने के लिए नहीं आया हूँ। अब देखिए, एक मिसाल, बच्चों तुम्हें तो समझा के पढ़ाना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं क्या करूँ, मेरे हाफिजे की बेयाद में वो है जो नहीं होना चाहिए इस वक्त, और जो है वही पहुंचाऊंगा। एक मिसरा हुआ हमारे यहाँ लखनऊ में, मिसरा हुआ उलट के पलट के उलट के। अरे पहले मिसरा समझिए, क्या मिसरा हुआ? मिसरा हुआ, हमारे बुजुर्ग बैठे, मिसरा हुआ उलट के पलट के। कासिद साहब, क्या बंगाली में आपने कसीदा पढ़ा है? मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन समझ के दाद दे रहा था। अली रिकॉर्ड करो भाई राहुल। अरे बाप, हाय अच्छा आ गए भाई। कासिद साहब क्या आप पढ़ रहे थे? ऐसा लग रहा था कि मैं जोश का कसीदा सुन रहा हूँ या अरबी में सुन रहा हूँ, लेकिन सुनिए, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हमारे कासिद भाई आ जाए यहाँ। कासिद भाई की मैं तारीफ करता हूँ, उलमा की इजाजत के साथ। नहीं बस रुक जाइए। ये हमारे कासिद साहब हैं जो बंगाली में ये कसीदा पढ़ रहे थे। कासिद भाई बंगाली में कसीदा पढ़ रहे थे, और बंगाली में कसीदा जब इन्होंने पढ़ा तो हमारे उलमा यहाँ पर तशरीफ फरमा है, बैठे हुए हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे बुजुर्गों को अल्लाह सलामत रखे, कम से कम अपनी जबान में ये कसीदा पढ़ रहे हैं और अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। अब मैं इनसे रुखसत चाहूंगा कि वहां पे जाके बैठें और मैं इनको दुआएं दे रहा हूँ। एक मतलब मैं एक मिसरा पढ़ता हूँ, उलट के पलट
उलट के, मैं यहीं बैठ जाए, सुनिए, उलट के पलट के मैं तब देखें, ये मिसरा हुआ था लखनऊ में, उलट के पलट के उलट के। तो एक साहब ने कहा ये कोई मिसरा है? कहने लगे हाँ है। कहा कैसे? कहा जब अली वाला कसीदा कहता है तो किसी मिसरे को अधूरा नहीं छोड़ता, मुकम्मल करता है। अगर पहुंच गया तो अपनी जगह पे नहीं बैठे रहोगे। उलट के पलट के उलट के। अली वाले का मिसरा सही है, का तज़मीन कीजिए। का नबूवत के जलवे इमामत में देखो, उलट के पलट के उलट। ये एक तज़मीन अबरार भाई यही है। हाँ, नबूवत के जलवे इमामत में देखो, उलट के पलट के उलट के। अबरार भाई आ गए। नबूवत के जलवे इमामत में देखो, उलट के पलट के उलट के। या एक मिसरा हुआ कि मैदाने जंग में कभी हैदर नहीं रुके है। मिसरा क्या था? मैदाने जंग में कभी हैदर नहीं रुके। अली वाले ने कहा मिसरा सही है। कहा कैसे? कहा फिर पढ़ो मिसरा। कहा मैदाने जंग में कभी हैदर नहीं रुके। कहा सही है। कहा कैसे? कहा बादे जिहाद माले गनीमत के वास्ते, बादे जिहाद माले गनीमत के वास्ते मैदाने जंग में कभी हैदर नहीं रुके। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ, आरजू जलालपुरी के बेहतरीन कलाम के बाद मैं मुल्तमिस हूँ, गुजार हूँ मोहतरम अबरार साहब से कि वो आए और अपने कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। आपसे गुजारिश है मिलजुल के आवाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमा दें। হাজরানে মাহফিল সালামুন আলাইকুম। সর্বপ্রথম আজ এই নুরানি জশ্ন আপনাদের সবাইকে মোবারকবাদ জানাই এবং এখান থেকে চারটি লাইন ইনশাআল্লাহ ইমামে জামানার হওয়ালে ইনশাআল্লাহ শুনবেন। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु के हाजिर कर रहा हूँ। मुफ्ती तू एक दिन देखिबे যখন সে আসিবে, মুফতি তুই একদিন দেখিবি যখন সে আসিবে, আমার মওলার সিনাতে আমার মওলার বুকেতে ও মা তো মেরি দাগ হবে, আমার মওলার বুকেতে ও মা তো মেরি দাগ হবে। ইনশাআল্লাহ শুনবেন कि इमाम मेहदी इमाम मेहदी আসিবে শুধুই দুইটি কারণে, ইমাম মেহদি আসিবে শুধুই দুইটি কারণে, আমাদের ঈদ হবে আর তোমাদের 40 হবে। নারে হায়দারি তোমাদের লব্বैक या मेहदी। बावाज़े बुलंदतर सलवात और एखान থেকে इंशाल्लाह के इंशाल्लाह दुई तीन चार बार इंशाल्लाह सुनবেন के आलीर दुश्मन रालीर नामे, आलीर दुश्मन रालीर नामे জ্বলতে থাকিবে জ্বলতে থাকিবে। सुभान अल्लाह। भैया आपका कलम नकल करके उसी में बंगाली में पढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह सुनिएगा। आलीर दुश्मन रालीर नामे, बहुत बहुत शुक्रिया।
কে আলীর দুশ্মন আলীর নামে জ্বলতে থাকিবে জ্বলতে থাকিবে হাত নিজের ঘরে বসে বসে ওরা মলতে থাকিবে মলতে থাকিবে ইনশাআল্লাহ একটি পেগাম যে আপনারা যখনই ঘর থেকে বার হবেন নাদে আলী অবশ্যই পড়বেন। তো শায়ের কি বলছেন ইনশাআল্লাহ শুনবেন। ও মাসিয়া যখনই বার হবে ও মাসিয়া যখনই বার হবে নাদে আলী শোন ওয়াজিবি পড়িবে ও মাসিয়া যখনই বার হবে নাদে আলী শোন ওয়াজিবি পড়িবে কেন রাস্তায় যত মুসিবত থাকিবে সরতে থাকিবে সরতে থাকিবে वाह 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 बहुत नारे রাস্তায় যত মুসিবত থাকিবে সরতে থাকিবে সরতে থাকিবে ইনশাআল্লাহ শুনবেন কে শোনো ও মুফতি তোমরা শোনো শোনো ও মুফতি তোমরা শোনো আরে এখনো সময় আছে আলীকে মানো हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ইয়া अली শোনো ও মুফতি তোমরা শোনো এখনো সময় আছে আলীকে মানো কেন না হলে কবরে ফেরেশতা এসে মারতে থাকিবে মারতে থাকিবে वाह 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 না सुभान अल्लाह কবরে ফেরেশতা শুকরিয়া हैदरी यार मरते থাকিবে শোনো ও মুফতি তোমরা শোনো এখনো সময় আছে আলীকে মানো না হলে কবরে ফেরেশতা এসে মারতে থাকিবে মারতে থাকিবে और এই বান ইনশাআল্লাহ আপনারা যে যেখানে শুনছেন ইনশাআল্লাহ বতরে খা হাসরের দিনে বলিবে খোদা জাহেরার দুশমন আছে যারা যারা হাসরের দিনে বলিবে খোদা জাহেরার দুশমন আছে যারা যারা আরে জাহান্নামে এদের নিয়ে যাও ফেরেশতা टानते टानते हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हैदर 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 হাসরের দিনে বলিবে খোদা জাহেরার
দুশ্মন আছে যারা যারা, আরে জাহান্নামে এদের নিয়ে যাও ফেরেশতা। কিভাবে নিয়ে যাবে? কলার ধরে টানিতে 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 টানিতে। এবার মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি আর ইনশাআল্লাহ শুনবেন দু চার লাইন। কে এটা সঠিক থাকবে তারা তারা তারা, এটা সঠিক থাকবে তারা, কোন দোজাখির সাথে। নিজের নিজের ইমামের সাথে ডাকবে না তো শায়ের বলছে কে এটা সঠিক থাকবে তারা, কোন দোজাখির সাথে। আরে আমরা আমরা থাকিব হাসরে, আমরা থাকিব হাসরে মাওলা আলীর সাথে। সুবহান আল্লাহ। বাত হায়দার 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 হায়দার। এটা সঠিক থাকবে তারা, কোন দোজাখির সাথে। আল্লাহ আরো বেশি হায়াত দিক ইনশাআল্লাহ। কে এটা সঠিক থাকবে তারা, কোন দোজাখির সাথে। আরে আমরা থাকিব হাসরে মাওলা আলীর সাথে। আর যারা কারবালা কি বিদআত বলে, কারবালায় যাবাকে বিদআত বলে, ইনশাআল্লাহ শুনবেন বাপি ভাই, ইনশাআল্লাহ শুনবেন। কে কারবো বেলায় গিয়ে দেখো তোমরা নিজের চোখে, কারবো বেলায় গিয়ে দেখো তোমরা নিজের চোখে। আরে জান্নাত জান্নাত নিজে হেঁটে চলে, আরে জান্নাত নিজে হেঁটে চলে সব মাতামির সাথে। জান্নাত নিজে হেঁটে হায়দে হায়দে হায়দে। কি হবে ভাই দুনিয়াদারি পেয়েছি মোরা আজাদারি, ফেলো চোখেরই পানি, করো তোমরা সর্বজানি, পাবে জান্নাতের বাগান বাড়ি। এটা সঠিক থাকবে তারা, কোন দোজাখির সাথে। আমরা থাকিব হাসরে মাওলা আলীর সাথে। ইনশাআল্লাহ বতরে খাস যারা এখনো বলেননি ইনশাআল্লাহ অবশ্যই বলবেন। কে ফতোয়া লাগাই যারা যারা, फतवा लगाई जरा जरा। 1 2 3 जो है ना बंगाली में 1 2 3 बोले इंशाल्लाह। के फतवा लगाई जरा जरा गमे शाबिरेर ऊपर, फतवा लगाई जरा जरा गमे शाबिरेर ऊपर। अरे दोजा 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 के जोली बेतरा, अरे दोजा के जोली बेतरा एक दुई दिনের সাথে। फतवा लगाए जरा जरा गमे शाबिरेर ऊपर। अरे दोजा के जोली बेतरा एक दुई তিনের সাথে।
कि ज़ाहिर यार माशाल्लाह क्या कहने अब्बास के परचम को उठा ले तो बात कर, दिल से अली को अपना बना ले तो बात कर। ओए मेरी मदद की आ गई, 12 के 12 तू 3 में से एक को बुला ले। क्या कहने बाबा। नारे कर हाय कर हे 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 हाय फतवा लगाए जरा जरा गमेशा बिरे रूपर अरे दोजा के जोलिबे तारा एक दुई তিনের সাথে আর ইনশাআল্লাহ যারা বাইরে আছে হ্যাঁ যারা এখন বাইরে ঘোরাফেরা করছে ইনশাআল্লাহ শুনবেন कि ज़ाहिरार बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ज़ाहिरार दुआर छाया तले थकबे तारा सबाई ज़ाहिरार दुआर छाया तले थकबे तारा सबाई अरे महफिल आशिबे जरा अरे महफिल आशिबे जरा हुब्बे अलीर साथे महफिल आशिबे जरा हुब्बे अलीर साथे और बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरार दुआर छाया तले थकबे तारा सबाई अरे महफिल आशिबे जरा हुब्बे अलीर शते बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अगर इसके रदीफ लानत करे उसमें लानत करे बंगाली में कहते हैं तो रदीफ के लानत करे इंशाल्लाह लास्ट लाइन लानत करे इंशाल्लाह শুনবেন প্রতিটি লাইন মন দিয়ে শুনবেন খুব ভালো লাগবে इंशाल्लाह শুনবেন मुस्तफा लानती मुस्तफा लानती करे और मुर्तजा लानती करे বুঝতে পারলেন না कि मुस्तफा लानती करे और मुर्तजा लानती करे अरे ज़हरार दुश्मनेर ऊपर खुदा लानत करे ज़हरार दुश्मनेर ऊपर खुदा लानत करे भाई যদি কথাই সত্য হয় ইনশাআল্লাহ সবাই মন থেকে দোয়া দিবেন ইনশাআল্লাহ কে পান করে যারা শরাব মদ পান করে যারা শরাব কাবা শরীফের পয়সাতে পান করে যারা শরাব কাবা শরীফের পয়সাতে আরে ওই সকল ব্যক্তির উপর ওই সকল ব্যক্তির উপর কারবালা লানত করে ওই
সকল ব্যক্তির উপর কারবালা লানত করে, ওই সকল ব্যক্তির উপর কারবালা লানত করে। और যে লাইনটি পড়ছি ইনশাআল্লাহ আপনারা যদি উঠে মাজমা পুরো উঠে দাঁত দেন হক আদায় হবে ইনশাআল্লাহ। শুনবেন, জনাবে ফাতেমাতুজ জাহরার দুটি উপাধি ছিল, মাসুমা ও তাহেরা। ঠিক আছে, মাসুমা ও তাহেরা। ইনশাআল্লাহ শুনবেন, কে সে কোনো ভাবে রাজি আল্লাহ হতে পারে না। কি শুনছেন? কে সে কোনো ভাবে রাজি আল্লাহ হতে পারে না। আরে যার উপর মাসুমা, আরে যার উপর মাসুমা তাহেরা লানত করে, अरे जारू पर ताहेरा मासूम लानत करे, जारू पर ताहेरा मासूम लानत करे। लब्बैक या ज़हरा। আর বাস 2-3 লাইন বাস আপনাদের জাহমাত तमाम। কিন্তু আপনাদের মনে যদি মওলা আলীর মহব্বত থাকে ইনশাআল্লাহ মন দিয়ে শুনুন। কে দুশমনে মওলা আলীকে একটু দেখো ভালো করে, দুশমনে মওলা আলীকে একটু দেখো ভালো করে। আরে চেহারা চেহারা এমন ওদের, চেহারা এমন ওদের যে আয়না লানত করে, কে চেহারা এমন ওদের যে আয়না লানত করে, চেহারা এমনই ওদের লানত করে। আর ইনশাআল্লাহ শুনবেন, ভাবো একবার কতটা খারাপ হবে ওই ব্যক্তি যখন জানাই ফাতেমাতুজ জাহরা দরবারে গিয়েছিলেন। তো শায়ের কি বলছেন ইনশাআল্লাহ শুনবেন, কে ভাবো একবার কতটা খারাপ হবে ওই ব্যক্তি, আরে যার উপর দরবারেতে, যার উপর দরবারেতে ফাতেমা লানত করে, যার উপর দরবারেতে ফাতেমা লানত করে। और आखिरी शेर बतौरे खास हजरत असगर अलैहिस्सलामेर हवाले इंशाअल्लाह लास्ट लाइन, के मुश्की है से लांछना, मुश्की है से लांछना करलो एमन असगर आली, मुश्की है से लांछना करलो एमन असगर आली। अरे हुरमुला নিজেই নিজের, হুরমুলা নিজেই নিজের ওপরে লানত করে, হুরমুলা নিজেই নিজের ওপর লানত করে। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अबरार भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने ज़ुहैर भाई के भी उर्दू कलाम को बंगाली में पढ़ दिया, आपने शबरोज़ का भी कलाम जो उर्दू में था वो आपने बंगाली में पढ़ दिया। ये तो एक अच्छा काम हुआ कि उर्दू से बंगाली में जब आया तो बहुत से शेर ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आते, लेकिन हमारे बच्चों के समझ में आ गए। इतनी देर हो गई है, अब मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए तो कोई जंग हमने हारी नहीं, जो आस्तीन चढ़ा ली तो फिर उतारी नहीं।
इसीलिए तो कोई जंग हमने हारी नहीं जो आज 3 उतारी नहीं। जनाबे बिनते असद रहगुजर मुबारक हो, जनाबे बिनते असद रहगुजर मुबारक हो, हरम जिदारे खाने काबा में दर मुबारक हो। अब मैं नहीं छोड़ने वाला आपको। जिदारे खाने काबा में दर मुबारक हो, जनाबे बिनते असद रहगुजर मुबारक हो, जिदारे खाने काबा में दर मुबारक हो, जनाबे बिनते असद रहगुजर मुबारक हो। हर एक सफर से अलग ये सफर मुबारक हो, खुदा के घर से मिला है पिसर मुबारक हो। जिस पिसर की तुम्हें चाह मिल गया तुमको, बढ़ाओ हाथ यदुल्लाह मिल गया तुमको। हरम से फूटेगी ये रोशनी कयामत तक, रहेगी 13 रजब की खुशी कयामत तक, कहेगा सारा जमाना यही कयामत तक, अली के बाद न होगा अली कयामत तक। अरे कसम खुदा की फजाइल की कोई हद ही नहीं, मेरे अली के बराबर किसी का कदी नहीं, मेरे अली के बराबर किसी का कदी नहीं, मेरे अली के बराबर किसी का कदी नहीं। शराबे हुब्बे अली है ये दिल लगा के पियो, शराबे हुब्बे अली है ये दिल लगा के पियो, मुनाफिकीन की नजरों से बस बचा के पियो। नहीं नहीं ये गलत है, जला जला के पियो, लबों पर सूरह कौसर जरा सजा के पियो, सुरूर और भी बढ़ जाएगा ये वादा है, तबर्रा करके पियो तो नशा ज़ियादा है। सुरूर और भी बढ़ जाएगा ये वादा है। जीते रहो, हाँ नारा लगाते रहो, कम से कम सलामत रहो, आबाद रहो। सुरूर और भी बढ़ जाएगा ये वादा है, सुरूर और भी बढ़ जाएगा। देख रहे हैं आप, जगह कम पड़ रही है, फिर कालीनें बिछाई जा रही हैं, चांदनी बिछाई जा रही है, यहाँ फरिश्ते भी आ रहे हैं, अंबिया भी आ गए हैं। अब जरा लगे, मैंने वीडियो में देखा था कि आप जिस वक्त दाद देने पर आ जाते हैं, ये नहीं देखते कि आप यहाँ हैं, बल्कि आप ये सोचते हैं हम शायद करबला और नजफ में दाद दे रहे हैं। मैं यहाँ से आपको जरा सा करीब करता हूँ कि शराबे हुब्बे अली है ये दिल लगा के पियो, मुनाफिकीन की नजरों से बच बचा के पियो। नहीं नहीं ये गलत है, जला जला के पियो, लबों पर सूरह कौसर जरा सजा के पियो, सुरूर और भी बढ़ जाएगा ये वादा है, तबर्रा करके पियो तो नशा ज़ियादा है। अब मौला कायनात की बारगाह से निकल के मौला हुसैन की बारगाह में जा रहा हूँ। ज़हरा का लाल जाने पैगंबर हुसैन है, ज़हरा का लाल जाने पैगंबर हुसैन है, करबो बला सदफ है तो गौहर हुसैन है, ज़हरा का लाल जाने पैगंबर हुसैन है, करबो बला सदफ है तो गौहर हुसैन है। अरे फर्शे अज़ा बिछा गई ज़ैनब का शुक्रिया, बेघर यजीद हो गया, घर घर हुसैन। अरे सलामत रहिए, सलामत रहिए। ज़हरा का लाल जाने पैगंबर हुसैन है, ज़हरा का लाल जाने इधर उधर ना देखिए, इधर देखते रहिए। हमारी नमाज मुकम्मल होती है तब जब सलाम मुकम्मल हो जाए। मैं कुछ कह रहा हूँ कि ज़हरा का लाल जाने पैगंबर हुसैन है, करबो बला सदफ है तो गौहर हुसैन है, करबो बला सदफ है तो गौहर हुसैन है, करबो बला सदफ है तो गौहर हुसैन है। फर्शे अज़ा बिछा गई ज़ैनब का शुक्रिया, बेघर यजीद हो गया, घर घर हुसैन है। करबो बला की जंग का आगाज है गदीर, मंजर तो है अली बस मंजर हुसैन है। अरे नालैन, नालैन यानी जूती जो रसूल गए थे, नालैन मुस्तफा के तले कायनात है और मुस्तफा की पुष्ट के ऊपर हुसैन। या हुसैन, क्या हुसैन, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा। एक नारा और लगा दिए। अच्छा आप जो, हाँ सलामत रहे, एक नारा, एक नारा यार।
सब खाक में मिल जाएगी बैयत के इरादे, सब खाक में मिल जाएगी बैयत के इरादे। भाई से किए थे जो निभाऊंगी मैं वादे, कांटे मेरी राहों में भी जितने तू बिछा दे, ये बात मगर याद रहे माफिया ज़ादे। अरे बात मगर याद रहे माफिया ज़ादे। एक चल चला बर्पा दरो दीवार में होगा, अब शाह का मातम तेरे दरबार में होगा। अरे वाह 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 बोल नारे हैदर 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 हैदर, जहरा का लाल जाने पैगंबर हुसैन है, करबो बला सदफ है तो गौहर हुसैन है। जहरा का लाल जाने पैगंबर, आप यहीं बैठिएगा, जहरा का लाल जाने पैगंबर हुसैन, मैं आपको कह रहा हूँ, सलाम कर रहा हूँ आपको, जहरा का लाल जाने पैगंबर हुसैन है, करबो बला सदफ है तो गौहर हुसैन है। करबो बला की जंग का आगाज है गदीर, मंजर तो है अली पसे मंजर हुसैन है। नालैन मुस्तफा के तले कायनात है और मुस्तफा की पुष्ट के ऊपर हुसैन है। इतना अच्छा सुन रहे हैं आप। तो अब मैं चाहता हूं कि कम से कम उसी लय में और उसी धारा पर आप चलते रहें। हम तो जनाबे मूसा के मानने वाले भी है ना, जनाबे दाऊद के मानने वाले भी है ना। तो जनाबे मूसा का कमाल ये है कि लहरें इधर जा रही हो तो संदूक उधर चला जाता है, क्योंकि मूसा भी नादे अली पढ़ते हुए सफर करते हैं। आइए, मैं यहाँ तक पहुँच गया तो अब एक आपका शायर आपके हवाले करता हूँ। कभी कभी निजामत वहां से होती है, नाम मैं पुकार लेता हूँ। क्या नाम? अच्छा, आ गए हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा और पढ़ दूं, इजाजत है कि कम से कम मेरे साथ नारे का जवाब दें तो मैं आगे बढ़ूं। नारा हैदरी 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 हैदरी। अब यहाँ से 4 मिसरे पढ़ता हूँ, देखता हूँ आप कहाँ तक जाते हैं। सुनिए, ये नाजिम भी पढ़ रहा है, ये किरताज भी पढ़ रहा है, ये शायर भी पढ़ रहा है कि सनाए सिब्ते पैगंबर से जिसको काम रहा, सनाए सिब्ते पैगंबर से जिसको काम रहा, रहे वो शख्स तेज गाम, ऐसा हार मुझे कहीं नहीं मिलेगा जो इन्होंने मोहब्बतों से पहना दिया। वल्लाह मैं शरई कसम खा रहा हूँ, इसके अंदर ये ना देखिए कि इन्होंने किस, देखो भैया राहुल सिंह चौहान, इस हार को कैद करो। ये हार देखो, खुदा की तुम यकीन मानो, यकीन मानो, पता नहीं मौला की नजर में किसकी क्या इज्जत हो, कोई नहीं जानता। भाई अजीज साहब, ये इन्होंने हार नहीं पहनाया है, अपनी मोहब्बत मेरे गले में पहनाई है। ये विलायत का सदका है, सलामत रहें। ये मैं 4 मिसरे फिर पढ़ देता हूँ उसी अंदाज में कि हसन की सुलह का हार पहने रहूंगा, नहीं उतारूंगा, क्योंकि ये हार नहीं मेरी जीत का हार है। सनाए सिब्ते पैगंबर से जिसको काम रहा, 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 रहे हयात में वो शख्स तेज काम रहा। अरे फकीर शाम के बेटे से क्या उम्मीद है वफा, नमक हराम का पाला नमक हराम। है सलामत रहे। सनाए सिब्ते पैगंबर से जिसको काम रहा, रहे हयात में वो शख्स तेज गाम रहा, फकीर शाम के बेटे से क्या उम्मीद वफा, नमक हराम का पाला नमक हराम रहा। अब आइए, गैबत में जुल्फ़िकार बड़ी बेकरार है। अब आइए, वही मैं मिसर पढ़ देता हूं जो मौलाना ने पढ़े थे, लेकिन उसी आहन से सुनिएगा कि गैबत से उसको भेज जो दुलदुल सवार है, गैबत से उसको भेज जो दुलदुल सवार है, जिस पर नबी की पूरी शरीयत निसार है, वो जिसके पास मोहर इमामत के साथ साथ हैदर का जुल्जना है, एक जुल्फ़िकार है। किरतास आ रही है सदा मुतमईन रहो, ईसा को इस घड़ी का बड़ा इंतजार है। काबे की समत देख के सल्ले अला पढ़ो, इस राज का तो काबा फकत राजदार है, इस राज का तो काबा फकत राजदार है। अरे
पहला जाते हैं ना आप, चादर के नीचे देखते हैं एक लकीर है, वो लकीर ही वही लकीर है जिसके फकीर यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब तुमसे 1400 साल से लकीर ना मिटाई गई तो लकीर के फकीर को क्या मिटाओगे? हम विलायत की उसी लकीर के फकीर हैं। गैबत से उसको भेज जो दुलदुल सवार है, जिस पर नबी की पूरी शरीयत निसार है, वो जिसके पास मोहरे इमामत के साथ साथ हैदर का जुल्जना है, एक जुल्फिकार है, किरदास आ रही है, सदा मुतमईन रहो, ईसा को इस घड़ी का बड़ा इंतजार है। अरे पहला वहीं से आया था, आखिर भी आएगा, इस वास्ते जिदार में अब तक दरार है। जीते रहो, सलामत रहो, पहला वहीं से आया था, आखिर भी आएगा। पहला वहीं से आया था, हैदरी बहुत आराम आराम से। अली 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 हैदरी। माशाअल्लाह, आप सलामत रहिए। नजफ़ अशरफ में मौलाए कायनात की जो कब्र मुताहर है उसकी तारीख ये है कि वहां पे कुत्ता नहीं जा सकता। अरे आपने उस तारीख को नहीं पढ़ा है कि उस जगह पर कोई नजासत पहुंच ही नहीं सकती है। इसीलिए मौलाना शम्स तबरेज ने कहा था, वो फरमाते हैं कि मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, मजलिस के तबर्रुक वो भी यहाँ नहीं है, बैरून हिंदुस्तान है, लेकिन उनकी जगह पे मैं पढ़े दे रहा हूँ क्योंकि नाजिम हूँ और पूरी इजाजत है। कहते तब मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते। मैं सोच रहा हूँ कि क्या सुनाऊं आपको, जो है वो सुनाना नहीं है, जो सुनाना है वो ढूंढना पड़ रहा है। सुनिए, जैसे भी आप सुन रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। मौलाना शम्स तबरेज साहब ने कहा कि मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। ऐ मुनकिरे इकरारे अलीयुन वलीउल्लाह, दहलीज़े नजर चूमने कुत्ते नहीं जाते। ऐ मुनकिरे इकरारे अलीयुन वलीउल्लाह, दहलीज़े नजफ चूमने, यहाँ पे लफ्ज जो रखा है, सलामत रहे, दहलीज़े नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते, दहलीज़े नजफ चूमने कुत्ते नहीं। अच्छा, जब यहाँ तक पहुंच गए हैं और इन्होंने कह दिया, एक शेर मैं मौला अब्बास के लिए पढ़ने जा रहा हूँ। और मौला गाजी अबुल फजल अब्बास आपको सलामत रखे, उनके अलम के साये में खुले हुए परचम के नीचे ये खिले हुए चेहरे सलामत रहे। अरे जो लोग कदम कदम के कहते हैं ये 14 शाबान बिदत है, ये 15 रमजान बिदत है, ये नजर बिदत है, ये अगरबत्ती बिदत है, ये तबर्रुक, ये फातिहा बिदत है, तो अब जो लोग उर्दू समझने वाले हैं वो तो दाद दे दें। अरे ये कुफ्र के बिस्तर पे शिर्क की तकिया लगा के बिदत की सिलवटों में लौटने वाले है, ये हमें, अरे मैंने कुछ कहा है, बाद में रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो पे सुन लीजिएगा। और अगर लेटे रहिएगा, कोई ना हो तो मेरे एक एक जुमले पे अगर कोई जुमला बहुत ज्यादा दिल में उतर जाए तो आप मेरे दिल में उतर जाइएगा और आप मुझे दुआ दे दीजिएगा। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ इसलिए कि मेरे सामने कैमरा है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मोतबर कैमरा। मैं गिराफ के हवाले से इस गिराफ को और बढ़ाना चाहता हूँ। और सुनिए, मौला अब्बास के लिए शेर पेश कर रहा हूँ कि हसन की सुलह का अगर वाकया तुमने पढ़ा होता, हसन की सुलह कहाँ होंगे आप, अगर मैं पहुंचा ले गया। हसन की सुलह का अगर वाकया तुमने पढ़ा होता, किताबे जिंदगी पर करबला का हाशिया होता। अरे मदीने में अगर अब्बास की तलवार चल जाती, जनाजे पर हसन के करबला का फैसला होता। क्या वलवला है, क्या वलवला है। दो शेर, या पास या पास या पास या पास
या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास। हाँ ठीक है, चलिए मौलाना अब्बास। सलामत रहें, सलामत रहें। है सलाम। एक नारा साथ है, अरे वाह वाह वाह, एक नारा खास है, अब्बास है, अब्बास है। एक नारा पास है, एक नारा राज है। आ रहा हूँ मैं निहत्ता हूँ सुए नहरे फरात। अरे वाह वाह वाह, जो बहादुर है रुके और करे दो दो हाथ। टूटा नेता ही सही खून की होगी बरसात। मैं भी देखूं तो जरा किसकी है कितनी औकात। और गाजी कहते हैं मैं अकेला हूँ निहत्ता हूँ, बहुत फर्द हो तुम मेरे आने पे रुके रहना अगर मत हो तुम। अरे वाह 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 वाह, सलामत। अरे आपको देखने के बाद मुझे उस्ताद कमर जलालवी याद आ गए। वो फरमाते हैं बढ़ते थे जितना हजरत अब्बास से नामदार, बढ़ते थे जितना हजरत अब्बास से नामदार, उतना ही इब्ने साद को होता था इंतशार। लश्कर की समत देख के कहता था बार बार, क्यों बुत बने खड़े हो ये क्या है खुदा की मार। अरे डरते हो इतना, अक्ल में कुछ फेर तो नहीं, आखिर वो आदमी है कोई शेर है बाबा 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 या अब्बास या अब्बास बाबा 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 या गाजी या गाजी या गाजी या गाजी या अब्बास या नारा बढ़ते थे जितना हजरत अब्बास एक बंद। अरे सलामत रहें, अगले साल से नारे का शोभा अलग रहेगा, ये डिपार्टमेंट अलग है। हाथ उठा देता है, अरे वाह 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 वाह। अरे कसम खुदा की अगर आप इसी तरह से नारा मदीने में चल के लगाते, न जाने कितने पड़ोसी उठ के भाग जाए। कहना है उठते, मैं अरे जो मैं कह देता हूँ उसे बस सुन लीजा कीजिए, इधर उधर न देखा कीजिए। रात गई बात गई, जबान है फिसल जाती है, जुमला मैंने कह दिया। एक बंद में पढ़ूंगा उस्ताद कमर जलालवी का, सुनने वाले बैठे हैं सलामत रहिए। डरते हो इतना, अक्ल में कुछ फेर तो नहीं, आखिर वो आदमी है कोई शेर तो नहीं। कहती है फौज ये तेरी किस्मत का फेर है, हम जानते नहीं, उसी रंग में आइए। कहती है फौज ये तेरी किस्मत का फेर है, हम जानते हैं कितना वो गाजी दिलेर है। अब छीन लेगा नहर कोई दम की देर है। अरे जिससे के शेर कांपते थे उसका शेर है, मशहूर खल्क नाम खुदा के वली का है। और तेवर बता रहे हैं कि बेटा मशहूर खल्क नाम है। बस मशहूर खल्क नाम खुदा के वली का है, और तेवर बता रहे का है। आइए मैं अरे जीते रहो। कौन 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 अरे वाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ इस वक्त हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना, अब मैं शेर की बात कर रहा था, शेर की बात कर रहा था, और वो शेर के जो अली का शेर है, मैं अगर उसकी बात कर रहा हूँ और अली के शेर का जिक्र कर रहा हूँ, तो मेरी फेहरिस्त का वो शेर के जो उस शेर का गुलाम है। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ बिरादर अजीज आली जनाब मौलाना असद साहब क़िबला की खिदमत में कि वो आएँ और मदहगुस्तरी के फ़राइज़ को अंजाम दें। ये लफ्ज़ बाद में पूछ लीजिएगा, जानबूझ के मैंने कहा कि वो आएँ और अपना कलाम पढ़ें। आपसे गुजारिश है कलाम ये पढ़ेंगे, सलाम के तौर पर सलावात आप पढ़ दीजिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला अहलि बैति तय्यिबिन अत्ताहिरीन। वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम। अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन अनकरल क़ाइम मिन बुल्दी फ़ी ज़मानि ग़ैबती मात मीततन जाहिलिया। एक बार सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকটি মেসেজ হাদিসের মাধ্যমে আমি দিয়ে যাব। আশা করি সকলেই এর থেকে আমরা সকলেই শিক্ষা নেব। अगर इजाज़त हो बहुत ही मुख्तसर वक्त में 2-4 अहादीस बयान करूंगा और उससे हम भी मुस्तफिज होंगे इंशाअल्लाह। যে সর্বপ্রথম ইমাম মেহদী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জন্মদিন উপলক্ষে আপনাদের সকলকে মোবারকবাদ জানাই এবং শুকরিয়া, এবং আমাদের সকলের তরফ থেকে আমাদের আকা ও মাওলা ইমাম মেহদী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জিল ফরজাহুম তানার এই আগমন, তানার জন্মদিবস উপলক্ষে যে 255 হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছেন, আমাদের সকলের তরফ থেকে আমরা মোবারকবাদ জানাই এবং আমরা দোয়া করি, আশা রাখি যে আগামীতে তিনি আসবেন এবং তানার মাহফিল তানার উপস্থিতিতে করব। তবে হ্যাঁ, কয়েকটি কথা খুব মনোযোগ সহকারে শুনবেন যদি জেগে থাকেন। হ্যাঁ, জাগাবো, জাগিয়ে দেব। একবার সালাওয়াত বার মোহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। না, এ সালাওয়াত জাগ্রত অবস্থায় না, এ সালাওয়াত এরকম জাগ্রত অবস্থায় হয় না। বহু লোক এই পৃথিবীতে আছে, বহু ধরনের, বহু জাতি বর্ণ, কিন্তু একটি মেসেজ আমি করেছিলাম যে অল ইন্ডিয়া জশ্নে ইমামে জামানা ধর্ম বর্ম নির্বিশেষে সকলেই এখানে উপস্থিত হতে পারেন। সবাইকে আহ্বান জানাই, আসুন তার মারেফাত অর্জন করুন। কিন্তু এই পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, যার মন যেখানে যেভাবে চাই সে তাকে সেইভাবে ডাকে। তো কবি বলছে, এর আগেও আমি পড়েছি, আমরা সকলেই এতে ইনশাআল্লাহ শরীক হয়ে যাব। অনেক সময় কি হয়, মাওলানা হজ্জাতুল ইসলাম কিরতাস সাহেব তিনি বক্তব্য রাখছেন, আমি বলছি বা আরো কবিগণ যারা ভাইরা আছে তারা পড়ছে, আমরা চুপচাপ বসে আছি, তো ঘুম লাগে। কিন্তু আমার অভ্যাস অনেক সময় জানেন, তো আসেন আমরা সকলে একটু জেগে উঠি। আমরা সকলেই বলি ইয়া সাহেবাজ জামান, সকলে মিলে ইয়া সাহেবাজ জামান। এসো সবাই মিলে ইমামকে ডাকি, ইয়া সাহেবাজ জামান। এসো সবাই মিলে ইমামকে ডাকি, দো জাহানের বাদশাহকে ডাকি। এসো সবাই মিলে ইমামকে ডাকি, দো জাহানের বাদশাহকে ডাকি। আমার রাহুল ভাই কয়েক বছর ধরে আসছে, জানে, হয়তো রেকর্ড করে রেখেছে। রাহুল ভাই হয়তো বলবে যে বারবারই পড়ে, দোবারা। চলিয়ে এসো সবাই মিলে ইমামকে ডাকি, ইয়া সাহেবাজ জামান। দো জাহানের বাদশাহকে ডাকি, ইয়া সাহেবাজ জামান। আপনি যে এই দুনিয়াতে আল্লাহর ওলি, আল্লাহর কসম আপনিও যে মাওলা আলী। এসো দো জাহানের মুশকিল কুশাকে ডাকি, ইয়া সাহেবাজ জামান। দো জাহানের বাদশাহকে ডাকি। এসো সবাই মিলে, এসো সবাই মিলে ইমামকে ডাকি। আরে আপনি খয়বার জয়ী, আপনিও যে মুর্তাজা, আপনি ত্রাণকর্তা, আপনিও যে মুশকিল কুশা। তবে কেন অমুককে ডাকি? এসো সবাই মিলে ইমামকে ডাকি। এসো দো জাহানের বাদশাহকে ডাকি। এসো সবাই মিলে ইমামকে ডাকি। এই সূর্য, এই তারা, এই চন্দ্র জ্যোতিময়, যদি না থাকে আপনার নূর তবে না রবে জ্যোতিময়।
সেই ইমামতের উজ্জ্বল নূরকে ডাকি, এসো সবাই মিলে ইমামকে ডাকি, এসো সবাই মিলে ইমামকে ডাকি, দো জাহানের বাদশাহকে ডাকি, ইয়া সাহেবাজ জামান। তো চতুর্দিকে মুসিবতের লাভা ফুটেছে যে সত্য এটাই সাহায্যকারী আপনি যে সেই মেহেরবান ও দয়ালুকে ডাকি, এসো সবাই মিলে ইমামকে ডাকি, এসো সবাই মিলে ইমামকে ডাকি, দো জাহানের বাদশাহকে ডাকি, ইয়া সাহেবাজ জামান, ইয়া সাহেবাজ জামান, লব্বাইক ইয়া মেহদি। আসুন আমি মূল বক্তব্যে ফিরে আসছি। কয়েকটি কথা হাদিসের মাধ্যমে আমি আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরব, যেখানে প্রথম যে হাদিস খুবই মনোযোগ সহকারে শুনবেন। পয়গম্বর আকরাম হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ইরশাদ করেছেন যে ইমাম মেহদিকে, আমারও প্রশ্ন থাকতে পারে যে ইমামে মেহদিকে কেন মানতে হবে, তো তিনি ইরশাদ করলেন যে মান আনকারাল কাইমা মিন বুলদি ফি জামানে গায়বতি মাতা মিতাতান জাহিলিয়া, যে ইমামে মেহদিকে এই জন্যই মানতে হবে তার একটি কারণ হচ্ছে এই, নবী বলছেন যদি তুমি মেহেদির অস্বীকার করে যাও, অমান্য করে যাও, যে ব্যক্তি ইমামে কায়েমকে অস্বীকার করবে যে আমার সন্তানদের মধ্যে একটি সন্তান হবে, কবে? ফি গায়বতে, এই যুগে, গায়বতের যুগে যদি আমার এই সন্তান ইমাম মেহদিকে অমান্য এবং অস্বীকার করে, মাতা মিতাতান জাহিলিয়া, তার মৃত্যু জাহিলিয়াত ও মূর্খতার মৃত্যু হবে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ন্যায় মৃত্যু হবে। এবং আরেকটি হাদিস ইমামে মেহদি আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নিজেই ইরশাদ করেছেন, তার সালামতির জন্য বাওয়াজে বলেন নারে সালাওয়াত, সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ ওয়াজ্জিল ফরজ। লাইসা বাইনাল্লাহি আযজা ওয়া জাল ওয়া বাইনা আহাদিন কারাবা। ইমাম মেহদি আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নিজেই ইরশাদ করছেন যে আমি এবং আমার আল্লাহ, আমার ও আল্লাহর মধ্যে এমন কোন নিকট বা আত্মীয়তা নেই। অনেকেই বলে যে রসুলকে মেয়ে দিয়েছি, রসুল আমার ঘনিষ্ঠ, আমি তার শ্বশুর অমুক অমুক, আমার ভাই, সব পার পেয়ে যাবো, কিছুই হবে না, কিছুই হবে না। এই হাদিসের মধ্যে আছে, কিছুই কাজে আসবে না। ইমাম মেহদি আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নিজে ইরশাদ করছেন যে লাইসা বাইনাল্লাহি আযজা ওয়া জাল ওয়া বাইনা আহাদিন কারাবা, যে আমার ও আল্লাহর মধ্যে এমন কোন বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তা এমন কিছু নেই যে ওয়ামান আনকারানি ফালাইসা মিন্নি, যে আমাকে অস্বীকার করবে, আমি মেহদি, আমি কায়েম, যে ব্যক্তি আমাকে অস্বীকার করবে সে আমার থেকে নয়, সে আমার হতে পারে না, সে আমার চাহনেওয়ালা না। আমাকে যে অস্বীকার করবে সে আমার নয়, সে আমাদের নয়। কেমন? ওয়াসাবিলুহু সাবিলু ইবনে নূহ, তার রাস্তা, যে আমাকে অস্বীকার করবে তার পথ, তার রাস্তা ঠিক ওই রকম যেমন নূহ আলাইহিস সালামের বেটার রাস্তা ছিল। তিনি বলেছিলেন, কিন্তু তার ছেলে জানাবে নূহ আলাইহিস সালামের নিজের পুত্র হওয়ার পরেও সে উত্তর কি দিয়েছিল? বাবা, ওই বড় উঁচু পাহাড়ে চলে যাব, এই প্লাবন আমাকে কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি করেছিলেন? একটা নবীর সন্তান হওয়ার পরেও ডুবে গিয়েছিল, নবীর সন্তান হওয়ার পরেও ডুবে গিয়েছিল, নবীর কথা শোনেনি। ইমাম আলাইহিস সালাম বলছেন যদি তুমি আমাকে অস্বীকার করো তাহলে ওই একটা নবীর বেটা, নবীর পুত্রর যেমন অবস্থা হয়েছিল তোমার তেমনই অবস্থা হবে, তুমি আমার থেকে নয়। এবার এর বিপরীতে কি? মারেফাত, মানতে হবে, বুঝতে হবে, শুনতে হবে, পড়তে হবে, জ্ঞান অর্জন করতে হবে, মারেফাত। যদি মারেফত আমি অর্জন করি তার লাভ কি হবে? ইমামে জাফর সাদিক আলাইহিস সালাম তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জিল ফরাজাহুম, মান আরাফা হাদাল আমর সুম্মা মাতা ক্বাবলা আন ইয়াকুমাল কায়িম,
যদি কোনো ব্যক্তি, আমি মহব্বত কেন করব, কেন ভালোবাসবো ইমামকে, ইমামের মারফত কেন অর্জন করব, সেই জ্ঞান কেন অর্জন করব, আমার প্রশ্ন। তো ষষ্ঠ ইমাম বলছেন, ইমামে সাদিক আলে মুহাম্মদ, তিনি বলছেন যে যদি কোনো ব্যক্তি এই কায়েমে আলে মুহাম্মদ ইমামে মেহেদী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মারফতকে অর্জন করে এবং তানার আবির্ভাবের আগে, তানার জহুরের আগে, তানার আসার আগে যদি ওই ব্যক্তি মারা যায় যে মারেফাত অর্জন করেছে, কানা লাহু মিসলু আজরিন মান কুতিলা মাহু, তাহলে ওই যে ব্যক্তি মারেফাত অর্জন করলো কিন্তু ইমামে মেহেদী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এর আবির্ভাবের আগে, জহুরের আগে সে মৃত্যুবরণ করেছে, ষষ্ঠ ইমাম বলে গিয়েছেন তার আজর, তার সওয়াব ঠিক ওই রকম যেমন ইমামে মেহেদী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাথে যুদ্ধের ময়দানে যারা কতল হয়ে গিয়েছে, শহীদ হয়ে গিয়েছে, ওই ব্যক্তি যে ইমাম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মারেফাত অর্জন করে মারা গিয়েছিল। বুঝতে পেরেছেন? তাহলে এই মারেফাত কি জিনিস, এবং এটা খুবই হালকা মনে করবেন না, মারেফাত অর্জন করতে হবে। এবারে আসি, আমরা এমন একটা যুগে বসবাস করছি, আমরা ইন্তজার করছি, আমরা অপেক্ষায় আছি, কিন্তু এই অপেক্ষা এর উপরেও হাদিস আছে, প্রচুর হাদিস আছে, তার মধ্যে একটি হাদিস আমরা যারা অপেক্ষা করছি, কার অপেক্ষা? ইমাম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের আবির্ভাবের অপেক্ষা। তিনি আসবেন, আল্লাহর আখেরি হুজ্জত আসবেন, কবে আসবেন জানা নেই, কিন্তু আমরা অপেক্ষা করছি। আর তার জন্যই তো আজ এত বড় আয়োজন। ইমামে আলী ইবনে আবি তালিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তিনি ইরশাদ করেন, সকলে মিলে যদি একবার সালাওয়াত আর মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। এই কমিটি, যে কমিটি দায়িত্ব বহন করে এই কাজ করছে আজকের এই মাহফিল মিলাদ, তার নামেও এই নামে, আঞ্জুমানে মুনতাজিরানে ইমামে মেহেদী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তো ইমামে আলী ইবনে আবি তালিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলছেন, আল মুনতাজিরু লি আমরিনা। এই যে ইমামে কাইম, ইমামে মেহেদী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, তার যে ইন্তজার ও অপেক্ষায় আছে, আমি আছি, আপনি আছেন, আমরা সকলেই আছি, অপেক্ষায় আছি। কাল মুতাশাহহিতি বিদ্দামি ফিস সাবিলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার। ওই ব্যক্তি যে ইন্তজার ও অপেক্ষা করছে ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের, একবার সালাওয়াত আর মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ, তাশরীফ লাইন, আর একবার সালাওয়াত আর মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। তো যে ব্যক্তি ইমাম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের অপেক্ষা করছে, ইন্তজার করছে, সে ঠিক ওই রকম তার আজর ও সওয়াব, তার হাসানাত ও নেকি, তার মর্যাদা, তার স্ট্যাটাসকে আপনি দেখুন। কাল মুতাশাহহিতি বিদ্দামি ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রাহে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রাস্তায় যখন কোন ব্যক্তি জিহাদ করে, আর সেই জিহাদ করা অবস্থায় সে যখন শহীদ হয়ে যায়, রক্তে লটর পটর হয়, সারা শরীর তার রক্তে ভরে যায়, কোথায়? যুদ্ধের ময়দানে। কোন যুদ্ধ? আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রাহে এবং রাস্তায় যুদ্ধ করতে করতে তার সারা শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেল। সেই শহীদের যে সওয়াব, একজন ওই ব্যক্তি যে ইমামে মেহেদী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ইন্তজার অপেক্ষা করছে, তার সেই সওয়াব। নিজেকে চিনুন, মারফত কাকে বলে, এবং আমি কার চাহনেওয়ালা, আমরা কার অপেক্ষা করছি। যার অপেক্ষা করছি সেই অপেক্ষাকারীর যদি এই সওয়াব হতে পারে, সেই ইমামে মেহেদী আজ্জালাল্লাহু তাআলা ফরজহু শরীফের মর্যাদা কত হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে। আইজানে গ্রামী, বাস লাস্ট মেসেজ আমি দিয়ে যাব যে আমরা এই দুনিয়াতে, এই পৃথিবীতে বসবাস তো করছি, জীবন যাপন করছি, এটাও মানলাম বা জানলাম যে ইমামের মারফত অর্জন করতে হবে, মানতে হবে, ভালোবাসতে হবে, ইনকার ও অস্বীকার করা যাবে না।
গেলে ক্ষতি, দুটো হাদিস বয়ান করলাম। আর মারিফত অর্জন করতে হবে, তার লাভ বয়ান করলাম। আমরা অপেক্ষা করছি তার গুণগান রিওয়ায়াতের মধ্যে, আহাদিসের মধ্যে এসেছে, সেটাও উল্লেখ করলাম। কিন্তু এই পৃথিবীতে, এই দুনিয়াতে, এই জগতে আমি আপনি জীবন যাপন করছি, কিন্তু জীবন যাপন কি একেই বলে যেমন ভাবে আমরা জীবন যাপন করছি? এই পৃথিবীতে দ্বীনকে কায়েম করতে গেলে কয়েকটি কথা, এটা আমারও কথা নয়, হাদিস বলবো, আমার কথা নয়, একটাও আমার কথা নেই, থাকলে ফিরত দেবেন। হাদিস বলছে যে দ্বীনকে, দ্বীন ও দুনিয়াকে কায়েম রাখতে গেলে বিশেষ করে চারটি কথা উল্লেখ হয়েছে। आगाजान मुलाहिजा फरमाइए, दीन व दुनिया को कायम रखने के लिए, उसके क़याम के लिए चार चीजें हैं, चार बातें हैं। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम তিনি ইরশাদ করেছেন, লিজাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারী, কে নাম জানে না? হাদিসে কিসে আপনি পড়েন, হ্যাঁ প্রথমে শুরু করেন রাসূলের সাহাবী, প্রথম জায়ের কারবালা, হ্যাঁ তো সকলেই জানেন মাশাআল্লাহ, বারবারই শুনেন। তো তানাকে ইমাম বললেন, ইয়া জাবির কিওয়ামুদ্দিন ওয়াদ দুনিয়া বিআরবা, চারটি জিনিস এমন আছে যদি তার উপরে আমল হয়ে যায়, দেখেন কথা শুধু হাওয়াই হলে হবে না, আমল করতে হবে, নতুবা কোনো কাজ নেই, কিছুই হবে না। আমি মানি না, আমল করতে হবে। তা আমল কে করবে? কোরআন শুধু ওই ফু দেওয়ার জন্য নয়, কোরআন শুধু মৃত্যু ব্যক্তিদের জন্য পড়ার জন্য নয়, কোরআন জীবিতদের জন্য। তো রিওয়ায়াত বলছে যে জাবির, দ্বীন ও দুনিয়ার কিয়াম বাকি সেটা টিকে থাকবে, কায়েম রাখার জন্য চারটি জিনিস দরকার, তার উপরে আমল করতে হবে। নম্বর 1, আলিমিন মুস্তামিলিন ইলমাহ, প্রথম যে জিনিস সেটা হচ্ছে আলিমে দ্বীন। আচ্ছা, আলিমে দ্বীন বলতে কি এই পাগড়ি এই জুব্বা পরবে তারা? দ্বীনের জ্ঞান যারা রাখে, দ্বীনের জ্ঞান কেবলমাত্র আমার উপরে ওয়াজিব নয়, আপনার উপরে ওয়াজিব, রাসূল বলেছেন। কেবলমাত্র যারা এই স্টেজে বসে আছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সকলকে সালামত রাখুক, এটা একটা বড় নেয়ামত যে আমাদের মাঝে উলামা আছেন, এটা আল্লাহর করম, মেহেরবানি। 20 বছর পূর্বে আপনি ফিরে যান, এই বাংলার অবস্থা কি ছিল, কিন্তু আজ মাশাআল্লাহ গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় আপনি পেয়ে যাবেন, বড় নেয়ামত, কদর করেন। যদি আপনি কদর না করেন নেয়ামতের, তাহলে কিছুদিন পরে বুঝতে পারবেন, কদর করেন। তো প্রথম জিনিস কি? চারটি জিনিসের মধ্যে প্রথম জিনিস আলেমে দ্বীন। আলেমে দ্বীনের কাজ কি হবে? আলেমে দ্বীন সে নিজে, সে যে শিক্ষা অর্জন করেছে তার উপরে যেন আমল করে। প্রথম জিনিস দ্বীন ও দুনিয়ার কিয়াম, সেটা বাকি ও টিকিয়ে রাখার জন্য এটা দরকার। প্রথম জিনিস মনে রাখবেন, আলেমে দ্বীন তার শিক্ষার উপরে যেন সে আমল করে। নম্বর 2, ওয়া জাহিলিন লা ইস্তানকিফু আন ইয়াতাআল্লাম। নম্বর 2, যেহেতু রিওয়ায়াতে এসেছে জাহিল মূর্খ, অনুবাদ করতে আমি কি করব, এছাড়াও আমার কাছে ভাষাও নেই, এর মানে মূর্খ হয়। কিন্তু মূর্খ মানে কি এতে আমিও শরীক আছি এমনটা নেই। অতএব যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে মূর্খ। ভাই আমার যদি বলা হয় এখন ওই চাঁদের বিষয়ে বলো, ওই মূর্খ, আমি জানা নেই আমার, তো এই বিষয়ে আমি মূর্খ, আমি অজ্ঞ, ওই বিষয়ে জ্ঞান নেই। তো দ্বীনের বিষয়ে যাদের কাছে জ্ঞান নেই, তো দ্বীনের বিষয়ে তারা মূর্খ। তো রিওয়ায়াত কি বলছে যে ওয়া জাহিলিন লা ইস্তানকিফু আন ইয়াতাআল্লাম, যারা মূর্খ, যারা জানে না,
ছোট ছোট মাসলা মাসাইল, অজু গোসল হতে পারে। আমার বয়স 60 বছর, কিন্তু আমার গোসল জানা নেই, অজু জানা নেই, সঠিক নামাজ জানা নেই। আমি কয়েকটা শুধু উদাহরণ হিসাবে বলছি। তো যে বিষয়ে, দিনের বিষয়ে আমার জানা নেই, তো আমি মূর্খ, তো আমার এটা উচিত নয় যে আমি লজ্জাবোধ করব শেখার জন্য। যে কেউ হতে পারে, বয়স যাই হোক না কেন, যে বিষয়ে জানা নেই দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে, সেটা আমরা যেন জেনে নেই, লজ্জাবোধ না করা। যদি লজ্জা করি তাহলে দ্বীন ও দুনিয়া কায়েম টিকে থাকবে না, রিওয়ায়াত বলছে। তো দুটো জিনিস হলো, নম্বর 3, ওয়াজাওয়াদিন লা ইয়াবখালু বিমারুফি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাদেরকে অর্থ দিয়েছেন, ধন ও দৌলত দিয়েছেন, তারা যেন কৃপণতা না করে খরচা করার জন্য। এমনকি আপনি কোরআনে মজিদ যদি তুলে দেখেন, তাহলে সেখানে আপনি আয়াত পেয়ে যাবেন যে কিয়ামতের দিন হবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অর্থ দিয়েছিল, ধন দৌলত দিয়েছিল। কোরআন এটাও বলছে, রিওয়ায়াতও বলছে, অর্থ দিয়েছে, খরচা করলাম না, কৃপণতা করলাম, মাল অর্থ সব জমা করে রাখলাম, আমি এই দুনিয়া থেকে চলে গেলাম, হাসরের ময়দান হবে, ওই মাল ও দৌলত যাই দুনিয়াতে জড়ো করে রেখে গিয়েছিলাম, কিয়ামতের দিন তার হিসাব দিতে হবে। এমনকি সেই মাল ও দৌলতের ত্বক তৈরি করে, হার মালা তৈরি করে পরিয়ে দেওয়া হবে। ভোগো ভাই, এমন ধন দৌলত নিয়ে তাহলে কি হবে? অতএব জড়ো করে, জমা করে গরিবদেরকে, ফকিরদেরকে, মিসকিনদেরকে বা দ্বীনের পথে, ইসলামের পথে, আল্লাহর পথে খরচা না করে আমি জমা করলাম, বেকার না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে ধনী বানিয়েছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে দিয়েছেন, খরচা করেন দ্বীনের পথে। অমুক অমুক জায়গায় নয়, আমি সেটা বলবো না, দ্বীনের পথে, ইসলামের পথে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রাস্তায়। তাহলে 3 হলো। এবং নম্বর 4, ওয়া ফাকিরিন লা ইয়াবিউ আখিরাতুহু বিদুনিয়া। অনেক গরীব, ফকির, মিসকিন আছে, তাদেরও একটা কর্তব্য, যদি তারা এটা না করে তো দ্বীন দুনিয়া এটা কেয়াম পাবে না, বাকি থাকবে না। সেটা কি গরিব হোক, ফকির হোক, মিসকিন হোক, সে যেন নিজের দ্বীনকে দুনিয়ার পরিবর্তে বেচে না দেয়। কিন্তু আমরা যখন নেওয়ার সময় হয়, আমরা সকলেই গরিব, আর যখন দেওয়ার সময় হয় তার থেকে বড় গরিব। সালাওয়াত বার মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। আমি প্রায় মজলিসে বলি যে আমাদের ঈমান যদি মাপতে হয়, তাহলে আমাদের ঈমানের মূল্য 2 কেজি চাল। আমি প্রায় বলে থাকি, কিরকম তার প্রমাণ আপনি পেয়ে যাবেন। এ ভাই, চাল আমার দেয়নি, ওই কমিটিতে আর যাওয়া যাবে না, চল আলাদা একটা কমিটি। ভাই, নিজেকে চিনুন, নিজের জায়গা তৈরি করুন, নিজেকে বুঝুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যতটুকু দিয়েছে তার উপরে সন্তুষ্ট। আল্লাহ রাজি, মানুষকে রাজি করার প্রয়োজন নেই, আল্লাহ রাজি তো সব ঠিক। কিন্তু হাজার লক্ষ মানুষকে আপনি রাজি করে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করবেন, কিছুই কাজে আসবে না। আসুন এর সাথে সাথেই বাস আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বারগাহে দোয়া করি যে পরওয়ারদিগারে আলম, আমার ডান দিক থেকে মা ও বোনেরা, মোমেনাতগণ, তাদের কাছে বিনীতভাবে আবেদন, অনুরোধ, আপনারা একটু আওয়াজ ধিমে করুন, এখানে খুবই ডিস্টার্ব হচ্ছে। একবার সালাওয়াত বার মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমরা দোয়া করি, পরওয়ারদিগারে আলম, এই 4টি জিনিস যদি আমরা আলিম হয়ে থাকি, পরওয়ারদিগার আমাদের ইলমের উপরে, শিক্ষার উপরে আমল করার তৌফিক দান করো।
परवरदिगार আমরা যদি মূর্খ জাহিল হয়ে থাকি, দিন সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে থাকি, परवरदिगार ইলম ও শিক্ষা অর্জন করার দ্বীনের মারিফত অর্জন করার তৌফিক দান করো। परवरदिगार তুমি আমাদেরকে যদি দিয়ে থাকো परवरदिगार দ্বীনের পথে, তোমার পথে, আল্লাহর রাস্তায় খরচা করার তৌফিক দান করো। परवरदिगार আমরা যদি গরিব হয়ে থাকি परवरदिगार আমার ঈমান আমার কাছে অটুট থাক, মূল্যবান হয়ে থাক, দুনিয়া দিয়ে এটা যেন বিক্রি না করতে পারি সেই তৌফিক দান করো। আমাকে যেন দুনিয়ার পরিবর্তে সেটা বিক্রি না করতে হয়, বাধ্য না করা হয় সেই তৌফিক দান করো। परवरदिगार তোমার কাছে এই হাত তুলে মুনাজাত ও ফরিয়াদ করি। परवरदिगार আমাদের আখেরি হুজ্জত ইমামে মেহদী আজ্জালাল্লাহু তাআলা ফরজুহ শরীফ তানাকে সর্বদা সুস্থ রাখো, আমাদের সকলকে মের পতাকাতলে শামিল হওয়ার তৌফিক দান করো। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। बहुत शुक्रिया आगा जान, बहुत शुक्रिया। आली जनाब मौलाना असद साहब क़िबला की पूरे इल्म तकरीर और बहुत सी हदीसें मौलाना असद साहब क़िबला ने पेश की। अच्छा, खबर ही नहीं हुई, मैं नीचे बैठा हुआ था, इधर मैंने देखा ही नहीं कि एक एक दाना उठ के जा रहा था। और जो मुरत्तब तस्बीह थी, कम से कम हमारे उलमा की इन बातों को सुनना चाहिए, इसलिए कि अगर आलिम हमें इल्म नहीं देगा तो कभी भी हमारी रूह सैर नहीं हो सकती। इसलिए कि वो हुस्न के जो आईने के सामने होता है वो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ये जो हुस्न अता करेंगे वो आपको भी हसीन करेगा, आपकी नस्लों को भी हसीन कर देगा। तो इल्म बहुत बड़ी दौलत है, और जो आलिम हो, जिसके पास इल्म हो, अमीर को, और जो जाहिल है उससे बड़ा फकीर कोई नहीं। जो आलिम होगा वो जिंदा होगा, जो जाहिल होगा वो जिंदा हो के भी मुर्दा होगा। आइए, जब आप चले गए हैं उसी वादी में, मेरी जिम्मेदारी अब फिर बढ़ गई है, मेरी ड्यूटी बढ़ गई है कि मैं ज़ुहैर सुल्तानपुरी को आपके हवाले करूं। अब यहाँ जो हमारे नौजवान बैठे हैं, देख रहे हैं आप, ये पीला कुर्ता पहने हुए, ये नीला कुर्ता पहने हुए, और वो वहाँ लाल शर्ट पहने हुए, ये अच्छा मैंने बहुत पहले कहा था, अब मैं आपको जोड़ने के लिए एक बात कह दूं, इसे याद रखिएगा। महबूब के वादे पर एतबार का नाम है इंतजार। अगर एतबार नहीं होता तो इंतजार नहीं होता। 1400 साल से एतबार है कि कोई आने वाला है, तो हमारा इंतजार बाकी है। अगर एतबार ना होता तो आज तक इंतजार बाकी ना होता। घर जाइएगा तो 2 रकअत शुक्राने की नमाज अदा कीजिएगा कि उस माँ की गोद में परवान चढ़ रहे हैं और उस फर्श पर आकर बैठे हैं जहां बगल में आपके पहलू में आदम बैठे हैं, कहीं पे ईसा बैठे हैं, कहीं पे मूसा बैठे हैं, कहीं पे यहिया बैठे हैं, कहीं जकरिया बैठे हैं। आइए, मैं सिर्फ एक बात कह दूं, ये मैसेज बहुत दूर तक जाए, क्योंकि मैंने रंगों की बात की है। यहाँ नीला रंग है, वहां लाल रंग है, ये पीला रंग है। तो मैंने कहीं कहा था कि हमारे यहाँ अगर कोई हरा रंग पहनता है तो वो भी बहुत मकबूल है, कोई लाल पहनता है वो भी मकबूल है। हमारे भाई सफेद रंग की टी शर्ट पहन के बैठे या सफेद शॉल डाल लें, ये जैसे सफेद है ना, आप देख रहे हैं 3 रंग है हमारे यहाँ। लाल मंसूब है इमाम हुसैन से। लाल रंग किसका है? इमाम हुसैन का। जुमला दे रहा हूं, तबर्रुक के तौर पे रख लीजिएगा। लाल रंग मंसूब है इमाम हुसैन से, हरा रंग मंसूब है इमाम हसन से, और सफेद रंग मंसूब है हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम से। सलावत पढ़ दीजिए आप हजरात, नाम लिया है मैंने। तो कितने रंग हो गए हमारे यहाँ? कितने रंग हो गए? रंग ना भूलिएगा, ये भूल जाइएगा। कितने रंग हो गए? हरा, लाल, सफेद। सफेद मौला अली का, हरा इमाम हसन का, लाल इमाम हुसैन का। तो असली तिरंगे वाले तो हम हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूं, आपने गौर किया? असल तिरंगे वाले हम हैं। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगे पे हम कुर्बान हैं। आइए, मैं जरा साहब को जोड़ रहा हूं। ज़हूर हुज्जत आखिर ये फैसला होगा, उसी रंग में आइए कि ज़हूर हुज्जत आखिर ये फैसला होगा, ज़हूर हुज्जत आखिर ये फैसला होगा। ज़हूर, मेरा भाई यहां तक आ जाए तो मैं दूसरा मिसरा पढ़ूं कि ज़हूर हुज्जत आखिर ये फैसला होगा, ज़हूर हुज्जत आखिर ये फैसला होगा, ज़हूर हुज्जत आखिर ये फैसला
होगा, ज़मीन करबला तेरा तस्करा होगा, ज़हूर हुज्जत आखिर ये फैसला होगा, ज़हूर हुज्जत आखिर ये फैसला, ज़मीन करबला तेरा तस्करा होगा। मेरे इमाम को गैबत से आ तो जाने दो, हर एक के कांधे पे सरवर का ताजिया होगा। है पीछे वाले जवाब दे, ये मौला की सरकार है, जवाब दीजिए। हाँ हैदरी, ज़हूर हुज्जत आखिर ये फैसला होगा, ज़मीन करबला तेरा तस्करा होगा। मेरे इमाम को गैबत से आ तो जाने दो, हर एक के कांधे पे सरवर का। गदीर वाले बैठे हैं, मिलके बोलिए। हमने हंसना भी मैदान से लिया, रोना भी मैदान से लिया। हंसते हैं तो गदीर का जिक्र करते हैं, रोते हैं तो करबला का जिक्र करते हैं। हमने हुजरों से इस्लाम नहीं लिया, कोट। अच्छा एक बात कह दूं, मुस्कुराते हुए हमारे उलमा बैठे, हमारा ताल्लुक बुझी हुई मोमबत्तियों से नहीं है। आपने गौर नहीं किया? ये नारा लगाते हैं तो मुझे मदीना याद आ जाता है। क्या नारा लगा रहे हैं? सलामत रहिए, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए, पास आ जाइए, करीब आ जाइए, थोड़ा समट आइए। वो जो वहां खड़े हैं वो खुद आ जाएंगे, आप थोड़ा सा करीब आ जाए। भैया ख्याल आया है, हंसते हंसते सागिर को ख्याल आया है। हाँ। बाप के सामने बैत का सवाल आया है। बाप के सवाल, आइए आइए, थोड़ा सा करीब आइए। बैत का सवाल आया है और 6 महीने के मुजाहिद को ऐसा जला लाया, आस्तीन उलाट के बानू का लाल आया। एक नारे हैदरी। अरे मैं तलवार की गुफ्तगू इमाम से करने जा रहा हूँ, जरा सा तैयार होके बैठिए, बाजुओं की मछलियों को बेदार कीजिए। अच्छा एक महफिल वहां चल रही है, वो देख रहे हैं, मेरी नजर पड़ गई, कम से कम आप इस महफिल में जुड़ जाइए। ज़हूर हुज्जत आखिर ये फैसला होगा, ज़हूर हुज्जत आखिर ये फैसला होगा। ऐसी निजामत तो मैंने कहीं नहीं की जो आज कर रहा हूँ। 2 साल कबल का जमाना मुझे याद आ गया कि ज़हूर हुज्जत आखिर ये फैसला होगा, ज़मीन करबला तेरा तस्करा होगा। मेरे इमाम को गैबत से आ तो जाने दो, हर एक के कांधे पे सरवर का ताजिया होगा। कहा ये तेगे अली ने इमाम हुज्जत से, मेरे नसीब में क्या शिमर का गला होगा। अरे अब तो जरा सा जुड़िए, अब इमाम की गुफ्तगू इमाम से तलवार की मैं करवा रहा हूँ, जरा सा जुड़ के सुनिएगा। कहा ये तेगे अली ने इमाम हुज्जत से, मेरे नसीब में क्या शिमर का गला होगा। कहा ये तेगे अली से इमाम कायम ने, तेरे नसीब में मैं क्या कहूँ कि क्या होगा। अली के खून का बदला जरूर ले लेना, फिर उसके बाद तेरा बार दूसरा होगा। अरे बला के दश्त में असगर को मारने वाला तेरा शिकार जमाने में हुरमुला है। भैया आखिरी गुफ्तगू पढ़ रहा हूं, आप उसी रंग में आ गए। सलामत रहिए, जीते रहिए, आबाद रहिए। कहा ये तेगे अली ने, आखिरी गुफ्तगू सुनिए कि कहा ये तेगे अली ने इमाम कायम से, मेरे नसीब में क्या शिमर का गला। मैं तो देखो मेरे नसीब में क्या शिमर का गला होगा। मैं चारों तरफ देख के निजामत करता हूँ, कोई इधर उधर हुआ तो ये समझ लीजिए किबले की तरफ देखिए, किबले से रुख ना फेरिएगा, ताकि आपका तवाफ मुकम्मल हो और हज का पूरा सवाब मिले, उम्रे का पूरा सवाब मिले, हज मकबूला का सवाब मिले। सलामत रहिए। अगर हमें ना देखिए, उलमा की तरफ देख लीजिए, कम से कम किबला रुख रहिए, क्योंकि इतने जाहिर सी बात है हमारे उलमा बैठे हुए हैं, इनके चेहरे की तरफ देखना इबादत है। मैं आपके सामने हूं और इस वक्त उससे ज्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं कि जो जिक्र अहले बैत कर रहा हो। और खूबसूरत चीजों को देखने से आंखों की बीनाई बढ़ जाती है। हदीस मासूम है, सुनिएगा कि कहा ये तेगे अली ने इमाम कायम से, तो क्या मेरे नसीब में क्या शिमर का गला होगा। कहा ये तेगे अली से इमाम हुज्जत है, तेरे नसीब में मैं क्या कहूं कि क्या होगा। अली के खून का बदला जरूर ले लेना, फिर उसके बाद तेरा वार दूसरा होगा। बला के दश्त में असगर को मारने वाला तेरा शिकार जमाने में हुरमुला होगा। कहा ये तेगे अली ने इमाम हुज्जत से, तो क्या यजीद का उसजा कहीं पता होगा। कहा इमाम ने वो आखिरी निवाला है, उसी के बाद मुकम्मल ये मरहला होगा। अरे हुसैन वाले तो परचम के साए में होंगे, यजीदियत का जनाजा निकल रहा।
जीते रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हुसैन वाले तो परचम के साए में होंगे। यजीदियत का जनाजा देखिए कितने बरकती मिसरे हैं। सलामत रहिए, आबाद रहिए। हुसैन वाले तो परचम के साए में होंगे। यजीदियत का जनाजा निकल रहा होगा। आइए हजरात, मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मोहतरम ज़ुहैर सुल्तानपुरी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे इजाजत दे दें आप, खाली इतनी कि मैं मोहतरम अजीज आजमी साहब की खिदमत में हर्फ इल्तिमास। अरे यहाँ ना बोलूंगा तो कहाँ बोलूंगा? ऐसा मजमा मिलेगा मुझे दोबारा? अगर किस्मत में होगा दोबारा मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन आज तो बड़ा दिल खुश हुआ। आइए, मैं मोहतरम अक्सर मैंने यही किया इसलिए क्योंकि वो सब आमादा रहे। अरे ज़ुहैर भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं और ये मैं चाह रहा था ज़ुहैर भाई पढ़े, लेकिन कमेटी की तरफ से जरा इशारा हुआ, जरा सा मैंने तरतीब बदल दी। मोहतरम ज़ुहैर सुल्तानपुरी साहब से पहले मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ। अरे अपने लहजे का मुनफरिद शायर जो शेर पढ़ता नहीं है, शेर दिखाता भी है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ। हर दिल अजीज मोहतरम अजीज आजमी, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और अपने कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। अजीज भाई पहली मर्तबा आए, पहली मर्तबा है। अरे कयामत है, शेर कछार से मैदान में आ गया। अब देख रहे हैं आप, अब शेर सुनिएगा भी, शेर देखिएगा भी। और आपसे गुजारिश है कि बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात से हमारे मोहतरम अजीज साहब का इस्तकबाल कीजिए। बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़िए आप। हाज़रीन महफिल सलामुन अलैकुम। पहले तो मैं जश्न की आप तमामी हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फरहान भाई भी तशरीफ ला चुके हैं माशाअल्लाह। चार मिसरे समात कर लें। आइए जुल्फ़िकार हैदरी क्या कहती है, आइए समात कर लें। लूंगी कसास आके मैं बिनते रसूल का, लूंगी कसास आके मैं बिनते रसूल का, सदियों से गैब में हूँ इसी इंतजार में। लूंगी कसास आके मैं बिनते रसूल का, सदियों से गैब में हूँ इसी इंतजार में। कब तक छुपेंगे दहर में कातिल बतूल के, आएंगे एक रोज वो मेरे रडार में। मौला अब्बास की हैबत बयान कर रहा हूँ। एक लफ्ज इस्तेमाल किया था इरताज भाई, एक लफ्ज इस्तेमाल किया था भदर भदर, एक लफ्ज इस्तेमाल किया भदर भदर। जब कोई दौड़ता है भागता है तो जो पाँव की आवाज आती है उसे बोलते हैं भदर भदर। मौला अब्बास की हैबत सुने कि आती थी हर तरफ से सदा अल अमान की, आती थी हर तरफ से सदा अल अमान की, रहवार मोड़ता था जरी जब जिधर जिधर। आती थी हर तरफ से सदा अल अमान की, रहवार मोड़ता था जरी जब जिधर जिधर। अल्लाह रे ये जलाले अलमदार करबला, अल्लाह रे ये जलाले अलमदार करबला, मैदान से भागते थे सितमगर भदर भदर।
भागते थे सितमगर भदर भदर। प्यार से और समाप्त कर ले। खाके नमक नबी का नबी से दगा करे, खाके नमक नबी का नबी से दगा करे, तुम ऐसे बेवफा से कहो आई हेट यू। खाके नमक नबी का नबी से दगा करे, तुम ऐसे बेवफा से कहो आई हेट यू। उल्फत करो हर एक तौहीद पे हुसैन पे, हर दुश्मन अज़ा से कहो आई हेट यू। एक लफ्ज का इस्तेमाल किया था फीमेल, जिसे महिला बोलते हैं, आप लोग समझते हो। हैदर कर्रार की दुश्मन है तू, हैदर कर्रार की दुश्मन है तू, हो गया साबित तुम्हारे फेल से। हैदर कर्रार की दुश्मन है तू, हो गया साबित तुम्हारे फेल से। बोले ये जंगे जमल में मुर्तजा, जंग मैं कैसे करूं फीमेल से। वाह 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 वाह। देखिए हमारे आजमगढ़ से, अरे जंग में कैसे करूं फीमेल से, कयामत है। वाह वाह। और भाई हमारे फिर से पढ़ रहे हैं भाई। हैदर कर्रार की दुश्मन है तू, हैदर कर्रार की दुश्मन है तू, हो गया साबित तुम्हारे फेल से। बोले ये जंगे जमल में मुर्तजा, जंग मैं कैसे करूं फीमेल से, जंग मैं कैसे करूं फीमेल से, जंग मैं कैसे करूं फीमेल से। नारे सलवात एक बार पढ़ दें। मारेंगे फरिश्ते, मारेंगे फरिश्ते उन्हें महशर में चटाचट, मारेंगे फरिश्ते उन्हें महशर में चटाचट, जो कर गए हक फातिमा ज़हरा का सफाचट। मारेंगे फरिश्ते उन्हें महशर में चटाचट, जो कर गए हक फातिमा ज़हरा का सफाचट। फिर बाग के पैरों में रसन सारे फरिश्ते ले जाएंगे दोज़ख की तरफ उनको फटे। तुम्हारी बात से होता है साबित, तुम्हारी बात से होता है साबित, तुम्हारे दिल में बुग़्ज़े मुर्तज़ा है। तुम्हारी बात से होता है साबित, तुम्हारे दिल में बुग़्ज़े मुर्तज़ा है। अली से जिनको अफजल कह रहे हो, मेरे जूते का कद उनसे बड़ा है। अली से जिनको अफजल कह रहे हो, अली से जिनको अफजल कह रहे हो, मेरे जूते का कद उनसे बड़ा है। छोड़कर अपनी हर एक इज्जत
व गैरत का ख्याल, छोड़कर अपनी हर एक इज्जत व गैरत का ख्याल, लेके मैदान में हजारों का रिसाला निकली, आ गई हैदर कर्रार से लड़ने के लिए। कैसी भाभी थी जो शैतान की खाला निकली, कैसी भाभी थी जो शैतान की खाला निकली। कैसी भाभी थी जो शैतान की खाला निकली, कैसी भाभी थी जो शैतान की खाला निकली। सलामत रहिए भाई, खुदा सलामत रखे आपको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक लफ्ज का इस्तेमाल किया है डस्टबिन। नदीम भाई बतौर खास, डस्टबिन जानते हैं आप लोग, कूड़ेदान। हम शिया उनको समझे मुसलमान किस तरह, हम शिया उनको समझे मुसलमान किस तरह, खामी निकालते हैं जो अहमद के दीन में। हम शिया उनको समझे मुसलमान किस तरह, खामी निकालते हैं जो अहमद के दीन में। फतवे जो देते रहते हैं शब्बीर के खिलाफ, है ऐसे मुफ्तियों की जगह डस्टबिन। मुफ्तियों की जगह जो निकले, देखिए हमारे तरफ जो निकले दोष पे हम ताजिया उठाए हुए, जो निकले दोष पे हम ताजिया उठाए हुए, जो निकले दोष पे हम ताजिया उठाए हुए, यजीद शहर नजर आए तिल मिलाए हुए। जो निकले दोष पे हम ताजिया उठाए हुए, जो निकले दोष पे हम ताजिया उठाए हुए, यजीद शहर नजर आए तिल मिलाए हुए। वो रोकने के लिए आए थे जुलूसे अज़ा, वो रोकने के लिए आए थे जुलूसे अज़ा। घरों में बैठ गए अपना मुंह पिटाए हुए, घरों में बैठ गए अपना मुंह पिटाए हुए, घरों में बैठ गए अपना मुंह पिटाए हुए। जो निकले दोष पे हम ताजिया उठाए हुए। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहिए भाई, माशाअल्लाह।
भाई क्या कहने, हमें तो लगता है कि जब इमाम आएंगे और कब्रों से उठाएंगे उन सबको, तो पहले मारने वाले आप ही होंगे। क्या नारा है नहीं? अब देखेंगे हमारी तरफ निगाह है। देखिएगा अमरे आस कैसे भागा था, मौला अली को देख के अमरे आस कैसे भागा था। मुकाबले में वो आया था शेरे दाबर के, मुकाबले में वो आया था शेरे दाबर के, मगर वो जंग के मैदान से हार कर भागा। मुकाबले में वो आया था शेरे दाबर के, मगर वो जंग के मैदान से हार कर भागा। अली ने गैज में जब अमरे आस को देखा, बदन से अपने वो कपड़े उतार कर बहुत बहुत शुक्रिया भाई, सलामत रहे। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मौला सलामत रखे आप लोगों को। हजरात, मैं आप सबके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन सिर्फ आपसे गुजारिश ये है कि वाकई आपके लिए तो एक लफ्ज कहने का जी नहीं चाह रहा है, क्योंकि इतना अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं कहीं भी कुछ भी कह देता हूं, किसी को भी कह देता हूं, लेकिन आपके लिए ताकत ही नहीं है मेरे अंदर कि मैं एक लफ्ज कहूं। लेकिन बहुत माजरत के साथ शोराए किराम को कलाम पेश करना, नारा खूब लगाइए, लेकिन शेर इनसे ही सुन ले तो ज्यादा बेहतर होगा। नारा हैदरी। उन्हीं को रास अली की बेला नहीं आती, उन्हीं को रास अली की बेला नहीं आती, वो जिनकी नस्ल का कोई पता नहीं मिलता। उन्हीं को रास अली की बेला नहीं आती, वो जिनकी नस्ल का कोई पता नहीं मिलता। अली के बुग़्ज़ में वो भौंकते हैं रह रह कर, अली के बुग़्ज़ में वो भौंकते हैं रह रह कर। ये बात सच है कि कुत्तों को घी नहीं पचता, ये बात सच है, ये बात सच है कि कुत्तों को घी नहीं पचता, ये बात सच है कि कुत्तों को घी नहीं पचता। कह रहे हैं ये जफाकार, कह रहे हैं ये जफाकार, चलो भाग चलो। कह रहे हैं ये जफाकार, चलो भाग चलो। आ गया गैज़ में जर्रार, चलो भाग। आ गया गैज़ में जर्रार, चलो भाग। इसकी है बस सही मर जाएगा सारा लश्कर, छोड़कर नेज़ा और तलवार, चलो भाग। छोड़कर नेज़ा और तलवार, छोड़कर नेज़ा और तलवार। रब्त रखते नहीं हम ऐसे मुसलमान के साथ, रब्त रखते नहीं हम ऐसे मुसलमान के साथ, दुश्मनी रखते हैं जो बोलते कुरान के साथ। रब्त रखते नहीं हम ऐसे मुसलमान के साथ, दुश्मनी रखते हैं जो बोलते कुरान के साथ। लाख दुनिया में इबादत पे इबादत कर ले, लाख दुनिया में इबादत पे इबादत कर ले, वो जहन्नम में जलेंगे अबू सुफियान के साथ। वो जहन्नम में जलेंगे, वो जहन्नम में जलेंगे अबू सुफियान के साथ। देखा था फकत गैज़ में अब्बास जरी ने, देखा था फकत गैज़ में अब्बास जरी ने, गिरने लगे घोड़ों से जफाकार धमाधम। देखा था फकत गैज़ में अब्बास जरी ने, गिरने लगे घोड़ों से जफाकार धमाधम। मिलती जो इजाजत तो हर एक सिमत से होती, बरसात सरों की सरे मैदान जमा।
वरना सलवात और लगा दें। हैदर 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 जो भाई बहुत शुक्रिया। जो दोस्तदार शहे नामदार होता है, जो दोस्तदार शहे नामदार होता है, उसी को शम्सो उतारिद से प्यार होता है। जो दोस्तदार शहे नामदार होता है, उसी को शम्सो उतारिद से प्यार होता है। अली का जिक्र जो करते नहीं जमाने में, उन्हीं के सर पे सनीचर सवार हो, उन्हीं के सर पे सनीचर सवार होता है, उन्हीं के सर पे सनीचर सवार होता है। नर्स हमारे अजीज भाई, अच्छा कौन सा अच्छा पैसा, अच्छा ये सनीचर सवार होता है, वही है। ये कुंडली उंडली भी देखते हैं, समझ गए ना शनि सवार है कि नहीं है, तो देख लें। हमारे अजीज भाई बहुत उम्दा कलाम पेश कर रहे थे, हैं माशाअल्लाह। मौला आपको कटी जबान से मीसम सनाए करने लगे, मुनाफिकीन खड़े साएं साएं करने लगे। ये हमारे अजीज आजमी साहब के तुलुए माहे मुहर्रम पर मुफ्तियाने फसाद हजारों फतवे लिए काएं काएं करने लगे। इस लहजे में ये पढ़ रहे थे, शेर पढ़ भी रहे थे, शेर दिखा भी रहे थे। लेकिन आइए मैं इस वक्त आपको तहत की वादियों से निकाल के अब आपको ले चलूं। हैं अच्छा तुम थे ही नहीं जब हम पढ़ रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे तुम नहीं थे। अच्छा अब नहीं चले गए थे। मैंने दो बंद उस्ताद कमर जलालवी के पढ़े हैं। अब ये इतना बड़ा मजमा है, अरे कसम खुदा की ऐसा लग रहा है कि तस्बीह मुरत्तब है। मैंने एक शेर नहीं पढ़ा था, अब पढ़ के मैं देख लेता हूँ। मैं वैसे तो नहीं पढ़ पाऊंगा, अजीज भाई जैसे पढ़ते हैं मैं वैसा कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। इस दुनिया से मेरी रुखसती हो जाए, लेकिन वैसा तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा जैसे वो पढ़ते हैं, क्योंकि मैं पढ़ पाता हूँ, शेर दिखा नहीं पाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अजीज भाई क्या क्या मिसरे सुनाए, क्या क्या मुहावरे सुनाए हैं, कसम खुदा की। आइए कि अब ये जरा सा इस पे भी दुआ दे दीजिए भाई आरजू। हार लिए ना बैठो, पहना देना। हाँ हार अच्छे नहीं लगते, नहीं एक शेर के बाद पहनाना। अरे इम्तिहान के बाद रिजल्ट आता है, इम्तिहान से पहले नंबर दे रहे हैं आप। सुनिए हसन की सुलह का अगर वाकया तुमने पढ़ा होता, किताबे जिंदगी पे करबला, मेरा भाई फरहान भी आ चुका है। हसन की सुलह का अगर वाकया तुमने पढ़ा होता, किताबे जिंदगी पे करबला का हाशिया होता। मदीने में अगर अब्बास की तलवार चल जाती, जनाजे पर हसन के करबला का फैसला होता। जरा सोचो, शेर पढ़ रहा हूं, जरा सोचो वो जो तावीज बाजू पर था कासिम के, अगर गाजी के बाजू पर बंधा होता तो क्या? अब नारा मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजरात आइए, ये छलकता हुआ मजमा, ये तस्वीर का गहरा रंग हम इसे फीका नहीं करना चाहते। उलमा का इस्तकबाल कर रहे हैं, हम खैर मकदम करते हैं। बच्चों बस 5-5 मिनट के लिए खामोश हो जाया करो, फिर बोला करो। और बहुत अच्छा लग रहा है, हम इस्तकबाल कर रहे हैं आलिम दीन का। आप हजरात से गुजारिश है बावाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमाएं। हमारे उलमा यहाँ मौजूद हैं। अरे आप क्या दाद दे रहे थे जब अजीज भाई पढ़ रहे थे, उसी वक्त मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया। एक एक मिसरे पे खड़े हुए जा रहे थे, खुदा की कसम। अरे मौला आपको सलामत रखे, जीते रहिए, मौला आपको आबाद रखें। आइए
अरे हमारे यहाँ आज थोड़ी सी ठंडी है, यहाँ है ठंडा मौसम हल्का सा। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ बाहर, तभी तो मैं शॉल लेकर आया हूँ। हल्की सी ठंडी थी, यूपी जैसी नहीं पड़ती है, लेकिन इस वक्त है ठंडक थी। तो जैसे बैनुल हरमैन करबला में 3 डिग्री पे था टेम्परेचर, लेकिन जब शायर पढ़ रहा था तो 42 डिग्री से पढ़ रहा था। हाँ, तो पता ही नहीं चला कि ठंड है कि नहीं है, क्योंकि जहां विलायत की गर्मी होती है वहां इस ठंडी का असर नहीं होता। तो मैंने वहां कहा था कि सब मंजिलों पर भारी है मंजिल हुसैन की, सर्दी न रोक पाएगी महफिल हुसैन की। सब मंजिलों पर भारी है मंजिल हुसैन की, सर्दी न रोक पाएगी महफिल हुसैन की। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम फरहान बनारसी साहब की खिदमत में कि वो कलाम पेश करें। जनाबे ज़ुहैर सुल्तानपुरी साहब के बाद मैं इस वक्त गुजारिश गुजार हूं मोहतरम ज़ुहैर सुल्तानपुरी साहब की खिदमत में कि वो आए और अपने कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। अरे कुछ तो ऐसा कर जाऊं कि जाने के बाद याद रखिए, नारा हैदरी। हाज़िरीन महफिल सलाम अलैकुम, माशाअल्लाह मौला सलामत रखें। और बस यहीं से मतलब पेश करता हूँ, बेदारी चाहता हूँ भाई, इधर वाले भी बोलेंगे इंशाअल्लाह। मैं बोल रहा फरमाएंगे। दरबार में जब अपने बुला लेते हैं मौला, दरबार में जब अपने बुला लेते हैं मौला, क्या शान करीमी है दिखा देते हैं मौला, दिखा देते हैं मौला। मैं भी वहां पे आऊंगा। हम जैसे गुनहगारों को रोजे पे बुला कर, बेदारी चाहता हूं भाई, हम जैसे गुनहगारों को रोज़े पे बुला कर, अरे बिगड़ी हुई तकदीर बना देते हैं मौला, बिगड़ी हुई तकदीर बना देते हैं मौला, बना देते हैं मौला। जी बेशक, बिगड़ी हुई तकदीर बना देते हैं मौला। जो भी है परचमे अब्बास उठाने वाले, बेदारी चाहता हूं भाई, जो भी है परचमे अब्बास उठाने वाले, जो भी है परचमे अब्बास उठाने वाले, हाँ वही लोग है फिरदौस में जाने वाले, हाँ वही लोग है फिरदौस में जाने वाले, हाँ वही लोग हैं फिरदौस में जाने वाले, लोग हैं फिरदौस में जाने वाले, हाँ वही लोग हैं। मैं एक माहौल इंशाल्लाह लेकर आऊंगा। हाँ वही लोग हैं फिरदौस में जाने वाले, अपने कातिल को भी, अपने कातिल को भी ये देते हैं जामे शरबात। अरे ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले,
मोहम्मद के घर आने वाले ऐसे होते हैं, मोहम्मद के घर आने वाले ऐसे होते हैं, मोहम्मद के घर आने वाले ऐसे होते हैं, मोहम्मद के घर आने वाले। अब ये शेर आखिरी मंजमे तक तवज्जो चाहता हूँ। हाँ, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। कत्ल ज़हरा में है वो लोग बराबर के शरीक, कत्ल ज़हरा में है वो लोग बराबर के शरीक। अरे जितने भी लोग हैं कातिल को छुपाने, अरे भाई सुने, जितने हैदर, सारे बोले भाई, हैदर नारे जितने भी लोग हैं कातिल को छुपाने वाले, जितने भी लोग हैं कातिल को छुपाने वाले। हार हाथों से पिन्हाएंगे उन्हें खुद मीसाम। अरे हश्र में आएंगे जब नारा लगाने वाले। जब नारा लगाने वाले, गर मुहर्रम न मिले घर का तो क्या होता है। अरे उनसे पूछो जो है परदेश कमाने वाले, उनसे पूछो जो है परदेश कमाने वाले, उनसे पूछो जो है परदेश कमाने वाले। आएंगे जश्न में जितने भी बहादुर होंगे, जश्न अब्बास में बुज़दिल नहीं आने वाले, बुज़दिल नहीं आने वाले। जश्न अब्बास में बुज़दिल नहीं आने वाले, जश्न अब्बास में बुज़दिल नहीं आने वाले, जश्न अब्बास में। और ये शेर उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। हाँ, बुज़दिल नहीं आने वाले। सबको बतला दिया रहबर ने पढ़ा करके नमाज। अरे जुल्म ज़्यादों से कभी हम नहीं डरने वाले, से कभी डरने। मिलके बोले, सारे बोल के हैदर हैदर नारे हैदरी। अब्बास में बुज़दिल नहीं आने वाले, जश्न अब्बास में बुज़दिल नहीं आने वाले, जश्न अब्बास में बुज़दिल नहीं आने वाले, जश्न अब्बास में बुज़दिल नहीं आने वाले। अब बेदारी चाहता हूँ, कलाम पेश करो, बिल्कुल सारे नए कलाम पढ़ रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएंगे। नामे अब्बास पे जो बज़्म सजाई जाए, पीछे वाले भाई बोलेंगे, नामे अब्बास पे
वफादार हो भाई का वो भाई जाए, भाई का वो भाई जाए। कब्र जिस दम मेरी तैयार कराई जाए, थोड़ी सी खाके शिफा उसमें मिलाई जाए। अब ये शेर पेश करता मुलाजा फरमाएंगे। पहले अकबर के मसाइब हो मेरी ख्वाहिश है, के मसाइब हो मेरी ख्वाहिश है। मेरे घर से मेरी मैयत जो उठाई जाए। वाह 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 वाह। माइक खोलक भाई आवाज बढ़ाइए, इको लगाइए। मेरे घर से मेरी मैयत जो उठाई जाए, ज़ियारत करबो बला के लिए सब है मंजूर, चाहे औलाद की गर्दन भी कटाई। अरे भाई बोले हैदर, चाहे औलाद की भी कटाई जाए, चाहे औलाद की गर्दन भी कटाई जाए। अब ये शेर पे मुलाजा फरमाएंगे। कत्ल में फातिमा ज़हरा के हुआ कौन शरीक, कत्ल में फातिमा ज़हरा के हुआ कौन शरीक, अपनी नस्लों को भी ये बात बताई जाए। अब ये शेर इस्तकबाल होगा इस शेर का। अपनी नस्लों को भी ये बात बताई जाए। कातिले फातिमा ज़हरा के तरफदार है जो, लाश दफनाई नहीं इनकी जलाई। अरे भाई सुने, लाश दफनाई नहीं, लाश भाई बोले सलामत रखे। लाश दफनाई नहीं इनकी जलाई जाए, लाश दफनाई नहीं इनकी जलाई जाए। अब ये शेर मौला फरमाएंगे। लाश दफनाई नहीं इनकी जलाई जाए, जश्न और मजलिसों मातम में लुटाना होगा, बस यही सोच के दौलत भी कमाई। अरे भाई सुने हैदर, बस यही सोच के दौलत भी कमाई जाए, बस यही सोच के दौलत भी कमाई जाए। अब ये शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएंगे। आप शायरी सुन रहे हैं। बस यही सोच के दौलत भी कमाई जाए, जान सरवर पे लुटा कर यही कहते हैं हबीब, दोस्ती की है तो फिर मर के निभाई। हैदर हैदर हैदर
की है तो फिर सलामत रहे मौला, आप सब सलामत रखें। दोस्ती की है तो हुसैन भाई आइए, दोस्ती की है तो फिर मर के निभाई जाए। कौम से अपनी गुजारिश यही करता है ज़ुहैर, दुश्मनी अपनों की महफिल में न लाई जाए। महफिल में न ला। अब मैं यहाँ से बिल्कुल नया कलाम पढ़ रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएंगे, आगाज कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएंगे। देख लेना आबिदे बीमार थोड़ी देर में, हाँ थोड़ी देर में। देख लेना आबिदे बीमार थोड़ी देर में, ढाएंगे जालिम तेरी सरकार थोड़ी देर में, हाँ थोड़ी से पढ़ रहा हूं भाई, आप सुनिए। आबिदे बीमार भाई, इधर वाले भी बोले भाई, मेरा साथ दें भाई, मजा आएगा इंशाल्लाह, एक मंजिल तक लेके आऊंगा। हाँ देख लेना आबिदे बीमार थोड़ी देर में, हाँ थोड़ी देर में अपने हाथों पर दरे खैबर को लेकर आएंगे। देख लेना हैदर कर्रार थोड़ी देर में, थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये शेर आप सुनेंगे, इस्तकबाल होगा इस शेर का। थोड़ी देर में अब ये शेर आपकी खामोशी टूटना चाहिए। मातमे जंजीर का ये मोजिज़ा देखा गया, हाँ देखा गया। मातमे जंजीर का ये मोजिज़ा देखा गया। अरे ठीक हो जाता है मातम दार थोड़ी देर में, तो थोड़ी देर थोड़ी देर में ठीक हो जाता है मातम दर थोड़ी देर में। आबिदे मुज़तर के होठों पर तबस्सुम आएगा। आ रहे हैं लेके सर मुख्तार थोड़ी देर में, थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। भाई सुने शेर। आबिदे मुज़तर के होठों पर तबस्सुम आएगा। आ रहे हैं लेके सर मुख्तार थोड़ी देर में, थोड़ी देर में, हाँ थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। गिरदार भाई ये शेर मज़ा फरमाएंगे। हुर के कानों में जो आएगी सदाए अल अतश, हुर के कानों में जो आएगी सदाए अल अतश। इधर देखिए भाई, हाँ हुर के कानों में जो आएगी सदाए सलामत रहे भाई, मौला सबको सलामत रखे। हुर के कानों में आएगी सदा।
हैदरी हैदरी। हुर के कानों में जो आए की सदाए अल्लाह मुलाज़ा फरमाएंगे, आएगा उस पार से इस पार थोड़ी देर में, थोड़ी देर में, थोड़ी देर में आएगा उस पार से इस पार थोड़ी देर में, हाँ थोड़ी देर में, थोड़ी देर में, हाँ थोड़ी देर में। अब ये शेर वादा फरमाएंगे, गर्दने शब्बीर के पास आने दो उसको जरा, अरे होगा होगा खंजर जुल्म का बेकार थोड़ी देर में, थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। हैदर हैदर सारे मिलके बोलेंगे, हैदर 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 हैदर। अब ये शेर मुलाजा फरमाएंगे, आपकी बेदारी चाहता हूं। अपना परचम शान से, अपना परचम शान से दरिया पे लहराएंगे अब, देखना गाजी आलम बरदार थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। या गाजी, या गाजी। थोड़ी देर में, हाँ थोड़ी देर में। राहुल भाई कैमरा घुमाइएगा, इस शेर पे इंशाल्लाह जरूर बोलेंगे। हाँ जब समा जाती है आंखों में वो डॉलर की चमक, सारे बोलेंगे भाई। जाती है वो आंखों में डॉलर की चमक, देखा है बिक जाते हैं दीदार थोड़ी देर में। हैदर थोड़ी देर में। अब ये शेर, चांद निकलेगा मुहर्रम का जो होगी मजलिसे, चांद निकलेगा मुहर्रम का जो होगी मजलिसे, टूटेगा मुफ्ती का कारोबार थोड़ी देर में। हैदर हैदर थोड़ी देर में
मजलिस शबीर की इज्जत की खातिर सुहैल हम लुटा सकते हैं ये घर बार थोड़ी देर में हेलो हेलो मौला के चाहने वालों, जब नारा लगाओ 2 हाथ बुलंद करके नारा लगाओ। हुसैन का बाबा, हुसैन का बाबा, हम सबका लीडर, हम सबका मौला, हम सबका लीडर, हम सबका नारा, नारे हैदरी, हैदरी, चमन चमन गली गली, अली अली या मिलके बोले नगर नगर गली गली, अली अली चमन चमन गली गली, फतवा का शोर, हुसैन का बाबा, नारे बुलंद सलवा। वादा फरमाएंगे शायद ही कोई दिल हो जो एहसान नहीं किया जब दुश्मन अली पे तबर्रा नहीं किया, जब दुश्मन अली पे तबर्रा नहीं किया। आले नबी के जिक्र पे खामोश मत रहो, अरे शुक्र खुदा करो तुम्हें गूंगा नहीं किया, शुक्र खुदा करो तुम्हें गूंगा नहीं किया, शुक्र खुदा करो तुम्हें गूंगा नहीं किया। मजलिस का आके जिसने तबर्रुक को खा लिया फिर उसने मुफलिसी में भी फाका नहीं किया। अब ये शेर इंशाल्लाह अब इस्तकबाल करेंगे इस शेर का। मुफलिसी में भी फाका नहीं किया, गाजी के खैचे कत को जो अब पार कर सके, अरे बच्चा किसी की माँ ने वो पैदा नहीं किया, बच्चा किसी की माँ ने वो हैदर बच्चा किसी की माँ ने वो पैदा नहीं किया, पैदा नहीं किया। अरे बादे नमाज गासिबों पे भेजी लानतें, हमने कोई भी काम अधूरा नहीं किया, हमने कोई भी काम हमने कोई भी काम अधूरा नहीं किया। इंशाल्लाह इस शेर पे सारा मजमा खड़ा होकर दाद देना चाहिए। हाँ, हमने कोई भी काम अधूरा नहीं किया। अरे सक्का बना के माँ ने मुहर्रम में ये कहा, क्या लाल जो हुसैन पे सदका नहीं किया। अब इस्तकबाल होगा इस शेर का। क्या लाल जो नहीं किया, ता हश्र यूं ही पाओगे दुनिया में लानतें, ता हश्र यूं ही पाओगे दुनिया में लानतें। अरे तुमने फितक को छीन के अच्छा नहीं किया,
तुमने फिदा को छीन के अच्छा नहीं किया, मुर्तजा की चौखट पे। जुड़ के सुनिएगा भाई, पीछे वाले जुड़ के सुनिएगा, पेश करता हूं। मुर्तजा की चौखट पर आज क्या नहीं मिलता, आज क्या नहीं मिलता, मतलब का इस्तकबाल। मुर्तजा की चौखट पर आज क्या नहीं मिलता, अरे हुर यहाँ से मिलते हैं, हुर मौलाना ये मिलता। बोले भाई, खुदा के लिए बोले भाई, मौला सलाम के हैदर हैदर सलामत रहे, माशाल्लाह मौला सलामत रखे। पूरी यहाँ से मिलके भाई यार, आज क्या नहीं मिलता, आज क्या नहीं मिलता, मुर्तजा की चौखट पर आज क्या नहीं मिलता। अब ये शेर, अरे याली वो सुनते ही मुंह बिगाड़ लेते हैं, मुंह बिगाड़ लेते हैं, याली वो सुनते ही मुंह बिगाड़ लेते हैं। अरे जिनके बाप दादा का कुछ पता नहीं, जिन आयदारी, जिनके बाप दादा का कुछ पता नहीं मिलता, अरे मुस्तफा की मैयत को तुम जो छोड़े आए थे, मुस्तफा की मैयत को तुम जो छोड़े आए थे, इसलिए तुम्हें सीधा रास्ता नहीं। मुस्तफा की मैयत को जो छोड़ आए थे, इसलिए तुम्हें सीधा आयदारी रास्ता नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता। जो भी बुग़्ज़ हैदर का दिल में लेके मरते हैं, क्योंकि बुग़्ज़ हैदर में तुम नमाज पढ़ते हो, इसलिए तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलता, फायदा नहीं मिलता। जो भी बुग़्ज़ हैदर का दिल में लेके मरते हैं, जो भी बुग़्ज़ हैदर का दिल में लेके मरते हैं, अरे लानतें तो मिलती है, फातिहा नहीं। हैदर
नहीं मिलता। अब आपकी बेदारी चाहता हूं, जुड़ के सुनिएगा। हम अलम उठाएंगे, पूरा मजमा जुड़ के सुनना चाहिए भाई। जो पीछे वाले वो भी, सामने वाले भी दाद देंगे भाई, इधर वाले भी। पूरी बेदारी चाहता हूं भाई। हम अलम उठाएंगे, तुम जलो या मर जाओ। अलम उठाएंगे, सारे बोलेंगे। हम अलम उठाएंगे, तुम जलो, ताजिया सजाएंगे, तुम चलो, ताजिया मर जाओ। अब बेदारी चाहता हूँ। आके रंग में असगर ने फौज से ये फरमाया, आके रंग में असगर ने फौज से ये फरमाया, हमको मुस्कुराएंगे। आए भाई सलामत रहे। हम तो मुस्कुराएंगे, तुम चलो। अब ये शेर इस्तकबाल होना चाहिए। जुल्म चाहे जितना हो, जुल्म चाहे जितना हो, लाख गोलियां बरसे। जुल्म चाहे जितना हो, लाख गोलियां बरसे, करबला तो जाएंगे। सलामत रहे। सारे बोले मिलके भाई, करबला तो जाएंगे, करबला तो जाएंगे, तुम चलो। ओ करबला तो जाएंगे, तुम चलो। करबला तो जाएंगे, तुम चलो। अब ये शेर, कल नबी की मैयत को, कल नबी की मैयत को कौन छोड़ भागा था। कल नबी की मैयत को कौन छोड़ भागा था। हम तो ये बताएंगे, हम तो ये ला बता तो ये चलो या मर जाओ। पूरा मजमा साथ में बोलो। तुम चलो इंशाअल्लाह पूरा मतलब के लिए अहद वफा तोड़ के भागे, अल्लाह के महबूब से मुंह मोड़ के भागे, जो माले गनीमत के लिए छोड़ के भागे। बोसीदा जहां में यहाँ गायक नहीं होता, बोसीदा जहां में यहाँ गायक नहीं होता, बुज़दिल कभी ताज़ीम के लायक नहीं। वाह, नारा हैदरी, सारे मिलके बोलेंगे भाई, सारे मिलके नारा हैदरी, हैदरी।
जलो या मर जा। अभी शेर पे इस्तकबाल होना चाहिए। साल भर कमाएंगे और फिर साल भर कमाएंगे और फिर मुहर्रम में दौलतें लुटाएंगे। चलो या मर जाओ, दौलतें लुटाए। दौलतें लुटाएंगे तुम जलो। जिससे सांस चलती है वो जरी का परचम है, उसको हम उठाएंगे। उसको हम उठाएंगे। हम तो शहर सरवर से हर बरस कफन लाकर, हम तो शहर सरवर से हर बरस कफन लाकर जिंदगी बढ़ाएंगे। तुम के झूठे खुदा की कैद से काबा निकल गया, के झूठे खुदा की कैद से काबा निकल गया। आए आली पुतों का जनाजा निकल गया। अरे हैरत का बात ये है कि कत्ल बुतुल का, अरे बस में नबी में बैठने वाला निकल गया। अरे फासिक शराफखोर नाजिस बेहया यतीम, जैसे था बाप वैसे बेटा निकल गया। नारे हैदरे। हम तो ये बताएंगे तुम जलो। अभी शेर पे भैया इस्तकबाल होना चाहिए। शेर पूरी ताकत से पढ़ता हूं। जिसने कल जलाया था फातिमा का दरवाजा, जिसने कल जलाया था फातिमा का दरवाजा, उसको हम जलाएंगे। उसको हम जलाएंगे। उसको हम जलाएंगे। तुम जलो। उसको हम जलाएंगे। तुम जलो। आप थक गए लग रहा है। उसको हम जलाएंगे। जिक्र मुर्तज़ा अपनी जिंदगी का मकसद है, हम अली सुनाएंगे। हुसैन भाई तुम जलो या मर जाओ। अभी शेर को पीछे तुम लादा फरमाएंगे। अब किसी का दिल टूटे या निकाह ही टूटे, अब किसी का दिल टूटे या निकाह ही टूटे, अब किसी का दिल टूटे या निकाह ही टूटे, हम अलम दिखाएंगे। हम अलम मर जाओ। गैब से मेरे मौला आएंगे ज़ुहैर उस दिन, ईद हम मनाएंगे। बस करें भैया खत्म। तुम जलो या मर जाओ। उसको हम
बस आखिर में एक मतला और चंद अशार और पेश करता हूँ और आपकी रहमत तमाम। थोड़ी सी बेदारी चाहता हूँ, एक बाबा से बुलंद नारे सलवात बस मुलाजा फरमाएंगे आखिरी में, आखिरी फरमाएंगे। उम्मत के लिए दश्त में घर अपना लुटाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। हाँ सजदाए माबूद में से अपना कटाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। जो याद करे कोई भी रहमान को लेके आराम से पढ़ता रहे कुरान को लेके। अरे नैसे पे भी अल्लाह का कुरान सुना ना आसान नहीं है, आसान नहीं है। नैसे पे भी अल्लाह का कुरान सुनाना आसान नहीं है। तू नाम का असगर है मगर काम का अकबर, ये हौसला तेरा ही था 6 माह के हैदर। अरे हल्के से तबस्सुम से सितमगर को रुलाना आसान नहीं है, आसान। आखिरी शेर और आपकी रहमत तमाम, लेकिन इस शेर पे इस्तकबाल चाहता हूँ, अपनी जगह ले लूंगा भाई। आसान नहीं है, पूरी ताकत से बोलता हूँ। जब प्यास लगे दरिया पे सब जाते हैं लेके, और जाके वहां पानी को पी लेते हैं लेके। अरे दरिया से बिना पानी पिए लौट के आना आसान नहीं है, आसान नहीं है। नारा हैदरी भाई ज़ोहैर, तुमने तो दाद का दरे खैबर उखाड़ दिया है। क्या माहौल है, क्या कैफियत है। मौला तुम्हें सलामत रखे। मैंने चॉकलेट खा ली थी तो और मिठास बढ़ गई है। बहुत बेहतरीन पढ़ रहे थे ज़ोहैर साहब। हजरात, इन्होंने एक शेर पढ़ा। मैं कहूंगा ज़ोहैर, अब किसी का दिल टूटे या निकाह ही टूटे, हम अलम उठाएंगे तुम जलो या मर जाओ। लखनऊ बनारस से आके ढाली पाड़ा में, लखनऊ बनारस से आके ढाली पाड़ा में जश्न हम मनाएंगे तुम जलो या मर जाओ। क्या क्या शेर सुनाए हैं हमारे मोहतरम ज़ोहैर सुल्तानपुरी ने। हजरात, हुक्म हो रहा है कि घड़ी घड़ी आप अपनी घड़ी देख रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं किसी घड़ी ना रुक के हर घड़ी बोलूं, ताकि घड़ी घड़ी आप अपनी घड़ी ना देखें, तो वक्त अपनी औकात में रखे। मैं बहुत तेजी से मोहतरम अजीज आजमी साहब की खिदमत में चला जाऊं, क्योंकि बार बार ये हुक्म हो रहा है कि एक बार अजीज साहब को और पढ़वा दीजिए और आरजू साहब को, फिर तो आपको सुनना ही है फरहान बनारसी को। तो मैं अभी वक्त नहीं लेता हूँ, इसलिए क्योंकि वक्त उन्हीं शोरा को दोबारा दे दिया जाए और उसके बाद फरहान से पहले मैं मोहम्मद साहब को सुना दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पे बैठे, मालूम है यूपी में महफिल हम लोग करते हैं, फिर आपकी तरफ नजर है। क्या आप दाद देते हैं, खुदा की कसम, बहुत एकदम चहक के जैसे ऐसा लगता है कि वाकई शेर दिल में उतर गया। मैं गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम अजीज आजमी साहब की खिदमत मैं हर पे इल्तमास लेके बढ़ रहा हूँ। उनसे पहले मोहतरम आरजू जलालपुरी को आपके हवाले कर रहा हूँ। ये बहुत मुख्तसर सा पढ़ेंगे, क्योंकि जो इनका वक्त था वो तो इन्होंने पढ़ दिया। बहुत मुख्तसर सा आपसे गुजारिश है, इनके इस्तकबाल में बाबा से बुलंद नारे सलावत पढ़ दें आप हजरात। मैं भी नीचे आ जाऊं। भाई मैं भी नीचे हो जाऊं।
हाज़रीन महफिल सलामुन अलैकुम। कि वक्त नहीं है, मुख्तसर सा, जब से मैं आया मुसलसल फरमाइशें हो रही हैं, दुआ चाहता हूँ ज़ुहैर भाई। जश्न मेहदी मनाया जा रहा है, जश्न मेहदी, हुसैन भाई, जश्न मेहदी मनाया जा रहा है, 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 फरिश्तों को बुलाया जा रहा है, फरिश्तों को बुलाया जा रहा है। अरे फिदक के गासिबों से जाके कह दो, दुआएं चाहता हूँ, फिदक के गासिबों से जाके कह दो, 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 अली मौला बनाया जा रहा है, अली 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 मिलके बोलिए, अली अली जश्न मेहदी, थोड़ा जाग के सुनिए, जश्न मेहदी मनाया जा रहा है, जश्न मेहदी मनाया जा रहा है, फरिश्तों को बुलाया जा रहा है। यहां से भी दुआएं चाहता हूं, इधर से भी दुआएं चाहता हूं। वो जिसने ज़ुहैर भाई, अत्तास भाई, फरहान भाई, वो जिसने फातिमा का घर जलाया, वो जिसने फातिमा का घर जलाया, जहन्नम में जलाया जा रहा है, जहन्नम में जलाया जा रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अली का इश्क हर के दिल में पल नहीं सकता। हम लोग खुश नसीब है कि मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारे दिल में है, हर किसी के नसीब में नहीं है। शेर सुनिए, अली का इश्क, दुआएं चाहता हूं भाईजान, बस 5 मिनट पढ़ूंगा, ज़हमत तमाम। हम खुश नसीब हैं कि हमारे दिल में मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम है। अली का इश्क, हुसैन भाई, शाहरुख भाई, अली का नहीं, मैं उनको बुलाऊंगा नहीं। अली का इश्क हर के दिल में पल नहीं सकता। अरे अंधेरा से उजाला निकल नहीं सकता। अंधेरा, मिलके बोलिए, थोड़ा जागिए भाई, जागिए। अली का इश्क हर के दिल
मैं पल नहीं सकता। हज़रात, हालात हाजरा पे शेर पेश कर रहा हूँ कि हम शियाने हैदर कर्रार कभी मैदान छोड़ के भागते नहीं है बल्कि भगाते हैं। शेर सुनिए कि अली का इश्क, शेर सुनिए कि लगा लो भाई, वहां से हाथ उठना चाहिए आखिरी मजमे तक शेर पे कि लगा लो भाई, कि लगा लो, अरे लगा लो जितना लगाना हो घाट पर पहरा। शेर सुनो कि लगा लो जितना। हालात हाजरा, ईरान पूरी दुनिया में अकेला वाहिद खड़ा हुआ है। शेर सुनिए कि लगा लो जितना, अरे लगा लो जितना लगाना हो घाट पर पहरा। अरे अली का शेर इरादा बदल नहीं सकता। डर मिलके बोलिए, अली का इश्क हर के दिल। मौला सलामत रखे, आप मुसलसल सुन रहे हैं, सभी शोराए किराम को दादो तहसीन से नवाज भी रहे हैं। अली का इश्क हर के दिल में पल नहीं सकता। अली का इश्क हर के दिल, थोड़ा जाग के सुनिएगा, पल नहीं सकता। चौथे इमाम के हवाले से शेर पेश कर रहा हूं, जो हजरात खड़े हुए बस माई से दाद दे दीजिएगा, दुआएं दे दीजिएगा कि अरे कुचल के आ गया, अरे कुचल के आ गया बैत की लाश वो जिसकी, अरे कुचल के आ गया बैत की लाश वो जिसकी। अरे यदीद समय झांका गए है चल नहीं सके कि यजीद समझा। आखिरी शेर ज़हमत तमाम शेर अच्छा होगा तो जनाब खलील जलालपुरी के हक में दुआ कर दीजिएगा। भाई आखिरी शेर ज़हमत तमाम सरकार कि बस उससे कहे दो कि साजाद आने वाले हैं। शेर अच्छा होगा दुआ जरूर दीजिएगा। अरे बस उससे कहे दो, अरे बस उससे कहे दो कि सजाद आने वाले हैं। अरे यजीदिया अजीबी घर से निकल नहीं सकता। भाई फरहान भी नीचे ही आएंगे। जीते रहो, सलामत रहो। अगले साल शायरों में इजाफा कर लीजिएगा ना। मौला अली का नाम शिया लेते हैं, अरे मौला अली का जिक्र शिया करते हैं, अरे मौला अली का जिक्र शिया करते हैं, अरे मौला अली का नाम शिया लेते हैं और मौला अली के नाम पे शहीद शिया होते हैं। वाह वाह। अगर ये सब करने से शिया काफिर है तो फिर मुसलमान कौन है? अरे वाह, क्या सवाल है। वाह 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 वाह। अल्लाह हमारे बच्चों को सलामत रखे। हमारा बचपन और उनका 55 है। हम आप देख रहे हैं, ये हमारा बचपन है और उनका 55।
दोनों बराबर नहीं हो सकते। हजरात, इस वक्त मैं जाते जाते आपको एक बार फिर बड़ी दुआएं देकर जा रहा हूं और बहुत सलाम मवद्दत, सलाम अकीदत आपके लिए। इतनी फरमाइशें थी लेकिन सारी फरमाइशों को मैंने बचा लिया क्योंकि शोरा को वक्त देना था, लेकिन मैं भी तो आया हूं तो मुझे भी तो वक्त देना है। आप तो खूब दाद देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं टप टप शरर शरार तड़ा तड़ छनन छनन। अब ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नौजवान हैं कमेटी वाले, उन्होंने हुक्म दिया कि जोश मलियाबादी ने जो पानी गिरता है, कभी झरने से गिरता है, कभी बारिश का होता है, कभी पन्नाले का होता है, तो उसकी जो आवाजें होती हैं पानी की वो क्या होती हैं। तो जोश मलियाबादी ने कहा था, वो हुक्म हो गया, टप टप शरर शरार तड़ा तड़ छनन छनन, तप तप शरर शरार तड़ा तड़ छनन छनन, धम्माल धूम धाम दमादम धनन धनन, धम्माल धूम धाम धना धन धनन धनन, कुमकाओ रूम झूम झमा झम झनन झनन, कुमकाओ रूम झूम झमा झम झनन झनन, घन घन गरज घुमाओ घमा घम घनन घनन, कुमकाओ रूम झूम झमा झम झनन झनन, घन घन घनज घन घन गरज घुमाओ घमा घम घनन घनन। हालो हिरासो है बते है जालिए हुए और बिजली की तेज नूह का तूफान है। बिजली है सलामत रहो। मैंने पहले बोल दिया वक्त की वजह से। सलामत रहे। अरे जरा सलामत रहे। अब आपको तहत के शायर को सुनना है तो जरा उसी माहौल में आ जाए। एक मुखम्मस के दो बंद जिसका हुक्म हुआ है, मजलिस हजरत शब्बीर में रोना है सवाब। अब उसी अंदाज से सुनिए, मजलिस मरहूम साहिल सिरसिवी अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमाए। कितनी फरमाइशें हैं, सुनिए। 6 महीने के बाबुल हवाइज के लिए शायद अपनी जगह में न रहे, मैंने बहुत रोका था, अब नहीं रोक पा रहा हूँ। सुनिए कि मजलिस हजरत शब्बीर में रोना है सवाब। यह वो खिदमत है कि दुनिया में नहीं जिसका हिसाब। उर्मिला को दिया ये असगरे नादा ने जवाब, अरे जंग करने को मेरे सामने तू आया है, तेरे दादा ने मेरे घर का न बैठाया। जब मजलिस हजरत शब्बीर में रोना है सवाब, मजलिस हजरत शब्बीर में रोना है सवाब। ये वो खिदमत है कि दुनिया में नहीं जिसका हिसाब। उर्मिला को दिया ये असगरे नादा ने जवाब, जंग करने को मेरे सामने तू आया है, तीर खा के जो हंसी आई पुकारी हिम्मत, मकसद शाह की असगर ने बना दी किस्मत। अब न उठेगा जमाने में सवाले बैत, अज़्म ईमान में मैदान अमल बांट गया, बेज़मा जुल्म यजीदी की ज़बान काट गया। जब कज़ा तीर को असगर की तरफ लेके चली, तीर को देख के असगर ने पढ़ी नादे अली, तीर खा के भी बहुत देर रही, लब पे हंसी, अरे फर्क आया नहीं बेशीर की पेशानी में, उर्मिला डूब जब जाके कहीं। आखिरी बात बहुत तेजी में सुनिए कि फर्क आया नहीं बेशीर की। अच्छा, इधर वाले को ऐसा लगता है कि सर्दी सारी इधर ही आ गई है कि फर्क आया नहीं बेशीर की। भाई जो है कहाँ जा रहे हो? नहीं रुक जाओ, सिर्फ तुमको देख के मैं पढ़ दूं, मैं जाने नहीं दूंगा कि फर्क आया नहीं बेशीर की पेशानी में। अरे ये सब नहीं जाएंगे क्योंकि अभी बहुत सी महफिलें बाकी हैं और तरतीब मुझे देनी है। सलामत रहे। फर्क आया नहीं बेशीर की पेशानी में, उर्मिला डूब जाके बैत सुनिए, उर्मिला डूब जाके कहीं पानी में। उर्मिला किस लिए मुझ पे ये सितम करता है, उल्टी सीधी से ये सांसें अभी क्यों भरता है, तीर गिर के बताते हैं कि तू डरता है। अरे देख ले तेरे लिए और तेरे घर के लिए चूड़ियां लाया हूं मैं शाम के लश्कर।
देख ले तेरे लिए और तेरे घर के लिए चूड़ियां लाया हूं मैं, शाम के लश्कर के लिए चूड़ियां लाया हूं मैं। भाई फरहान तैयार रहो, चूड़ियां लाया हूं मैं शाम के लश्कर के लिए। अरे आपके लिए याद आए, हुर हमें कहते हैं तहजीब का मस्कन है हम, जो खिजा से नहीं सूखे वही गुलशन है हम। अरे आज भी दुश्मन शब्बीर के दुश्मन है हम गिने जाते हैं जन्नत के खरीदारों में, हमसे उलझोगे तो बिक जाओगे बाजारों में। हम गिने जाते हैं जन्नत के खरीदारों में, हमसे उलझोगे तो बिक जाओगे बाजारों में। आपका महबूब शायर मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम रेहा फरहान बनारसी साहब से कि वो आए और अपने कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। आप जितना अच्छा सुनना चाहते हैं उतनी बुलंद आवाज से उनका खैर मकदम फरमा दें आप हज़रात। मस्जिद सामीन इकराम, सलामुन अलैकुम। आप तमाम हजरात को जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ, कामयाब जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोग एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा और जुड़ जाएं, करीब आ जाएं। आखिरी शायर हूँ मैं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप लोग थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं और इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करीब करीब थोड़ा थोड़ा जुड़ जाएं। आप लोग भी अगर चाहें तो आ जाएं, अब आ जाइए भाई, एक सलवात पढ़ दे मिलजुल कर। अली का लाल शहे जुल्फ़िकार बाकी है, अली का लाल शहे जुल्फ़िकार बाकी है, अभी भी वारिस दुलदुल सवार बाकी है। अली का लाल शहे जुल्फ़िकार बाकी है, अभी भी वारिस दुलदुल सवार बाकी है। कुछ और लेने दो दहशत पसंद को सांसे, वो करबला की अभी कारज़ार बाकी है। फितरत के लूटने वालों से लेगा आके हिसाब, अली की नस्ल का एक जिम्मेदार। माइक बढ़ा के छोड़ दीजिए, छेड़िए नहीं। बस इसी पे छोड़ दीजिएगा। अली का लाल शहे जुल्फ़िकार बाकी है, अभी भी वारिस दुलदुल सवार बाकी है। कुछ और लेने दो दहशत पसंद को सांसे, वो करबला की अभी कारज़ार बाकी है। फितरत के लूटने वालों से लेगा आके हिसाब, अली की नस्ल का एक जिम्मेदार बाकी है। गला हुसैन का उसको भी कुंद कर देगा, ऐ शिमर जो तेरे खंजर में था। लब्बैक या मैं, थोड़ा सा इसका बेस बढ़ा दीजिए वैलू। अली का लाल शहे जुल्फ़िकार, आमादा है, थके तो नहीं है आप? पढ़ूं मैं? थोड़ा आप करीब आ जाएं, आप भी आ जाइए। अली का लाल शहे जुल्फ़िकार बाकी है, अभी भी वारिस दुलदुल सवार बाकी है। कुछ और लेने दो दहशत पसंद को सांसे, अल्लाह से मिलने का इरादा नहीं बदला, अल्लाह से मिलने का इरादा नहीं बदला। नेज़े पर शब्बीर ने लहजा नहीं बदला, तीरों की रगे फट गई अफसोस में इसके, बेशीर के हंसने का सलीका नहीं बदला। हमले तो बहुत नेज़ा खंजर से हुए थे शेरों ने, मगर अपना इलाका न गिरा।
अल्लाह से मिलने का इरादा नहीं बदला, नेज़े पबी शब्बीर ने लहजा नहीं बदला। 1400 साल की तारीख आप तक पहुंचानी है शीयत की। सुने ये फर्श, ये मजालिस, ये महफिल इतनी आसानी से अब तक नहीं आई है। सुने, अल्लाह से मिलने का इरादा नहीं बदला, नेज़े पबी शब्बीर ने लहजा नहीं बदला। तीरों की रगे फट गई अफसोस में इसके, बेशीर के हंसने का सलीका नहीं बदला। हमले तो बहुत नेज़ो खंजर से हुए थे शेरों ने, मगर अपना इलाका नहीं बदला। जोड़ा भी तो एक घर से इमामत की कड़ी को, अल्लाह ने कुरान का चेहरा नहीं बदला। निकली जो ज़बां से तो गई बस में सकीफा, लानत ने किसी मोड़ पे रास्ता न गया। सुने, अल्लाह से मिलने का इरादा नहीं बदला, नेज़े पबी शब्बीर ने लहजा नहीं बदला। इंशाअल्लाह अपनी जगह बैठे नहीं रहेंगे। सुने, तीरों की रगें फट गई अफसोस में इसके, बेशीर के हंसने का सलीका नहीं बदला। हमले तो बहुत नेज़ो खंजर से हुए थे शेरों ने, मगर अपना इलाका नहीं बदला। निकली जो ज़बां से तो कहीं बस में सकीफा, लानत ने किसी मोड़ पे रास्ता नहीं बदला। बदला तो हुकूमत में उमैया के बहुत कुछ शियों ने, मगर अपना अकीदा नहीं बदला। बदला तो हुकूमत में उमैया के बहुत कुछ शियों ने, मगर अपना अकीदा नहीं बदला। शूली पर भी आए तो अली उन वलीउल्लाह कहते हुए जादे दी खलीफा। मिलकर बोले बहुत बढ़िया फरहान भाई, अब कहते रहिए, कहते शाह मर्दा शाह यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला बदा इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, नारे अली हैदरी 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 हैदरी। जलील होने को हाथों में लेके तेगो तबर, सेनानो नेज़ो खंजर अकड़ने आई है। दयारे करबो बला में इमाम ज़ादे से नमक हराम की औलाद लड़ गया। मिलके जलील होने को हाथों में लेके देखो दबर, सेनानो नेज़ो खंजर अकड़ने आई है। दयारे करबो बला में इमाम ज़ादे से नमक हराम की औलाद लड़ने आई है। नमक पढ़ो, बेदार है, सुनेंगे। अगर ये चाहे तो अपने बधे ही हाथों से अभी यजीद की गर्दन मरोड़ सकता है। अगर ये चाहे तो अपने बधे ही हाथों से अभी यजीद की गर्दन मरोड़ सकता है। इसे असीर समझने की भूल मत करना, किसी भी वक्त ये जंजीर तोड़ सकता। अगर ये चाहे तो अपने बदे ही हाथों से अभी यजीद की गर्दन मरोड़ सकता है।
इसे असीर समझने की भूल मत करना, किसी भी वक्त ये जंजीर। सर्दी की वजह से सब बिल्कुल जकड़ा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कितना तेज पढ़ रहा हूँ और आप तक पहुँच रही है, आपकी मोहब्बतें पढ़वा रही हैं। मैं यहाँ से एक मतलब कुछ शेर और पेश करता हूँ। शाह सरवर का किसी आन नहीं छोड़ेंगे, शाह सरवर का किसी आन नहीं छोड़ेंगे, कत्ल हो जाएंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे। हाथ सज्जाद का जकड़ा हुआ जंजीर में है, फिर भी बैक का गिरेबान नहीं छोड़ा। हैदर 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 मिलकर बोलो भैया, पीछे वालों भी नौजवानों। आखिरी शायर हो यार, सुन लो थोड़ा सा, कुछ सुना दो। शाह सरवर का किसी आन नहीं छोड़ेंगे, कत्ल हो जाएंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे। हाथ सज्जाद का जकड़ा हुआ जंजीर में है, फिर भी बैत का गिरेबान नहीं छोड़ेंगे। अपनी अपनी शर्तों पे रिहा हो के वतन जाएंगे, हम तेरी बात पे जिंदान नहीं छोड़ेंगे। शाह सरवर का किसी आन नहीं छोड़ेंगे। आप सबके हवाले ये शेर कर रहा हूं, अगर अकीदे से अकीदा मिल जाए तो तायद कर दीजिएगा। शाह सरवर का किसी आन नहीं छोड़ेंगे, कत्ल हो जाएंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे। हाथ सज्जाद का जकड़ा हुआ जंजीर में है, फिर भी बैत का गिरेबान नहीं छोड़ेंगे। अरे तंग दस्ती की रेदा ओढ़ रहे हैं, लेकिन करबला जाने का अरमान नहीं छोड़ा। इमाम वक्त का जब भी ज़हूर होएगा, फिदक के लूटने वालों के हाथ काटेंगे, फिदक के लूटने वालों के हाथ काटेंगे। गलत गलत ही रहेगा, ये बात याद रहे। गुलों में खार पिरोने से कुछ नहीं होगा। अली के बुक्स में रातों को जागने वालों नबी के पहलू है।
गलत गलत ही रहेगा ये बात याद रहे, गुलों में खार पिरोने से कुछ नहीं होगा। अली के बुग़्ज़ में रातों को जागने वालों, नबी के पहलू में सोने से कुछ नहीं होगा, नबी के पहलू में सोने से कुछ नहीं होगा। अरे झूठे खुदा की कैद से काबा निकल गया, आए अली बुतों का जनाजा निकल गया। सजदा तेरी नमाज का है मुनकिरे अली, परखा कसौटियों पे तो खोटा निकल गया। डंका अली की जीत का खैबर में वो बजा, मुंह से मुनाफिकों के निवाला निकल गया। झूठे खुदा की कैद से काबा निकल गया, आए अली बुतों का जनाजा निकल गया। सजदा तेरी नमाज का कोई बैठा रहा तो अफसोस होगा, आए मुनकिरे अली परखा कसौटियों पे तो खोटा निकल गया। अरे फासिक शराब खार नजिस बेहया यजीद, जैसा था बाप वैसा ही बेटा। नाली नर हैदरी गुल हैदरी 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 हैदरी। दरार सदियों से जो है उसे मिटा के दिखा, अली के बुग़्ज़ में काबा नया बना के दिखा। खिलाफे फर्शे अज़ा आदियां जला के दिखा, बहुत चिराग बुझाए कोई जला के दिखा। तू कह रहा है कि मेरा लहू हलाली है, अली के नाम का नारा जरा लगा। दरार सदियों से जो है उसे मिटा के दिखा। इंशाअल्लाह हाल जो है महशर में तब्दील हो जाएगा, कोई अपनी जगह बैठा नहीं रहेगा। खामोश सुने, दरार सदियों से जो है उसे मिटा के दिखा, अली के बुग़्ज़ में काबा नया बना के दिखा। खिलाफे फर्शे अज़ा आधियां जला के दिखा, बहुत चिराग बुझाए कोई जला के दिखा। तू कह रहा है कि मेरा लहू हलाली है, अली के नाम का नारा जरा लगा के दिखा। तबस्सुमे अली असगर ने हुरमुला से कहा, अगर है मर्द की औलाद तो हरा के दिखा। तबस्सुमे अली असगर ने हुरमुला से कहा, अगर है मर्द की औलाद तो हरा के दिखा। मैं तेरी जीत का ऐलान करके जाऊंगा, तू मुस्कुरा के दिखा और मुझे रुला। ठीक है पढ़ो। बेहुब्बे अली बागे इल्म मांग रहे हो, तुम इतनी बड़ी किससे रकम मांग रहे हो? नामर्द हो, फर्रार हो, बेदीन हो, फिर भी खैबर का मोहम्मद से अलमा।
बाद सरकार चली वक्त की रफ्तार गलत, बाद सरकार चली वक्त की रफ्तार गलत, 3 सरकार बनी वो भी लगातार। नमक का हक अदा कर देना, जैसे हक है वैसे अदा करना। बाद सरकार चली वक्त की रफ्तार गलत, 3 सरकार बनी वो भी लगातार गलत। हम उसी को तो कहा करते हैं हर बार गलत, जिसको सहरा ने कहा था सरे दरबार। बाद सरकार चली वक्त की रफ्तार गलत, 3 सरकार बनी वो भी लगातार। हम उसी को तो कहा करते हैं हर बार, जिसको सहरा ने कहा था सरे दरबार। कत्ल जितने हुए मैदान में सभी काफिर थे, या अली आपकी चलती नहीं तलवार। कत्ल जितने हुए मैदान में सभी, या अली आपकी चलती नहीं तलवार। जानना है तो पढ़ो जंग जमल की तारीख। नौजवानों, मेरे पीछे भाइयों, पीछे वालों, मेरी तरफ देख लो यार। जानना है तो पढ़ो जंग जमल की तारीख। किसका किरदार सही, किसका है किरदार। जानना है तो पढ़ो जंग जमल की तारीख। अज़ा का फर्श जहां पर बिछा के बैठ गए, हम अंबिया के बराबर में आके बैठ गए। उमर का चेहरा उजालों में लेके आना था, तो हम चरागे तबर्रा जला के बैठ। अली 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अज़ा का फर्श जहां पर बिछा के बैठ गए। थके तो नहीं है आप? थके नहीं ना है? अज़ा का फर्श जहां पर बिछा के बैठ गए, हम अंबिया के बराबर में आके बैठ गए। उमर का चेहरा उजालों में लेके आना था, तो हम चरागे तबर्रा जला के बैठ गए। नमक हरामो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती, फेदक बतूल का तुम लोग खा के बैठ। लानत लानत हैदरी 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 हैदरी। बहुत अच्छा भाई, बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सहाबी वाला पढ़ दे।
अल्लाह का बंदा हूँ, मोहम्मद का वसी हूँ, नबियों का मददगार हूँ, वलियों का वली हूँ। थे मूसा इलियास जमाना में सदी हूँ, दुनिया मुझे पहचान ले मैं ही वो अली हूँ। लहजे में खुदा जिसके ज़बां खोल रहा है, रखता तो नहीं जिस्म मगर बोल रहा है। क्या खुद से करूँ अपनी बयां शान शुजाअत, कुरान से कोई पूछे मेरी जाके बलागत। अल्लाह ने बख्शी है मुझे ऐसी विलायत, थी खिलकत आदम में यदुल्लाह की शिरकत। नबियों को बनाने में ख्यालात मेरे हैं, अल्लाह के जो हाथ है वो मेरे हैं। रसूल पाक के अव्वल से साबित है, रसूल पाक के अव्वल से साबित है। हर एक हाल में अपनी सभा को खोलेगा, जमाने भर के दलील से जाके बदला तो हराम मुताली के खिलाफ बोलेगा। माशाल्लाह, जिंदाबाद। मौला सलामत रखे आप लोगों को। क्या खूबसूरत जश्न सजाया है, क्या सुनते हैं आप। पढ़ो। दाऊद ले गए न सुलेमान ले गए, शब्बीर जिस बुलंदी पर कुरान ले गए। बेड़ी पिन्हा के आबिद बीमार को नगी, जालिम दयार शाम में तूफान ले गए। अरे निकले ना बच के हाथ से कातिल हुसैन का, मुख्तार खुद पकड़ के गिरे बाल है। शायरी सुन ले भाई थोड़ी। हैदरी 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 हैदरी। जो कुफ्र पे दाऊद ने किया वो भी सहा, जिसने रिसालत पे किया वो भी सहा, जिसने शरीयत का पिया वो भी सहा, जिसने पैगंबर को दिया वो भी सहाबी। अरे तहकीक करो, तहकीक करो, जुल्म के आदि तो नहीं है, सूरत में सहाबी की फसादी तो नहीं। नबियों को बनाने में ख्यालात मेरे हैं। अल्लाह, ये बात से आवाज से आपकी आवाज मिला दे रहा हूँ। अल्लाह के जो हाथ है वो हाथ मेरे हैं। इस्तकबाल होना चाहिएगा, महबूब इलाही की ज़बानी भी सुना दूं, दरियाए शुजाअत की रवानी भी सुना दूं। सुन लो तो तुम्हें हक के मानी भी सुना दूं, कुछ भागने वालों की कहानी भी सुना दूं, कुछ भागने वालों की कहानी भी सुना दूं। मैदान में घोड़े अगर आए, रफ्तार में घोड़े से भी आगे नजर आए। हैदर हैदर हैदर। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले, तेरे कदम की खाक जो शाहे ज़मन मिले। उलझे हुए हैं लोग अभी 3-4 में, हम खुश नसीब है कि हमें पंजदा
जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले, तेरे कदम की खाक जो शाह ज़मन मिले। तेरे कदम की खाक जो शाह। थक गए क्या भाई हुसैन भाई? थकना नहीं है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले, तेरे कदम की खाक जो शाह ज़मन मिले। उलझे हुए हैं लोग अभी 3-4 में, हुसैनियत के जो रस्तों से हट के चलते हैं। ए भैया ए बैठो बैठो, कहीं जाना नहीं, बैठो बैठो। बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले, तेरे कदम की खाक जो शाह ज़मन मिले। उलझे हुए हैं लोग अभी 3-4 में, हम खुश नसीब हैं कि हमें ऐ शेख दिन में सितारा दिखाई देता है। तुझे तो काबा भी उल्टा दिखाई देता है। ऐ शेख दिन में सितारा दिखाई देता है, तुझे तो काबा भी उल्टा दिखाई देता है। गमे हुसैन पे फतवा लगा के बिदअत का हजारों बाप का बेटा दिखा। शेख दिन में सितारा दिखाई देता, तुझे तो काबा भी उल्टा। गमे हुसैन पे फतवा लगा के बिदअत का चलते हैं, कहीं सवाल न बागे फिदक का छिड़ जाए। यही सबब है कि वो हमसे कट के चलते हैं। न जाने है बते अब्बास कितनी फैली है, अदू के साए भी रन में सिमट के चलते हैं। ये जाते जाते फूफी ने कहा भतीजे से, चलो यजीद का तख्ता पलट के चलते हैं। हैदर हैदर आप लोग आ जाएं थोड़ा करीब। सितमगरों के है लब पर सवाल क्या होगा? अगर ऐसे सुनेंगे तो मैं अपनी जगह ले लूंगा। सितमगरों के है लब पर सवाल। जुहैर भाई को पढ़ना है? अच्छा जाना है, अच्छा चलिए चलिए। अरे अभी 5 बजे की फ्लाइट है, बहुत टाइम है। पढ़ो नारा हैदरी 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 हैदरी। इश्क हैदर का जाम पीना है, बाद मरने के हमको जीना है। क्यों न बरकत हो इस महीने में, तेरी आमद का ये महीना है। सब्र के साथ साथ चलती रही, कम सीनी में बड़ा करीना है। इसके अम्मू ने अलकमा छीनी, इसने कातिल का चैन छीना है। हाकिमे शाम तुझ पे लानत है, हाकिमे शाम तुझ पे लानत है। रोज मर मर के तुझको जीना है। तेरा बेटा नहीं हुआ तेरा, इसका मतलब कि तू कमीना है। बस आखिरी कलाम और आज की इबादत यही मुलतवी करता हूँ। भाई अगर सुनना है तो थोड़ा सा ऐसा लगे कि आप सुनना चाह रहे हैं। नारा हैदरी हैदरी हैदरी
ऐ करबला जो तेरे खजानों से दूर है, ऐ करबला जो तेरे खजानों से दूर है, लज्जत वफा की उसके बयानों से दूर है। अकबर ने सांस भरने का मौका नहीं दिया, बर्छी इसीलिए तो जवानों से दूर है। बर्छी इसीलिए तो जवानों से दूर है। अरे जिनके सरों से छीनी थी चादर यजीद ने, बेपर्दगी उन्हीं के घरानों से दूर। अब यहाँ से 2-3 शेर सुन लीजिए और मैं अपनी जगह ले लूँगा, लेकिन ऐसे नहीं, जैसे हक है सुनने का वैसे सुनिएगा, ऐसा लगे कि जश्न अभी शुरू हुआ है। ठीक है, बहुत कीमती शेर सुनाने हैं, कसम खुदा की आपकी मोहब्बतों ने पढ़वाया है, वरना इतना हिस्सा तो अभी लग रहा है कि सब ब्लॉक हुआ है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। ऐ करबला जो तेरे खजानों से दूर है, लज्जत वफा की उसके बयानों से दूर है, अकबर ने सांस भरने का मौका नहीं दिया। नौजवानों मेरी तरफ देखो, अकबर ने सांस, इंशाअल्लाह बैठे नहीं रहोगे अपनी जगह, अकबर ने सांस भरने का मौका नहीं दिया। पर्ची इसीलिए तो जवानों से दूर है, जिनके सरों से छीनी थी चादर यजीद ने, बेपर्दगी उन्हीं के घर से दूर है। शब्बीर तेरे चाहने वाले करीब हैं, शब्बीर तेरे चाहने वाले करीब हैं, नस्ले यजीद ताजिया खानों से दूर है। शब्बीर तेरे चाहने वाले करीब हैं, नस्ले यजीद ताजिया खानों से दूर है। हज करने वाले ज़ाहिर करबो बला को देख, पैदल चला है फिर भी थकानों से दूर। पैदल चला है फिर भी थकानों से दूर है। ऐसे मुअज्जिनों पर है लानत बिलाल की, हैदर का नाम जिनकी अजानों से दूर है। भाई फरहान के कलेजे की दाद है और साथ ही साथ आपके जज्बे की भी दाद है। अरे वो बच्ची कहाँ गई, सहम गई थी, यहाँ डर गई थी। हाँ है, और जिस तरह थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, हाँ, ताकि महसूस हो ना कि ना समझ रहे हैं। हाँ, तो फरहान भाई को अल्लाह सलामत रखे, फरहान को। और फाजिल क्या पढ़ेंगे मैं ये सोच रहा हूँ जब आएंगे आपके यहाँ। यहाँ तो फाजिल के हाफिज बैठे हुए हैं, एक लड़का खड़ा होता है तो कभी सहाबी पढ़ता है, एक लड़का खड़ा होता है तो कभी जो है वो मौलाए कायनात के करबला में मैं करा दूँगा हैदर हैदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी फहरिस्त में आखिरी शायर था फरहान बनारसी, लेकिन आपने तो कसम खुदा की कहीं का किसी को नहीं छोड़ा। इस वक्त 2 बज रहे हैं, लेकिन बनु उमैया के चेहरे पर 12 बजा दिया है। इस वक्त 2 बज रहे हैं, लेकिन बनु उमैया के चेहरे पे 12 बजा दिए। अच्छा माफ़ कीजिएगा, ये मत कहिएगा कि माइक पे आओ, ये मत कहिएगा। मौलाना से इजाज़त लेते हुए मैं इसका कायल नहीं, आपने तो कहीं का भी नहीं छोड़ा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ फरहान की देन है, वरना इतने अपने आप को मैंने समेट लिया था। फरहान की देन है सिर्फ रेहान आजमी का एक शेर, ताकि महफिल और कबूल हो जाए। और ये जो अब तक वहाँ बैठे रहे वो जैसे लगता है कि बस बैठे हुए हैं, लेकिन वो आसमान पे बैठे हैं। मैं आपको भी सलाम करता हूँ, लेकिन एक शेर की इजाजत इन्होंने दे दी है, नाम लेके महफिल कामयाब नहीं, मौला की बारगाह में कबूल हो। रेहान आजमी ने कहा था ये करबला है यहाँ हमको क्या मिटाओगे, ये करबला है यहाँ हमको क्या मिटाओगे। शबाना पाई थी हिंदा जिगर मदीने में, यकीन है गैबत से आएंगे मेहदी, जलाया जाएगा जिंदा उमर। मैंने सिर्फ कबूलियत, हाँ बस
अरे सलामत रहिए, सलामत रहिए। हमें पता होता कि इस मलून के नाम पर खुदा लानत करे, खुदा लानत करे। आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों पर खुदा की लानत हो। सलामत रहिए, जीते रहिए, आबाद रहिए। ज़रूरी नहीं है कि चौराहे पे तिराहे का नाम लिया जाए, इसलिए कि लानत बेवकूफ़ नहीं होती है। रास्ता चलने वाला बेवकूफ़ी कर जाए, जाना कहीं और चला जाए कहीं। जैसे तारीख़ में जाना गदीर में था, पहुंच गए सकीफ़ा में, हैं। आइए, मैं सलाम करता हूं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप यकीन मानिए, इतने मुल्कों का सफ़र हुआ, वो सारी चीज़ें देखते हुए मैं नाम नहीं ले सकता, हिंदुस्तान में हूँ, वरना बताता कि इस वक्त मेरा एहसास किस मुल्क के सुरूर में ढला हुआ है कि जहाँ मैं था वहाँ यही माहौल था कि जो माहौल आपका है। लेकिन वहाँ इस सर्किल में नहीं था, पूरे मजमे में था। लेकिन ये सर्किल बहुत उम्दा रहा, बहुत अच्छा आपने सुना। हमारे बच्चों को अल्लाह सलामत रखे, उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, और जिन लोगों ने दामे दिरहमे सुखने जैसे भी समात के एतबार से, दात के एतबार से इसमें शिरकत की है, अल्लाह उसकी तौफ़ीक़ात को में इजाफ़ा फ़रमाए। मैं बड़ी दुआएं निकल रही हैं दिल से। मैं चला जाऊंगा लेकिन अपना दिल आपको देकर जा रहा हूं, ये याद रखिएगा। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम अज़ीज़ आज़मी से कि वो ये सिर्फ हुक्म पर, ये सिर्फ 2 ही कता पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर बाबा। देखिए भाई, पूरा सुनिएगा, अब पूरा सुनने के बाद ही दाद दीजिएगा। मिश्रा पूरा सुनिएगा। नबी को छोड़ के मैदान से भागने वाले, नबी को छोड़ के मैदान से भागने वाले, किसी भी जंग में नबी को छोड़ के मैदान से भागने वाले किसी भी जंग में जौहर दिखा नहीं पाए। उन्हें बताते हो जर्रार तुम जमाने में, उन्हें बताते हो जर्रार तुम जमाने में, जो अपने पास की मक्खी उड़ा नहीं पाए। उन्हें बताते हो जर्रार तुम जमाने में, जो अपने पास की मक्खी उड़ा नहीं पाए, जो अपने सकीफा का आंगन कहां सहने काबा, सकीफा का आंगन कहां सहने काबा, वो बैतुल शरफ ये पुरानी हवेली, सकीफा का आंगन कहां सहने काबा, वो बैतुल शरफ ये पुरानी हवेली। अली के मुकाबिल में लाते हो उनको, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेल। अली के मुकाबिल में लाते हो उनको, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। माइक ऊपर कर दो, मौलाना दुआ कर दो। हजरत या अली, मैं हैदरी या अली। सलामत रहो बेटा, मौला तुम्हें आबाद रखें और बहुत कामयाबी दें। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना ताहिर साहब क़िबला की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो दुआ करवा के दुआया कलिमात के ज़रिए इस महफिल को अगले के लिए मुलतवी फरमाए। आप हज़रात मौलाना के लिए और मौलाना के इस्तकबाल के लिए एक सलावत पढ़ दें। मोहम्मद व आले सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन माता व लम यअरिफ इमाम ज़मानिही
माता मीततन जाहिलिया सलवात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के सिलसिले से ये महफ़िल बहुत शानदार हुई और किसी तकरीर के हवाले से हाज़िर नहीं हुआ हूँ, बस खुदा से दुआ है या रहीम या करीम या अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखना और जिस अंदाज से भी जिसने इसमें अपनी शिरकत ज़ाहिर फरमाई है, शिरकत की है, उसे कबूल फरमाना। ख़ास करके महिलारा যারা অনেক টাকা পয়সা দিয়ে এর মধ্যে সহযোগিতা করেছে, মদত করেছে, তাদের সন্তানদেরকে আল্লাহ তুমি তোমার হিফাজতে রেখে দিও। या रहीम या करीम या अल्लाह जो बेरोज़गार है उन्हें रिज़्क़ हलाल इनायत फरमा। या रहीम या करीम या अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद सालिहा इनायत फरमा। खुदाया चहारदा मासूमीन के वसीले से, चहारदा मासूमीन के तवस्सुल से जहाँ जहाँ शियान हैदर कर्रार हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। या रहीम या करीम या अल्लाह अतबात आलियात की हिफाजत फरमा, ईरान की हिफाजत फरमा। महाराज किराम बिलखुसूस सैयद अली सिस्तानी, सैयद अली खामनाई की हिफाजत फरमा। खुदाया खुदाया अतबात आलियात की हिफाजत फरमा, हमारे जवानों की हिफाजत फरमा, इन्हें दीन इस्लाम पे चलने की तौफीक इनायत फरमा। या रहीम या करीम या अल्लाह अब और इम्तिहान न ले, इमाम अस्र के ज़ोहर में ताजील फरमा, हमको उनके खादिमों में शुमार फरमा। आइए सब मिल के दुआ इमाम ज़मान पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न अल-हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन वदलीला आईना हत्ता तुस्किनहु ज़कातल्लाह वतमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहु शरीफ। बिलखुसूस बाहर से आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। হ্যালো বাইরে থেকে যে সমস্ত মেহমানরা এসেছেন আপনারা সাইডে উঠুন এবং গ্রামের সমস্ত মনে ভাই আপনারা পার্কিংয়ের সাইডে এসে বসুন। বাইরে থেকে যে সমস্ত মেহমানরা এসেছেন তাদের জন্য অনুরোধ করে বলা হচ্ছে আপনারা মসজিদের সাইডে চলে যান এবং আমার গ্রামের লোকেরা এই পাঁচিলের দিকে কবরস্থানের পাঁচিলের দিকে বসবেন। প্রথম মুমিন ভাইদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, পরে এবং মেহমানদের আমার মেহমানদের